Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Shri Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Shri Ravi Shankar Srivastav, Director General, IGPR, Jaipur, Rajasthan, and Dr. Chandrasekhar Kumar, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj, and Dr. Rodrigo H. Ofren, WHO Representative to India. I request them all to please join us on stage. May I also take the pleasure of inviting Ms. Rekha Yadav, Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj. I'll request all the dignitaries to please join us on stage. Secretary Amrit. Ma'am. We warmly welcome in our midst Ministry of Rural Development, Secretary to Government of India, Shri Nagin Singh. A very warm welcome to the Honorable Dignitary. NN Sinha. I request Dr. Chandrasekhar Kumar, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj, to also please join us on stage. First of all, I request the honorable dignitaries who are seated with us on the dais to please light the ceremonial lamp and inaugurate this morning's proceedings. Ladies and gentlemen, according to Indian tradition and culture, the lighting of the symbolic lamp symbolizes new and auspicious beginnings. It is with the lighting of the lamp that we bow down our heads in obeisance to Lord Almighty and pray for the success of this venture. We would like to request all the dignitaries seated on the dais. As you can see, there is a small box right in front of you. This is the theme, the thematic display we have in the form of a pin. So I would request you all to please kindly put it on. It's a part of the celebrations.
With that, I request Shri Sunil Kumar, Secretary Ministry of Panchayati Raj, to kindly deliver the welcome address. Please put your hands together and give a warm welcome. Good morning to all participants, all dignitaries here on the dais with me, the country head of WHO, Dr. Roderico Offrin, my colleague NN Sinha, Secretary, Rural Ministry of Rural Development, Sri Ravi Shankar Srivastav, DG, IGPR and GVS, Jaipur, Rajasthan, my colleague in the ministry, Dr. Chandrasekhar Kumar. We hope Secretary Health, Sri Rajesh Bhushan, will join us shortly. We have commenced the proceedings because we have a very tight schedule. आज यहाँ पर देश भर से आए हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं. We have representatives from Panchayati Raj institutions, all the 3 tiers, who have come from different states from all over the country. Given the size, variety, it's a slightly problematic proposition when we have to address all the representatives from different parts. Some are familiar, more sort of at home in their regional language, which may be Tamil or Telugu or Kannada or Marathi or Hindi than English. Here, unfortunately, we have to conduct our sort of proceedings in Hindi or English. So it does pose its problems, but still we'll make the effort. और इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि हम लोग सारे जो विविध भाषाएं हैं उनमें आपको हम लोग संबोधित नहीं कर पा रहे हैं. और ये सब हम सभी लोगों के लिए जब हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे बड़ी चुनौती भी हमारे सामने यही होगी. सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि हम जिस लास्ट माइल पर गांव में रहने वाले सबसे गरीब तबके के व्यक्ति को संबोधित करना चाह रहे हैं तो हमें उनकी भाषा में उन्हें सभी चीजों को समझाना होगा. We'll need to explain everything to them in their regional language. So this is a big challenge for all of us. जब तक हम लोग स्टेट के लेवल पर ऑफिशियल से डील करते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिशियल से डील करते हैं, हम हिंदी या इंग्लिश में काम चला लेते हैं. लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो हमें स्थानीय भाषा में बताना होगा. तो ये चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर विशेष जोर दिया है कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो अभी रिवैम्प्ड पिछले दिनों अप्रूव हुआ, बुधवार को ही अप्रूव हुआ, उसमें तकनीक का पूरा उपयोग किया जाएगा. लोगों को आसानी से समझ में आए इसलिए विजुअल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा. एनिमेशंस के माध्यम से हम कैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थीम्स हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकें, उस पर पूरा जोर होगा. और व्यवहारिक फोकस विल बी ऑन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, taking our information to the people in a manner which they can easily understand and imbibe. Sometimes just passing on the material in written form is not enough. So therefore, we will be focusing on extensive use of technology, which may include, say,
whether artificial virtual reality, metaverse, whatever, as we go forward, all those latest cutting edge technology will need to utilize. If a mock Gram Sabha has to be conducted, mock meetings of Gram Panchayat has to be conducted, what are the type of questions that will be raised? किस तरह के प्रश्न वहां पे उठाए जाएंगे? ये सारे चीज को हम लोग कैसे अपने ट्रेनिंग सेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी पर हम लोग जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं भारत सरकार में, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हो या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उन सभी जगह से मटेरियल को लेकर के मेथडोलॉजीज, टेक्नोलॉजी, सारे चीज को अंगीकार करके हमें ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना है। इसी तरह आज का जो विषय है स्वस्थ गांव, हेल्दी विलेज, अभी तक हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं से जब बात करते हैं तो हमें केवल उसके बारे में सोचते हैं कि गांव में अस्पताल है या नहीं है, हॉस्पिटल है या नहीं है, सब सेंटर है या नहीं है। अब इसे हम होलिस्टिक तरीके से देख रहे हैं कि गांव को अगर स्वस्थ बनना है तो फिर हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब हम रोग को होने से कैसे रोक सकते हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी कि ईस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार, वेयर जापानीज एन्सेफेलाइटिस used to, thousands of children used to fall prey to Japanese encephalitis in the months of June, July, August, September. One way of responding to the situation was that you create child ICUs in the Gorakhpur Medical College and other specialized institutions, कि जो बिल्कुल सीरियस बच्चे हो गए उनके लाइफ को बचाया जा सके। और इसी का दूसरा एस्पेक्ट ये था कि मच्छर को हम उन गांव में पनपने ही ना दें, वहां पर हम वी टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। और ये दोनों चीज को जब सरकार ने ध्यान देना शुरू किया, एंड ऑफ कोर्स इस सारे में जो स्वच्छता अभियान, जो क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू हुआ, दैट हैज आल्सो हेल्प्ड। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स जो बने हैं एंड फोकस ऑन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जिस पर अब दिया जा रहा है, इन सारे का असर ये हुआ कि बेहतर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पर काम करने पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस को हम लोग काफी कुछ कंट्रोल कर सकने में पिछले 2-3 सालों में हमें सफलता मिली है। जबकि इसके पहले पिछले 20-25 सालों से एवरी ईयर द मोर्टेलिटी वुड रन इनटू हंड्रेड्स एंड सम बैड ईयर्स इट यूज्ड टू रन इनटू थाउजेंड्स। सो ये सारी बात इसलिए कह रहे हैं कि एवरी लाइफ इज प्रेशियस, हर एक जीवन कीमती है, एंड वी हैव टू मेक द एफर्ट टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन, एवरी चाइल्ड विच इज born, every person who is living, who is a citizen of this country, gets a chance to lead a healthy life. It is with this goal in view, and when we say when a village becomes healthy, then so many of these sustainable development goals will automatically get achieved. So this is what we are focusing on, क्योंकि स्वस्थ गांव को एक गरीब से गरीब परिवार के व्यक्ति भी उसे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो he feels it immediately. One need not go to a doctor to feel that I am not well. You instinctively, your body tells you कि today you are having a body ache, you are having headache, something is wrong. तो ये चीज को करने के लिए यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने एक साथ लाए हैं। कंट्री हेड WHO के आज यहाँ पर हैं,
स्वास्थ्य मंत्रालय के हमारे सहयोगी सचिव वो भी कुछ देर में आएंगे। हम लोगों ने जॉइंट एडवाइजरीज जारी की है और एक रेजोल्यूशन, एक कमिटमेंट वी आर शॉर्टली गोइंग टू इश्यू, जिसमें 26 डिपार्टमेंट्स, 21 ministries representing 21 ministries of government of India, they are coming forward and making that commitment that through our programs, through our resources, we will be working to facilitate the panchayats to attain the goals which they set for themselves, which can be broadly classified around these 9 themes, of which healthy village is a very important theme. तो उसी दिशा में आज का ये प्रयास है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और आगे की कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। कई इसमें चीजें जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी उसमें हमें देखने समझने को मिलेगा। और केवल एक चीज जो मैं जोड़ देना चाहूंगा कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों ने भी, बहुत सारे जिलों ने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। And we have so many examples within the country where people have done outstanding work. And if we can learn from those experiences, there's a lot that we can achieve in a very short frame of time. और कोविड पैंडेमिक के दौरान सेक्रेटरी हेल्थ जब आएंगे तो आई थिंक he will testify that how the role of community, the role of Panchayati Raj institutions in combating COVID, this pandemic, has been really commendatory. So ये सारी चीजें will be having. So I once again welcome the country representative of WHO, my fellow colleague and secretary and guide Nagendranath Sinha, Secretary RD, Sri Ravi Shankar Srivastava ji, who has come from Jaipur and brings in a lot of experience, and Sri Chandrasekhar Kumar, my colleague here in the ministry, who has been instrumental in getting this whole sort of 7-day conference and national conference organized and bringing all these stakeholders together. So with once again, and a warm welcome to all of you who have come from different parts of the country and who are participating with such great interest in the proceedings which are happening every day. तो मैं पुनः अपनी ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी उसी तरह आपके लिए उपयोगी होगा, प्रेरणास्पद होगा, जिस प्रकार पिछले दिनों के कार्यक्रम रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. We warmly welcome in our midst Sri Nagendranath Sinha, Secretary, Ministry of Rural Development. I'll now request him to kindly address the August gathering and share his thoughts. Shri Sunil Kumar, Sachiv Panchayati Raj, Dr. Roderico Offrin, the WHO country representative, Dr. Ravi Shankar Srivastava, DG, Indira Gandhi Panchayati Raj and Gram Vikas Sansthan Jaipur, Dr. Chandrasekhar Kumar और इस सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए बहनों, भाइयों और जो हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स, आप सब लोगों का मैं अपने साथी सचिव की तरह ही अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सचिव पंचायती राज महोदय ने बताया, मैं उनकी बात से पूरी तरह वाकफियत रखता हूं। ये जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य की समस्याओं का निदान स्वास्थ्य में ही, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि एक दूसरे सेक्टर से आता हूं,
मैंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ में मेरी मास्टर्स की भी डिग्री है। तो मैं जानता हूं कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य हम जिसको देखते हैं, जिसको कहते हैं, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। कुछ कारण तो तुरंत नजदीकी होते हैं, जैसे अगर खाना आपको नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो आप कमजोर हो जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा। लेकिन अगर पीने का अच्छा पानी नहीं मिले, आपके गांव में सफाई न रहे, इनका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि आज देश के जितने कोने कोने से लोग आए हुए हैं, उन सभी को ये सोचना चाहिए और ये समझ विकसित करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि गांव में अगर आदमी थोड़ा रुके, थोड़ा ठहरे, थोड़ा सोचे, तो इतना ज्ञान का भंडार है। आपकी कहावतें, जो बड़े बूढ़े कहते हैं, गांव की लोक कथाएं, कहानियां और आपस की चर्चा, इनमें इतना ज्ञान छिपा है। और आप जो पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जो चीजें कही जा रही, सरकार की ओर से जो चीजें बताई जा रही, उन सब चीजों पर अगर आप अपने गांव के लोगों से चर्चा करिएगा, मिलके निर्णय करें कि हमें करना क्या है। कभी कभी जो गांव में जाता हूँ, रहने वाला भी गांव का ही हूँ, लेकिन अब इधर हाल में कम होकर मिलते हैं, लेकिन जब जाता हूँ तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि गांव में कई इलाकों में गंदा पानी भरा रहता है, मलबों के ढेर इकट्ठा है। हम ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसका हम समाधान नहीं कर सकते। मैं कुछ दिनों पहले लातूर जिले के एक गांव, लातूर जिले की बात पढ़ रहा था। वहां पर मलेरिया की समस्या बहुत बड़ी थी। लोगों ने जो नलों से पानी निकलता था, उसका सोकपिट बना लिया। हर घर के पास सोकपिट बना, तो उसके चलते बाहर जो पानी गंदा फैलता था और जिसमें मच्छरों का विकास होता था, वही नहीं रहा। तो मच्छरों की समस्या भी मूल से समाप्त हो गई और मलेरिया समाप्त हो गई। अब कोई आदमी, अब हम सब लोग ऑल आउट के जमाने वाले हैं, तो जब तक ऑल आउट ना हो या स्प्रे ना करें, तो हमें लगता है कि मच्छर हट कैसे। लेकिन अगर आप समस्या को जड़ से अटैक करेंगे तो समस्या हट सकती है। और हम सब लोगों में, हर पंचायत में इस प्रकार के समाधान निकालने की हमारी क्षमता है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि अपने एक तो जो WHO कहता है और WHO जब आपसे बात करेंगे तो इस बात की जरूर चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, और फिजिकल हेल्थ भी कई चीजों पर निर्भर करता है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो हम इन सभी चीजों को साथ लेके हमको चलना होगा। अगर गांव में हमारी औरतें तकलीफ में हैं, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर हमें स्वास्थ्य की चिंता करनी है, तो हमें अपनी बेटियों की चिंता करनी पड़ेगी, हमें अपने माताओं बहनों की चिंता करनी पड़ेगी, हमें अपने बुजुर्गों की चिंता करनी पड़ेगी, हमें उन भाइयों और बहनों की चिंता करनी पड़ेगी जो किसी कारण से विकलांग हो गए, किसी कारण से कमजोर हो गए। तो ये एक गांव में इस प्रकार का माहौल रहे जहां कमजोर से कमजोर आदमी को भी गांव का समुदाय चिंता करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम सब लोगों को करना चाहिए। हम सब लोगों को स्वास्थ्य जिन चीजों पर निर्भर करता है, मसलन
पानी पे मसलन आपके यहाँ जो गंदा पानी निकल रहा है, जो गंदगी इकट्ठा हो रही है, उनके डिस्पोजल पे, न्यूट्रिशन पे, इसके अलावा आप इस तरह के वेक्टर्स का कैसे समाधान कर रहे हैं। आप आपके गांव में आपके बच्चों के लिए आप उनको किस प्रकार का खाना देते हैं, किस प्रकार के स्नैक्स देते हैं, किस प्रकार की आदतें सिखाते हैं, क्या वो पर्याप्त मात्रा में व्यायाम इत्यादि कर रहे हैं। हम उस योग और इस तरह की जो चीजें हम करके अपने आप को विकसित कर रहे हैं, हम अपने फिजिकल लाइफ में कितना एक्टिव है। इन चीजों का अगर हम करें, हमारे खाने में प्रोसेस चीजें हैं या अनप्रोसेस चीजें हैं, इन सब चीजों का अगर हम अपने जीवन में समावेश करेंगे और गांव के लोग हम शहरों के लोगों की तुलना में इन चीजों का के बारे में ज्यादा सजग है, परंपरागत रूप से करते आए हैं, तो इन चीजों पर अगर गौर फरमाएंगे तो उनको अपनाना और गांव के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य माहौल पैदा करना, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर जो आपको आपकी में जो संभावनाएं छिपी हैं, ग्रामीण समुदाय में जो संभावनाएं छिपी हैं, उन संभावनाओं की कैसे आप प्राप्ति कर सकें, इसको इसकी ओर आप सजग रहेंगे तो निश्चित तौर पे ग्राम समुदाय किसी हालत में शहरी समुदायों की तुलना में और आप में जो विकास की अंतर्निहित संभावनाएं छिपी हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में किसी हालत में पीछे नहीं रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा ग्रामीण समुदाय काम कर रहा है, देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, 20 साल 25 साल बाद एक ऐसा समय है कि हम कल्पना करें जहाँ पर शहरों और गांवों के बीच में किसी प्रकार की खाई न रहे और उसकी दिशा में हम कार्रवाई करने की कोशिश करें। लोगों को शहर इस बात के लिए नहीं जाना पड़े कि वहाँ पे रोजगार ज्यादा मिल रहा है और गांव में रोजगार कम मिल रहा है। हम इस तरह की परिस्थिति पैदा करें जहाँ पर लोग गाँव में भी पर्याप्त रोजगार पाए और शहरों में जो रोजगार आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं, वो गाँव में बैठे बैठे भी ये सुविधाएं मिल जाए। पंचायती राज मंत्रालय इस दिशा में मिलके बाकी मंत्रालयों से, जैसे उन्होंने बताया, 20 और मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस भागीरथ प्रयास में सब लोग मिलकर काम करेंगे तो उस तरह की स्थिति प्राप्त करेंगे और इसमें आपका स्वस्थ होना और पूरे ग्राम समुदाय का स्वस्थ होना एक बहुत महत्वपूर्ण कारक रहेगा और इसको मिलकर आप प्राप्त करने के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई में आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय आपके शुभकामनाओं के लिए और आज आप यहाँ पधारे हमारे बीच इस समारोह में शामिल होने के लिए। Ladies and gentlemen, we will now have the signing of joint statement of understanding by Shri Sunil Kumar, Secretary Ministry of Panchayati Raj, and Dr. Rodrigo H. Ofren, WHO representative to India, to commemorate the occasion of iconic week for Azadi ka Amrit Mahotsav. Our heartiest congratulations to Ministry of Panchayati Raj and WHO. This is an iconic moment and a great achievement.
Ladies and gentlemen, taking the program forward, we now have a thematic video display on socially secured village from Arimata Gram Panchayat, Assam. भारत के पूर्वोत्तर छोर पर असम राज्य के कामरूप जिले की रंगिया तहसील का गांव अरिमट्टा गांव की ग्राम पंचायत ने समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाकर अपने गांव को सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले कुछ सालों में इस गांव का काफी विकास हुआ है। ग्राम पंचायत ने आवश्यक कदम उठाते हुए मंत्रालय के दिशा निर्देशों को लागू किया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को राशन एवं अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पंचायत और उसकी समितियां इन योजनाओं की सतत निगरानी करती है। ये गांव हमारे देश के विकास का अभिन्न अंग है। हमें एक राष्ट्र के रूप में ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना होगा और अपने गांव को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना होगा। पंचायती राज मंत्रालय इन गांवों को सक्षम बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है। सड़कों को पक्की कर दिया गया है। गांव में उपयोग होने वाले ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों ने इसे प्रदूषण मुक्त बना दिया है। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों एवं माताओं के पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य का ध्यान गंभीरता से रखा जाता है। गांव का कोई बच्चा टीकाकरण से ना छूटे, इस पर पंचायत का खास फोकस रहता है। अरिमट्टा गांव में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बराबरी से समाज के हर कार्य में भागीदारी करती हैं। मनरेगा और कृषि से जुड़े कामकाज में महिलाएं आगे आकर काम कर रही हैं। बच्चों को पोषण और गुणवत्ता युक्त आहार देने के लिए मिड डे मील योजना अरिमट्टा में पूरी तरह से कारगर है। पंचायत की इससे जुड़ी समिति लगातार इस काम पर अपनी नजर रखती है। अरिमट्टा ग्राम पंचायत ने सरकार की योजनाओं के बेहतर अभिसरण के साथ सामाजिक सुरक्षा का एक ऐसा ताना बाना बुना है जिससे अब गांव एकजुट होकर विकास की राह पर अग्रसर है। Dignitaries, ladies and gentlemen, the objectives of Sustainable Development Goals are that no one is left behind and inclusive development for all. The theme, Socially Secured, emphasizes that everyone in the village be cared for and provided social security, including people with disabilities. On the occasion of Azadi ka Amrit Mahotsav, there will be an e-book and a hard copy of an orientation training material on the 73rd Amendment and Panchayati Raj institutions in Braille for providing greater accessibility to people with special needs and disabilities. And today they will be released here by Shri Sunil Kumar, Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Shri Ravi Shankar Srivastav, Director General, IGPR and GVS, that is Indira Gandhi Panchayati Raj and Gramin Vikas Sansthan, Rajasthan. And I'll also invite Srimati Sumi Gupta, Director, Tatsat Foundation, to please join us on stage for the release. Tatsat Foundation works with the mandate of organizing the unorganized sector by focusing on social sector education and skill development. We now have the e-book which has been released by the pressing of a button by Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Shri Sunil Kumar. As you can see it on the screen. Thank you, sirs. Thank you, ma'am, for doing us the honors. And I now invite the team from Assam. We have team from Assam who is present here. May I request them to please join us on stage to felicitate the honorable dignitaries who are seated with us on the dais. आप सभी से अनुरोध है, असम से जो सरपंच आए हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है, आप मंच पर आकर सभी गणमान्य अतिथियों को गमछा भेंट करें और उनका अभिनंदन करें।
This is the traditional cloth which is worn by the local people from Assam, so they would like to present it to you. And today is the Thursday in Assam. Bahag Bihu. So, it is also a special day of celebration in Assam, is celebrating Rongali Bihu. So once again, here's wishes for Rongali Bihu to all of you. प्रियंका जीएस मैम को बुलाने स्टेज पे. Ladies and gentlemen, as we have all been witness to the signing of the joint statement of understanding between Shri Sunil Kumar, Secretary Ministry of Panchayati Raj, and Dr. Rodrigo H. Offrin, WHO representative to India, it is a momentous occasion and it gives me great pleasure to request Dr. Offrin to kindly address the August gathering. Please put your hands together and give a warm welcome. I get my Presentation would be small. I'm not ready for that. It's just a small introduction, nothing more. You can your presentation would be later. Okay, You can come. I can be here. Yeah, it's a this. Thank you. I thought it was time for my presentation. That's very hindi tora. Sorry. Speaking in English. But I'm very, very happy. We're very happy that WHO is a part of the effort to bring health to villages. I think if there is any other way to make the billions of lives healthy, it is through villages. Throughout the opening, we already heard the quote of the Mahatma Gandhi that the soul of India lives in its villages, and so does its health. So we're very happy to partner with the Ministry of Panchayati Raj. Of course, we are by nature already partners with the Ministry of Health, but to work in villages will be an absolute honor for us. We are already there. If you don't know, maybe later in the presentation, you will see what we are doing in villages, even before the pandemic. It's not just the pandemic. And we'd be very happy to see you sometime, all of us, coming to the villages and make sure that the goals of sustainable development are achieved. I think I will end there and will not move further, but thank you very much, Shri Sunil Kumar, Secretary of Ministry of Panchayati Raj, Shri N.N. Sinha, Secretary, Ministry of Rural Development, dignitaries on the dais. Of course, our first point of contact with Ministry of Panchayati Raj, Joint Secretary Rekha Yadav, who really solidified this for us and have something really concrete for us to get it to a healthy village. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Offrin. देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच मंच पर आसीन हैं श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डायरेक्टर जनरल, इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान। मैं हमारे माननीय अतिथि से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया सभा को संबोधित करें और अपने विचार सभा के सम्मुख रखें। Thank you very much.
Secretary Panchayati Raj and Secretary Rural Development, the representative, country representative from WH, our additional secretary, and all the participants. I'm really thankful and extremely grateful to the Ministry of Panchayati Raj for having supported us, encouraged us for the specific purpose for which I'm here. As you know, the theme of, as Mr. Sinha said, a healthy and secured village. And he mentioned is that while implementing various schemes of the government, those who are especially abled or those who are what we call physically handicapped, at times they are left out. We talk a lot about various schemes, various programs, the spirit of the government, our goals, objectives, but at times in our psyche we find there's nothing concrete for them. I have been greatly inspired by one of the officers in my organization at Jaipur, who is a 2012 batch Rajasthan Administrative Service officer. Is totally blind, but is very active and a spirited person. In all the meetings which we hold with Panchayati Raj representatives regarding various programs in development, one question which he always asks, are you capable of doing everything in life? Can you do everything? All of us suffer from some kind of a disability, but that does not mean that we should not be we should not participate in the process of development. That is one thing which has been the inspiring source for me to engage with Ministry of Panchayati Raj. I'm extremely grateful to Rekha Yadav ji, who not only supported the initiative, but displayed tremendous amount of commitment and encouragement. Rekha, thank you very much. I'm also very grateful to Ms. Sumi Gupta, who heads an organization called Tachat Foundation, a non-profit organization. And in fact, she was the one who worked at a very short span of time, overnight, to get this literature, this training orientation program developed. This program is not meant only for this booklet. This book is not meant only for those who are completely blind, but this is also for those who are partially blind. We generally do not develop literature for those who are partially blind. This is going to be developed into sign languages also and will be available through a mobile app anywhere and everywhere in the country. This is the first of its kind which we have taken the initiative to develop, and I hope with the support of the Government of India, with the support of my team members, with the support of the foundations like Tashrat, we'll be able to develop in due course our entire training program, training material for this segment. Secretary MOPR expressed this morning a view that we do not have a statistics regarding how many such people are there and for whom it will be useful. But as all of you know, in due course of time, or as all of you know, we are aware, every panchayat, every block in the country, they have this kind of, the persons available. Like Government of India has a policy of reservation in jobs for physically handicapped, which runs up to, I believe, 2.5% or 3% of the entire population of the country. We have enormous number of panchayat representatives available in the country after the 73rd Amendment, which has taken place. And the participation in the democratic process is unprecedented in the world. So we cannot, I assure you that in times to come, we'll have the statistics available for this segment also. I would request all the representatives of SIRDs of other states also that this literature, this program, this will be available in whatever language you feel conducive for the purposes of your representatives or the recipients of the trainings. Not taking much of the time, I once again thank all of you for having heard me patiently and giving me this opportunity. Thank you very much.
Thank you, sir, for being a part of this initiative. Thank you. I now request Dr. Chandrasekhar Kumar, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj, to kindly propose the vote of thanks. भारतवर्ष के 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस महोत्सव में पंचायतों के नवनिर्माण के संकल्पोत्सव का हम पालन कर रहे हैं और उसकी कड़ी ये 7 दिन तक कार्यक्रम चल रहा है और उसकी कड़ी में आज चौथे दिन हम 2 थीम रखे हैं, हेल्दी विलेज का और सोशली सिक्योर्ड विलेज का। तो इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सूचना दी और बताया कि कैसे हम गांव में अपने स्तर पर ही बहुत सारे कार्य करके अपने गांव को स्वस्थ बना सकते हैं और सभी लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी मेगा स्कीम और बहुत ऐसे बड़े बड़े फंड की जरूरत नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि हमें इतना पैसा आएगा तभी हम कर पाएंगे, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने स्तर पर हमारे पास जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हीं कार्यक्रमों को सुनियोजित तरीके कर हम अपने गाँव को स्वस्थ बना सकते हैं और अच्छे बना सकते हैं, इसकी जानकारी आपको दी गई। उसके बाद हमारे आदरणीय सेक्रेटरी श्री नागेंद्र सिन्हा जी जो आरडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमारे गांव में केवल जो स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए और कैसे गांव को हम अच्छे बना सकते हैं, गांव के सभी लोगों को हम उनकी बेसिक सुविधाएं दे सकते हैं। तो अभी सरकार के जितने कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम को ही हम अगर लोगों को समझा पाए, लोगों तक अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसको संवाद दे पाए और उनकी सबके भागीदारी अगर हम सुनिश्चित कर पाए तो उनको ये जो जितने भी हैं, ये जो बहुत सारी इंडिकेटर, बहुत सारी जो हैं अगले जो हमें जो SDG गोल के जो 2030 तक पूरे करने हैं वो बहुत आसानी से हम अगले 3-4 वर्षों में ही कर सकते हैं अगर हमारी इच्छा शक्ति हो और अगर हम उस कार्यक्रम में सबका सहयोग ले पाए। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। देयर आफ्टर आई एक्सटेंड माय हार्टी ग्रीटिंग्स टू डॉक्टर रोड्रिको H. Oferin, who is the representative of वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उनके साथ जो आज एग्रीमेंट, ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ है और उसमें जो जो कार्यक्रम होने हैं तो उस कार्यक्रम को गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारी ही नहीं है बल्कि आप लोग जितने लोग आए हुए हैं सारे देश के कोने कोने से उन सभी की है और हम आशा करते हैं कि निश्चय आप इस कार्यक्रम को आगे गांव तक लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारे श्री रविशंकर श्रीवास्तव जी हैं जो DG IGPR एंड GVS हैं, जो कि अभी एक उनके साथ एग्रीमेंट हुई और जो कि एक ब्रेल लिपि में हम विभिन्न लोगों को जो हमारे लोग थोड़ा जिनको प्रॉब्लम होती है उन तक हमारी बातें पहुंच सकती है। तो ये जो कार्यक्रम जो हुई ये सब आगे भी हम चर्चा करेंगे और आप लास्ट व्यक्ति तक हर एक गांव में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद हमारे आज की जो कार्यक्रम की जो संचालिका है श्रीमती रेखा यादव, जिन्होंने आज के दिन का सारे कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे मंत्रालय के सभी जो मेरे कलीग्स हैं और गाँव से आए हुए आप जनप्रतिनिधि विभिन्न पंचायतों, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, और आप लोग 3-4 दिन से यहाँ पे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको आप आगे लेकर निश्चय गांव तक जाएंगे। धन्यवाद। Dhanyavad, Dr. Kumar. And ladies and gentlemen, with that, we conclude this morning's first session. We would once again like to thank all the dignitaries who are seated with us on the dais and all of you for having joined us for this session. We start the next technical session at exactly 11:30 a.m. So please do join us in time. Meanwhile, may I take the opportunity of inviting you all to please join us for tea break. Thank you.
Raj. We warmly welcome Shri Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. Also seated with us is Dr. Rodrigo A. Tofrin, WHO representative to India. We warmly welcome Dr. Chandrasekhar Kumar, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Srimati Pallavi Kumar, Advisor, RMNCHA, USAID, NISTA, Japaigo Corporation, India. A warm welcome to Srimati Rekha Yadav, Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj. देवी और सज्जनों, आप सभी से हमारा अनुरोध है, कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हॉल में शालीनता बनाए रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंच पर गणमान्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। हम सेशन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आप जितना जल्दी हमारा सहयोग करेंगे हॉल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उतना जल्दी हम इस सेशन की शुरुआत कर पाएंगे। एक बार फिर जो लोग नहीं बैठ पाए हैं, आप सबसे अनुरोध है, जल्द से जल्द जहां आपको जगह मिले कृपया बैठ जाएं। I request Dr. M.A. Balasubramanya, Advisor Community Processes, Comprehensive Primary Healthcare, Ministry of Health and Family Welfare, to please join us on stage. Good morning and a warm welcome to the post-tea session. We are ready to start this session, which is being chaired by Shri Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. माननीय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और इसी के साथ मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे कृपया सेशन को कंडक्ट करें और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सचिव महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपने विचार सभा के सम्मुख रखें। मैं रख लेती हूँ। स्वस्थ गांवों के संबंध में इस सत्र का प्रारंभ करते हुए खुशी है और मैं आप सबका इस सत्र में स्वागत करता हूं। मेरे साथ मंच पर आसीन सचिव पंचायती राज मंत्रालय श्री सुनील कुमार, WHO के भारत में अतिथि डॉक्टर रोड्रिगो ऑफरेन, स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव और अन्य पदाधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरी पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय, साथ ही डॉक्टर बालासुब्रमण्यम और सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण जो इस वेबिनार में या सेमिनार में मौजूद हैं। जब हम स्वस्थ गांवों की कल्पना करते हैं और उस पर विचार करते हैं तो ये केवल इससे संबंधित नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है, ये इससे भी संबंधित है कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, गांव में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, गांव में और ग्राम पंचायतों में बालिकाओं और महिलाओं के कल्याण को लेकर क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तब एक स्वास्थ्य की संकल्पना बनती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लंबे समय तक ये माना जाता था कि स्वस्थ रहना
या स्वास्थ्य वो होता है कि आपको बीमारी न हो, और अगर बीमारी हो तो अस्पताल हो, अस्पताल हो तो अस्पताल में इलाज हो। लेकिन अपने आप में स्वास्थ्य ये नहीं है। स्वास्थ्य की संकल्पना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज एक्सपैंडेड, तो वो स्वास्थ्य से वेलनेस की तरफ वो संकल्पना गई है। उसका अर्थ ये है कि मेरी शरीर, मेरी काया निरोगी कैसे रहे, इस पर भी विचार हो। उसको कहते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, यानी मुझे रोग हो ही ना, मैं रोगों को कैसे रोकूं, तो वो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। गांवों को होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों को होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। उसी तरीके से एक प्रमोटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ होता है, बेहतर खाना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ईट राइट। फिजिकल एक्टिविटी, मैं योग करूं, पैदल चलूं, दौड़ूं, साइकिल चलाऊं, ये सब भी स्वस्थ रहने के उपाय हैं, तो उसको प्रमोटिव एस्पेक्ट कहते हैं। तो एक है कि मुझे रोग ना हो, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। दूसरा है कि मेरी गतिविधि, मेरा खाना पीना, मेरा आचार व्यवहार ऐसा हो कि रोग ना हो, वो प्रमोटिव एस्पेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई रोग हो ही गया तो नजदीक में अस्पताल हो, डॉक्टर हो, दवा हो, इलाज हो, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। तो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, ये मिलकर स्वास्थ्य की संकल्पना बनती है। और स्वस्थ गांव तभी हो सकता है जबकि जो पीएचसी आपके नजदीक में कोई होगा, या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा, या सब सेंटर होगा, वहां के डॉक्टर, वहां की एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जिसको हम कहते हैं, वहां की आशा कार्यकर्ता, ये तो काम करें ही, लेकिन गांव की आंगनवाड़ी की सहायिका और सेविका भी काम करे। गांव में जो पंचायत के सेक्रेटरी हैं अगर हैं तो वो भी काम करें। गांव में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वार्ड के मेंबर हैं, वो भी काम करें। जो वहां प्राइमरी स्कूल चल रहा है या मिडिल स्कूल चल रहा है, उसके टीचर भी काम करें। तो ये जब सारे लोग मिलके काम करते हैं तब स्वस्थ गांव की संकल्पना को हम जमीन पे उतार सकते हैं। तो ये तो पृष्ठभूमि थी, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्ञानी व्यक्ति यहाँ हैं जिनको आपके साथ संवाद करना है। और मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर एम.ए. बाला सुब्रमण्या से, जो एडवाइजर हैं कम्युनिटी प्रोसेसेस कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर मंत्रालय के, कि वो आपको संबोधित करें। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है आपका, एंड ही विल ऑल्सो बी मेकिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू यू, and then we will take the proceedings of this technical session forward. So Dr. Bala Subramanya, please. Good morning, sir. Respected Chair, Secretary of Ministry of Panchayati Raj, all the dignitaries on the dais, and all the participants of this important collaborative event. In fact, it gives me a great honor and privilege to be amidst you, because I've lived most of the time in a village and spent more than 30 years of my life working with the tribal and rural folk in Karnataka, and hence could actually connect with you people more easily to understand what challenges you go and what is the opportunities that exist. We are talking about the role of Panchayati Raj in terms of, or as Panchayat Raj institutions, what can you do for public health? How many of you have actually visited a health and wellness center nearby? You know, there are more than 1,17,000 health and wellness centers in the country. And has anybody visited a health and wellness center nearby?
गया है कभी? आपने जो विजिट किया पीएससी से जो अभी तो आप ठीक है, good. The health and wellness centers are a new dimension that has come up in the country. Probably it is the new backbone of our public healthcare delivery system, and in that context, the role of the panchayats is extremely important, because if you look at, barring about 6,000 facilities at the urban areas, the rest of all are more closer to the rural areas. That means nearly 66% of our population are served by nearly 1.9 facilities, 1.9 lakh facilities. If I look at the utilization of those services, there's a lot more to actually realize. If I look at the overall effort from the Ministry of Health and Family Welfare and the departments of Health and Family Welfare in the states, I think there is a tremendous supply push all along. But what is actually happening in terms of the supply is, it is becoming underutilized and, more important, made less accountable to. I think in both these contexts, people over here have a phenomenal role to play. And I would urge all of you to look at these dimensions. When India makes a commitment on sustainable development goals to the world, it means that each of us as a citizen has made a commitment for that goal. And when we are talking about sustainable development goals, if India has to achieve, all that we have to do is achieve those goals in the area that we all function. So let us not have very big dreams, large milestones, nothing. Look at your 5,000 population, look at your 7,000 population, look at your 25,000 population, because the Panchayat Raj, Gram Sabhas are of different sizes. And each Sabha, if it is able to look at, the Gram Panchayats are able to look at all the SDGs in their area, India can achieve anything. And this is the prelude that I would like to give when I look at this. So when I look at the sustainable development goals, there are 17 goals. Out of that, what we are discussing today in this session is all about one sustainable development goal that is related to good health and well-being. This is India's commitment to achieve by 2030. What has been listed on the board is our commitment as a nation to the world. But if I look at the indicators that we have actually achieved, you would say, for a maternal mortality rate that we have to get, that means mothers who are saved, mothers who who escape any sort of challenges in reproduction this month, we are still a long way to go from 70, because 70 is our goal by 2030. We have got 113 right now. And believe it or not, when I was studying medicine, it was 400. So you may immediately say 113 is much lower than the 400 that we saw in the last 30 years. So we have made a tremendous progress. I completely agree with you. But all of us have gone through the education system. To score a pass, not very difficult. After that, to become a first-class student, a little more effort. But after the first class, to get a distinction, मेहनत बहुत करना पड़ता है. और distinction के बाद अगर rank जीतना है, और भी मुश्किल हो जाता है. And if India is now, it is now on the race towards distinctions and ranks, and not in terms of a pass class. And that is where effort of every citizen here, sitting over here, who has the authority and the privilege and the responsibility should actually connect with this. So if 113 has to become 17, a 36 has to become 25, or a 37 number of physicians and nurses. We have so much of population, but still we have challenges in terms of finding the right people, and right people with the motivation to serve within the public healthcare delivery system. We have only 37, we want 45. And this is for every 10,000 population. Tuberculosis, India has made a commitment while SDG looked at 2030, the tuberculosis forum actually looked at 2035 to achieve.
the Honorable Prime Minister and the country has made a commitment that we would achieve in 2025. That means we need to gallop ourselves, not just move, to achieve what we want to achieve in terms of... What does it mean? There are only 3 things to achieve. We need to ensure that the death rate reduces by 90% because of tuberculosis. Any new case that we are finding has to be stopped. At least there should be an 80% reduction straight away. And third thing, which is the most important thing, is the catastrophic expenditure that people incur because of disease. In case of tuberculosis, there is no reason why it can become zero. If we can achieve these things, then probably we would be free. And that is what we all need to work on. So HIV, we have come a long way. It is now closing up to 0.05, but it has to become zero. So per capita expenditure on health, this is where the panchayats have a big role to play. Sir was already sharing about prevention, promotion, wellness. All these things means our expenditure actually comes down. And that is where 13% can drop to less than 50% of it. That means it should be around 7. And total deliveries has to reach 100%. And children immunized should reach 100%. And all of them is achievable at the village level. We are not even talking about the ministry and sitting at Delhi to look at these elements. So all it requires is an effort to plan. So what should panchayats do? There are 5 roles that we can immediately look at. One is to facilitate. Second is to promote things. Some of those things are just easy activities of educating people, but there are some responsibilities as governance structures. You have to ensure some things to happen. You have to maintain and monitor things happening. So these governance functions are equally important. So what opportunities exist for you people to do it? Facilitate. There are many things. The simplest thing is to do a social audit. Can you do a social audit of your health and wellness center? And that can happen only when you have visited that place. You know what is supposed to happen there. Second, we have the world's largest assurance scheme or an insurance scheme with respect to the health after the Ayushman Bharat was launched. The health and wellness centers are 100% free for all, from womb to tomb, if I want to put it crudely. From pregnancy till palliative care, everything is free. So if I look at that, beyond that, for 40% of our poor people, we have the golden cards under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Can't we facilitate providing cards to our people? Third, non-communicable diseases are raging in this country. Today, we are a country with triple burden. What is the triple burden? We have a problem with malnutrition, which is both obesity and undernutrition. We have a second level category of diseases, which is about non-communicable diseases, which is purely lifestyle diseases. And third side, we have got the technology related diseases. It could be a road traffic accident because the roads have become good and vehicles have become fantastic. Or it could be because of issues related to pollution, which is actually costing us both respiration and cancer, respiratory problems and cancer. All 3 exist within our system and all 3 are preventable. So there are programs, national programs for each of it. All that we have to do is look at our functionaries at the grassroots level. And who are the functionaries at the grassroots level? It is you people with the Gram Sabha who select the Asha, who has become a household name, especially after COVID. And if your selection is proper, then she has a triple role. She provides services for certain things. She facilitates a lot of services. All the facilitation we are talking about, you can get it through this one. And the third thing is, she can also be an activist, ensuring the providers play the correct role. So all 3 roles she can actually play. And that requires the support of the functionary sitting over here. Apart from that, the 15 Finance Commission made a landmark decision granting for the primary health care in rural and urban areas directly to the panchayat and the urban local bodies. That provision is also there. You need to facilitate rational utilization of those funds. If I look at promotion, the first and the foremost thing I would like to say is Ayushman Bharat Health and Wellness Centers should be promoted by you. Why? Because 70% of the problems, morning in the session, there were certain of the dignitaries who spoke about saying that, okay, we also have a role to play in health.
and health ministry is not the only one which has to play. I will put the other way around. It is only when you play, health ministry has more little role for us to play. Okay, we want, because when you talk about prevention, promotion of health, even rehabilitation for people who are actually affected by health, or a palliation for a person who is actually dealing with, requires more of psychosocial support, emotional support, spiritual support, as well as economic support. It's you people who actually play the role. Health can only play a role of curative setup. So in that context, the role is immense. So if you can look at Ayushman Bharat Health and Wellness Centers, 70% of your problems can be solved at local level with no cost. 20% with the current teleconsultation, you could get specialist consultation. So nearly 85 to 90% of the people can get all services locally. And all that you have to see is 10 to 15% of the people who have to reach up to the higher level, which actually means you'll be unburdening the higher level care center, reducing the cost burdens, and also removing the challenges of transport, wages, etc. So, and ensure every facility to make it accountable. We have an oversight committee called Janarogya Samiti, and the Panchayat member is the elected Panchayat member of that area. The Panchayat Adhyaksha of that area in some places are the chair. So if you can ensure that they are created on time and have a meeting once a month, every month, we would be able to do that. Maintain and monitor. Mere facilities doesn't matter. The facilities should be of certain quality. Okay, even when you had tea, you would have expected some taste over there. So it is not just a feeling of saying that facilities are available. It is to ensure quality, and I would hold panchayats directly responsible and direct authority to actually ensure quality of services. And finally, I would look at, for a healthy village to look at, you see all dimensions, whether it is all the lifestyle changes that Secretary Sir actually shared with you, whether cycling or eating right things, or weaning away from tobacco, or even a chula in the house, all these things is possible, and then you can prevent all the diabetes and hypertension. The quality could be assured, and financial barriers would then be eliminated over there. Intersectoral convergence, we are talking about Ministry of Health and Ministry of Panchayat Raj, Ministry of Rural Development all sitting together. Panchayat is the only level where all line departments up to 29 can be working together. And this is the place where everybody can talk to each other comfortably, and all of them can have one focus, that is citizen centricity for overall progress, and ensure healthy, educated, and economically viable citizen. And promote health and wellness for these. And now we have additional things called Pradhan Mantri Ayushman Bharat Infrastructure Mission. And that also there is grants. I already spoke to you about it. I will share the presentation with all of you. And there are a lot of evidences in the field of, especially we spoke about COVID in the morning, at all levels of prevention, isolation, quarantine, follow-up, okay, and support. Everything at the panchayat level, COVID has proved that our people are capable of delivering it. And I think we should be able to get this. Use these mechanisms of ASHA, as well as the Janarogya Samiti, the village health and sanitation and nutrition committees, at least on a campaign mode in these VHSNCs, to ensure that we are able to plan, think for our people, plan for our people, deliver for our people with the resources. I heard that yesterday and day before yesterday, you even talked about various modes of tax collection, and I'm sure that resource mobilized would be of immense value when you do this. So thank you very much. I will not take more time of yours. Dhanyavad, Dr. Balasubramaniam. Ladies and gentlemen, our next speaker is Dr. Rodrigo A. Chofrin, WHO representative to India, and he shall be talking about emerging public health issues in the rural context of India. Please put your hands together and give a warm welcome. Thank you very much. More than just the health problems in the rural areas, I'll be talking about how do we support healthier gram panchayats. So good morning, Shri Rajesh Bhushan, Secretary Health, Shri Sunil Kumar, Secretary, Ministry of Panchayati Raj, dignitaries and speakers on the dais, and all of you. I think the question is, what is a healthy village? And that is something we would need
for you to answer. Your village will all have different needs. Okay, Dr. Balasubramaniam said triple burden. I'm just simplifying to dual burden, double burden, non-communicable and communicable. So there are non-communicable lifestyle diseases, heart disease, hypertension, diabetes, cancer, mental health, and injuries. But there are also communicable diseases, tuberculosis, TB, malaria, leprosy, measles. So these are still existing. In 1990, the top 3 causes of death in India was primarily communicable diseases. Second was non-communicable diseases, and then injuries. But there was a shift. 30 years later, you had ended polio, you have dropped the cases of TB. We also heard drop in maternal mortality rate, such that in 2019, there is a shift. So non-communicable diseases increased. Before, this was always thought as diseases of the rich, diseases in cities, but this is everywhere now. Communicable diseases have decreased, definitely. By data ranging from different diseases, it's 10 to 25% decrease, but it is still there. And with India's magnitude, the numbers are high. So even health emergencies, such as that of COVID, or even a natural disaster in many areas, you can have flooding in Kerala. There is a regular monsoon flood in different parts of the country, an earthquake. It can put an extra burden, it delays. And the most recent one was COVID. So to address those diseases, there was a stop. There was a halt in how those diseases would be monitored, surveyed, and treated. What are the leading health problems in rural India? Definitely in the areas of communicable diseases, infectious diseases. We still have 1.7 million people with TB every year. Many of them do not even probably know because they won't come as symptomatic. And it's only when severely symptomatic, when the cough is bad, then you start diagnosing. 1 to 5 new cases of leprosy per 10,000 population. So multiply that, that's also huge. 137.6 million people at risk for Kala-Azar. Although there is so much progress in this, I will tell later. 650 million persons at risk of lymphatic filariasis. This is hatipao, you know, big legs, and yeah. It's caused by a small filaria parasite. Non-communicable diseases, lifestyle diseases. 1 in 3 adults use tobacco. And mainly it's not smoking, it's chewing tobacco, which gives different types of cancers as well. 169 million adults have high blood pressure. This is an estimate, but there is a rule of halves here. 1/2 of the 169 million do not know they have hypertension. Those who know, half of them are not treated or don't complete, or treatment for hypertension needs to be regular. 50 million people estimated have diabetes. And that's huge. 90 million persons need mental health care. When you look at the numbers, this is almost like countries. We are in the number of countries that have these diseases. 1 in 2 women have anemia, so there has to be a focus on this as well. And 1 in 3 children under 5 is underweight. So the message is we're still having to deal with communicable diseases, although the technology, medicines, ways of surveillance are already there, so there has to be a push. But the new diseases, which are slow and chronic, also need to have a focus. They need to be picked up. And why this is all important is because India is entering this demographic dividend. Through the next 30, 40 years, the population of India will be young and productive and therefore will contribute to the economy. To provide
to provide that contribution, that population needs to be healthy. So this is the most important part about this. This was a picture we took when I went to Darbhanga in Bihar. So these are your Ashas, Anganwadi workers. We were also with a Panchayati Raj rep. So this is just to say that we are also out there with you. It's not as if we just come to places to speak to you. Our teams are almost in all states now in India. What is our work? To help reduce disease risk, tobacco and alcohol control advocacy and policy, information on unhealthy diets, air and water pollution, information policy development, vaccination, which is from, just thinking about the COVID vaccination, from the planning to the training to the monitoring, it's a whole set. And that's also a big support, and we're also supported by the government in India for routine immunization and prevention of outbreaks. In another area, elimination of diseases. Many of the communicable diseases are already in their last mile of being eliminated, and we need your help to reach that last mile. Tuberculosis, the goal is 2025. Kala-azar, leprosy, and filariasis are in very limited areas already. Malaria, there are high burden, but there are also very low burden states. HIV, hepatitis, you saw, we're almost reaching the SDG goal. Measles and rubella, for the first time in many years, India has reached the global standard of surveillance of discard rates for non-rubella, non-measles, because sometimes it presents as fever with rash, but it is not measles. So there is a lot of confirmatory labs. So that's already going on. Strengthening health services, we have also teams in states specifically located in aspirational districts to support this. Comprehensive primary health care, the India Hypertension Control Initiative, respectful mother and child care are some of our work. Skilled health workers, part of the training. Health financing, so supporting how to roll out the Ayushman Bharat. Not just at New Delhi but with NHA, but also in states. And access to medicines and vaccines. Reducing disease risks, what we do. A lot of community engagement through targeted campaigns. Secretary was also saying that the language should be a local language. So many of our materials in our website are actually translated always in 10 languages. COVID materials, so we will move further into this, whether some of these are in health and wellness centers as well. If we're trying to reduce risks, we have to reduce, let's say, tobacco use, then for example, BD rollers will lose their jobs, but there has to be a help in reskilling them. And so the idea is for health to advocate for that to happen with other sectors. So sadly, it is usually women and girls who are BD rollers. That has to end the risk, we also need to support new livelihoods. Vaccination is a huge part of our work, advocacy with the community, with our staff in the field. There is always hesitancy, there is always children who are missed, especially recently with COVID. But also monitoring the quality of progress. Even for COVID alone, there are already around 800,000, 8 lakh sessions monitored for what is missing, etc. And that's a very comprehensive report that's received daily everywhere. Elimination of diseases. One is TB Mukt Bharat. And these are different types of roles we do. Case notification, diagnostic services and medication, we try and confirm. These diagnostics, the diagnosis of certain patients of TB, ensuring that medication reaches and taken regularly, so it's a monitoring role. And of course, surveillance and monitoring, house to house.
These are our teams in the field. The last mile for Kala Azar elimination, it is now in just 2 states, 12 districts. That's where we are. If I'm not mistaken, 2 states, 12 blocks, I think. Just a minute. Yes, 2 states, 12 blocks. It's in Jharkhand and Bihar. 10 years ago, it's in 670 blocks in 4 states. So this is already close at hand. And when it's the last mile, the solutions lie in villages. The solutions may lie outside the healthcare sector. So disease surveillance and management, that can continue. Indoor residual spraying, so the sandfly doesn't live in the house, but maybe the solution in many of these blocks now is actually making paka houses and not mud houses anymore. So in Jharkhand, this was already taken up by Ministry of Urban Development and Housing. Capacity building, a lot of training for the community to understand what the disease is, because you are the health champions as well. Our health is in our hands at this point, when it is at the last mile and understanding disease. And community mobilization. Elimination of lymphatic filariasis, that's what I was saying. It's called the local term hatipao. Mass drug administration. This has to happen regularly. Even during COVID, we had to do it. All health workers such as were providing this, and even we had the Katori method, because you cannot be touching. So it's all by cups. To prepare the community for a mass drug administration, we need your help. To execute it the same way, and then monitoring after. It has to be on schedule. Otherwise, if it is not on schedule, there will be more of the parasites that will be in the community. Camps for surgery for patients with the big legs, also because of the lymphatic blockage. So we organize those, help organize those. Motivating people for drug consumption, because there is hesitancy. Again, this is where we can all partner. Self-care and demonstration to patients on how to take care of the legs of filariasis patients. Strengthening healthcare services. One is community mobilization through Jan Arogya Samitis, practically training and giving knowledge to health champions so that you are partners in this. Supporting health and wellness centers. The 117,000 health and wellness centers is the entry point for primary health care. It is the basic infrastructure of primary health care, and I think the largest in the world in terms of a network. And so it is the starting point. If you don't feel well, please go to a health and wellness center. And that is where we would like to support in terms of quality of services. And of course, engaging with healthcare providers wherever they may be for training, for vaccination. Last is bringing healthcare services closer to home. The problem should not be access any longer. The government has so much investment. Ayushman Bharat, it's 3 pillars: health and wellness center, health and wellness centers, UHC, the insurance scheme, and the health infrastructure mission. What else can it provide? But it, in terms of an investment for the health sector. But what will bring health to people is actually people themselves. It's the services, it's the access, and bringing this closer to home. Drug delivery at the doorstep. This is happening now with the India Hypertension Control Initiative. From a supply of 1 month, it turned into 3 months during COVID. So throughout the lockdown, no hypertensive patient didn't have their medication. Telemedicine and hypertension, for hypertension and diabetes, again, very possible for follow-up. This is a very simple app, both patients and, healthcare workers are tracked with this app. Respectful care for mother and children, a big initiative for us.
And this is just to end. What is a healthy village? What is a healthy village is that also something you will all define. The diseases of one village or the health goals of another village will not be the same, and the solutions will all be different as well. There are local solutions, your solutions to your own health problems. Our role is to support. We are working closely, of course, with Government of India now with 2 ministries. We're very happy with this. Transitioning government policies to really practice universal health coverage, focusing on tribal, marginalized, vulnerable populations, and communities to receive quality healthcare services without suffering financial loss. This is really the bigger goal. We are around the network of around 2,000 personnel all over the country, and we are present in all states. And also together with other UN agencies, we're able to leverage that presence to achieve this goal of a healthy village, to localize the SDGs and achieve this all even before 2030 with Government of India. Thank you. सलामत डॉक्टर ऑफरिन। और अब मैं माननीय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि वे इससे पहले कि मैं अगले वक्ताओं को आमंत्रित करूं, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने आपसे क्या संवाद किया। वो बेसिकली ये बता रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की योजना है, जिसमें देश भर में इस समय 1,17,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं। कुछ आपके गांवों में, आपकी ग्राम पंचायतों में भी होंगे। वहाँ ग्राम पंचायत के सदस्यों की, पद धारकों की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे उनके कार्यों पर बेहतर निगरानी, चाहे वो सोशल ऑडिट के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो, रखी जा सकती है और उनकी क्वालिटी या गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आपको ये भी बताया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा है कि 2030 तक कुछ क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, शांति व्यवस्था का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हम किन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, और उन लक्ष्यों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, SDGs। तो उसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है। तीसरे नंबर का जो लक्ष्य है वो स्वास्थ्य और वेलनेस से संबंधित है। तो उसमें जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कैसे सहयोग कर सकती हैं कि भारत उन लक्ष्यों को प्राप्त करे, उसके बारे में भी डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने आपको बताया। उसके बाद डॉक्टर रॉड्रिको ऑफरिन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के भारत में जो उनका दफ्तर है, कार्यालय है, उसके प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि भारत में स्वास्थ्य की समस्या एक डुअल बर्डन ऑफ डिजीज की समस्या है। यानी एक तरफ कम्युनिकेबल बीमारियां हैं जो फैलती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, काला आजार है, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है। इस तरह की बीमारियों का एक चुनौती है। दूसरी चुनौती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, यानी हार्ट की बीमारी है। कई लोगों को आपने सुना होगा बाईपास करना पड़ता है या स्टेंट लगाना पड़ता है। डायबिटीज की बीमारी है, जिसको आप कहते हैं कि इनकी शुगर बढ़ गई है तो उनको दवा लेनी पड़ती है, या डायलिसिस, जिनको ज्यादा बिगड़ जाता है उन्हें डायलिसिस लेना पड़ता है, या हाइपरटेंशन की बीमारी है, या कैंसर है। तरह तरह के कैंसर हैं, कैंसर ऑफ सर्विक्स है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैंसर है। जो लोग टोबैको, तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, चबाने वाला तंबाकू हो, उन सबको ये संभावनाएं ज्यादा रहती हैं कि ओरल कैंसर हो जाए। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। तो दोनों प्रकार की बीमारियां, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की चुनौती है, और उससे कैसे निपटा जाए,
कैसे जानकारी प्राप्त करें और कैसे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से उस जानकारी को अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने वार्ड में फैलाएं, लोगों को बताएं कि अगर आपको चाय पीनी है तो जरूर पीजिए, लेकिन उसमें 4 चम्मच चीनी डालने की क्या जरूरत है, वो आधा चम्मच की भी पी सकते हैं चाय। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, अनेक प्रकार के। जैसे आप कह सकते हैं कि लोग फल और सब्जी ज्यादा खाएं, अनेक फल हैं जिनके माध्यम से आपको चीनी मिलती है, उसको ये साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। यानी वो सीधी चीनी खा लेने के अनुपात में भिन्न है, लेकिन वो आपकी शरीर की जो चीनी की आवश्यकता है उसको पूरा कर रहा है। तो ऐसा क्यों ना करें। वैसे ही जितना आप नमक सब्जी में डाल लेते हैं 2-2, 3-3 चम्मच, उसको कम करें, क्योंकि जो लोग हाइपरटेंसिव या उस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं उनको नमक का कम से कम सेवन करना चाहिए। लेकिन अनेक फल और सब्जियां ऐसी हैं जो आपको वैसे ही नमक उपलब्ध कराती। तो ये जानकारी हो, इस जानकारी का प्रचार प्रसार करें। साथ ही डॉक्टर ऑफरिन ने आपको ये भी बताया कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है भारत में, वो किस प्रकार के कार्य कर रहा है, कैसे वो समुदायों की मदद करता है, कम्युनिटीज को मदद करता है, और कैसे वो समुदाय में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो आशा हो या एएनएम हो या अन्य कर्मी हो, उनकी कैसे मदद करते हैं, उनका प्रशिक्षण कैसे करते हैं। तो ये 2 आपके समक्ष प्रेजेंटेशन हुए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती पल्लवी कुमार को, जो एडवाइजर हैं और जो आपके समक्ष बात करेंगी इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ इश्यूज पंचायती राज संस्थाओं के कॉन्टेक्स्ट में, और संभवतः उनके साथ बेली जोरा ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ की सरपंच भी हैं श्रीमती सरिता बघेल, वो भी हैं जी सर। हाँ, तो ये दोनों लोग अब आपसे संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सशक्त, स्वस्थ और समृद्ध समाज, हम इसकी सिर्फ परिकल्पना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आजादी के 75वें वर्षगांठ जो कि अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, उसके ओर हम अग्रसर भी हैं। सबसे पहले मंच पे जो रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी Ministry of Health and Family Welfare, respected Secretary Ministry of Rural Development, Additional Secretary Rural Development, Joint Secretary Rural Development, Dr. Balu from Panchayati Raj, extremely sorry for that, Dr. Balu from NHSRC and Dr. Rodrigo from WHO India. नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी कुमार है और मैं जपाइगो संस्था को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जपाइगो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 50 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। हम महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और शुरुआती हमारी महिला और बच्चों के स्वास्थ्य से हुई थी। अब हम काम को आगे बढ़ा के कैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर कर सकते हैं, इसके साथ ही हम काम कर रहे हैं। जो जपाइगो है उसके अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें से एक जो कार्यक्रम है जो कि यूएसएड सपोर्टेड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है निष्ठा, उसके द्वारा हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं और कैसे समुदाय में और समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। खासकर डॉक्टर बालू ने एंड डॉक्टर रोड्रिको ने बोला कि जो जन आरोग्य समिति है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की गई है, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में कैसे ला सकते हैं ताकि एक बेहतर हेल्थ सिस्टम को हम बना सके, ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो टू मेक सेल्फ रिलायंट एंड रेजिलिएंट कम्युनिटी। तो हमारा फोकस वही है। अभी आपको कार्यक्रम के बारे में हम एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आई थिंक हम लोग सब जानते हैं कि क्यों आज ये जरूरत पड़ी कि जहाँ पे हम पंचायती राजों के साथ स्वास्थ्य के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जो डिसेंट्रलाइज्ड पावर है वो आपके पास है और आपकी
आपकी भागीदारी और आपका सहयोग बहुत जरूरी है कि हम बेहतर हेल्थ की कल्पना कर सके, और सिर्फ अपने लिए नहीं, हर एक व्यक्ति और खासकर जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो लास्ट माइल जो पॉपुलेशन है, उनके तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो जन आरोग्य समिति का गठन हुआ है, वो बेहतर रूप से काम करे। और सुबह में सर से भी बात हो रही थी कि ये किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो और आई थिंक पीआरआई से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि सारे विभाग कहीं ना कहीं आप में ही जाके समावेश होते हैं, इसलिए आपकी भागीदारी, आपका जो दायित्व है वो बढ़ जाता है। तो अगर पंचायती राज प्रतिनिधि अगर इस चीज को ठान ले तो हम एक बेहतर और स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी, और ये वीडियो सिर्फ हमारे कार्यक्रम के बारे में नहीं है कि हमने क्या किया, एक ये जर्नी है मिस सरिता बघेल की, जो सरपंच हैं सूरजगढ़ छत्तीसगढ़ से, और ये आज हमारे साथ भी आई हैं। तो पहले वीडियो देखेंगे, फिर इनके विचार भी सामने रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो एक गृहिणी, एक मां, एक पत्नी, एक सरपंच। आइए मिले अपनी हर भूमिका को बखूबी निभाने वाली श्रीमती सरिता बघेल से। सरिता बघेल छत्तीसगढ़ के बेलजोरा समुदाय के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सरिता बघेल ने स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए समुदाय में निरंतर प्रयास और वकालत की। सरिता जी की पहल से आज एक आत्मनिर्भर और स्वच्छ पंचायत के निर्माण के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। बेलजोरा जैसे समुदाय के सदस्य अक्सर सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हालांकि इन संसाधनों के असमान वितरण और जागरूकता की कमी के कारण कई गांवों को कितनी बार खतरनाक स्वास्थ्य आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कोविड के दौरान जब दुनिया अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही थी, ये अनिवार्य हो गया था कि बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए और भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए पंचायतों को आत्मनिर्भर किया जाए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संगठन जपाई को सरिता बघेल जैसे कई पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा है, और हमारा प्रयास है कि हम एक स्वच्छ, सशक्त पंचायत का निर्माण कर सकें, जो समुदाय के स्वास्थ्य का ख्याल रखने में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। भारत में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में USAID निष्ठा समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक सबल पंचायती मॉडल बनाने में कार्यरत है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त होंगे। विभिन्न तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक 360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाया गया है, जैसे संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अंतर क्षेत्रीय अभिसरण का निर्माण, विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले सामाजिक अधिकारों का सूचीकरण, पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संस्थानों का क्षमता निर्माण, ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना, समुदायों को सरकारी परियोजनाओं और उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, स्थानीय एवं स्थायी स्वास्थ्य समाधान तैयार करने के लिए संसाधनों का उपयोग करना, सामुदायिक स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास करना और उचित साधन उपलब्ध करवाना। नमस्ते, मैं श्रीमती सरिता बघेल, ग्राम पंचायत बेलजोरा की सरपंच। कोविड के दौरान कोई सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं करते थे, स्वच्छता को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमारे निष्ठा जपाई को और समर्थन की सहयोग से हम काफ़ी चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं। पहले महिलाएं हमारे गांव में बाहर जाती थी बैठने के लिए, टॉयलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन आज के डेट में 70% महिलाएं टॉयलेट का यूज़ करने लगी हैं।
मैं खुद भी हमारे ग्राम पंचायत बिलजोरा में मैं 2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाई हूँ, जिससे बाहर से आने जाने वाले लोगों के लिए फुल सुविधा हो, कभी वो रुकें तो महिलाओं को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और महिलाओं की स्वच्छता को ही देखते हुए मैं हमारे गांव में निर्मला घाट का भी निर्माण करवाई हूँ। पहले वो खुले में नहाती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल नहा के स्पेशली वो चेंजिंग रूम में अपना चेंज कर सकती हैं। 10 से 15 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको बिल्कुल फ्री में स्वच्छता समिति के जो दीदियां हैं उनसे नैपकिन वितरित करवा रही हूँ, जिससे वो पूर्ण रूप से स्वच्छ रह सकें। सिर्फ साधन देने से ही हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, बल्कि इन समुदायों द्वारा निरंतर इन सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाना और इसे प्रोत्साहन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़कर जपाई को आत्मनिर्भर और सशक्त समुदायों के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है, जो भविष्य में होने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए और बेहतर परिणाम देने के लिए तैयार हो। थैंक यू सो मच। नाउ आई हैव मिस सरिता बघेल जी हैं यहाँ पे, जो अपने विचार सामने रखना चाहेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा जय जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आज इस चर्चा में शामिल करने के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। पिछले 2 साल से हमने यही सीखा है कि हमारे स्वास्थ्य से सबसे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। हमारे देश ने, हमारे समुदाय ने कई दिक्कतों का सामना किया है, लेकिन आपसी सहयोग से आज हम एक मजबूत और स्वस्थ समाज के तरफ बढ़ रहे हैं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उत्तरदायित्व हमारी भी बनती है कि हम समुदाय और पंचायत को स्वास्थ्य के लिए बेहतर रूप से कार्य कर सकें। आज इस मंच में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक स्वस्थ समुदाय की कल्पना करें, एक ऐसा समुदाय जहां महिला स्वस्थ हो, कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, कोई भी गर्भवती महिलाएं सारी सुविधाएं को प्राप्त कर सकती हैं, और एक ऐसा समाज बनाया जाए जो अपने आप में बिल्कुल सशक्त हो। आइए इन सब परिकल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए हमारी पंचायत निरंतर प्रयास कर ही रही है, और साथ में हमारे समुदाय में जो समिति बनी हुई है दीदियों के माध्यम से वेस्टेज सेग्रीगेशन, सामुदायिक शौचालय, निर्मला घाट और हर घर में नल जल जैसी सुविधाओं के लिए पहल की है। मेरे अनुभव से मैंने सबसे ज्यादा यह सीखा है कि विभिन्न विभागों, योजना और आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। इससे एक सशक्त और अच्छा पंचायत का निर्माण हो सकता है। मैं आप सबके सहयोग से अपने समुदाय और जनपद पंचायत के लिए कार्य करने के लिए समर्पित हूँ। अंत में मैं अपने भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनका काफी हमारे लिए सपोर्ट रहा है और आगे भी रहे, ताकि हम अच्छे ग्राम का निर्माण कर सकें। और अंत में मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रीमती पल्लवी कुमार और श्रीमती सरिता बघेल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the next part of this session is the experience sharing session. और हम माननीय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से बताना चाहेंगे कि इसमें ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि आते हैं, उनके साथ उनके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि आते हैं और अपने गांव की एक झलक हमें एक वीडियो के माध्यम से भी दिखाते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी भागवदा ग्राम पंचायत गुजरात को। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए।
सबको मेरा नमस्कार। मेरे साथ आज साबरकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है उनके भी जिला विकास अधिकारी, उनके ऑफिसर और पदाधिकारी हैं। पोरबंदर से मैं आया हूं और मेरे साथ पंचायत के एक प्रतिनिधि और एक डॉक्टर भी हैं। सो हम बगवदर जो विलेज है उसमें जो हेल्थ इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, एक वीडियो भी देखेंगे और फिर पंचायत के प्रतिनिधि के प्रतिभाव भी सुनेंगे। सो प्रेजेंटेशन प्लीज। नेक्स्ट। अच्छा ये वो देंगे। So Bagwadar is a small village in Porbandar district. Why I have mentioned here, यहाँ जो मैंने बताया है, जो मंदिर वगैरह बताए हैं, तो इसलिए बताए हैं क्योंकि जनरली हमारा ट्रेडिशन ऐसा रहा है, जहाँ पर भी मंदिर होते हैं, यहाँ रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, यहाँ वर्शिप के, यहाँ जो पूजा के स्थान होते हैं, वहाँ हम हेल्थ एंड हाइजीन का ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पहली स्लाइड में वो द्वारिका से डिस्टेंस बताया है। माधवपुर में अभी रिसेंटली एक 5 दिन का फेयर हुआ था जहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, राष्ट्रपति जी भी आए थे और दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री भी आए थे। सो हियर इन दिस बगवदर एक सूर्य नारायण का एक टेम्पल है, वहाँ के नवग्रह का भी एक टेम्पल है और यम का टेम्पल और यमराज का भी टेम्पल है। इस एरिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर पर ही चलते हैं और ग्राउंडनट, गेहूं और जो जीरा होता है उनकी खेती होती है ज्यादा। अब इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन बताया है और जो बच्चे बताए हैं और जो एडोलेसेंट एज वाले हैं, फीमेल हैं, एज ग्रुप के सब बताए। जो पूरी हेल्थ फैसिलिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है 4 हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 12, अर्बन हेल्थ सेंटर 5 और सब सेंटर 84 हैं। तो ये बगवदर की बेसिक इंफॉर्मेशन है। लिटरेसी रेट इज मोर देन 73%, तो काफी ऐसे प्रोग्रेसिव एरिया है। अब बगवदर के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, जो हेल्थ के बारे में जो बताया है, उसमें आप देखेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, जो टारगेट हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, उसके हिसाब से 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। और जो रजिस्ट्रेशन होता है, पहले ही ANC रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी 99% है। अर्ली रजिस्ट्रेशन में थोड़ा कहीं, क्योंकि माइग्रेटरी लोग हैं, बहुत सारे दूसरे जिलों से भी वहाँ लोग आते हैं और हमारा आउटवर्ड माइग्रेशन भी काफी है, सो इसमें थोड़ा कम रहता है। Okay, so there is a request that we'll show the video. So पहले हम वीडियो देखेंगे, please. To continue. કુપોષણ અને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓના અભાવથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસતી સગર્ભા માતાઓ, શિશુઓ અને ધાત્રી માતાઓ જીવલેણ બીમારીઓની શિકાર બને છે। આ ગંભીર પ્રશ્નને લક્ષમાં લઈ ગુજરાત સરકારે ગ્રામ પંચાયતોની મદદથી નોંધપાત્ર કાર્યો કરી ગ્રામ વિસ્તારની સ્વાસ્થ્ય સુવિધા સુગમ અને સુદૃઢ બનાવી। વાત છે પોરબંદર જિલ્લાના બગવદર ગામની। આરોગ્ય વિભાગ અને બગવદર ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગ્રામજનોની તંદુરસ્તી અને સ્વાસ્થ્ય માટે કરેલ કામગીરીની 5000 થી વધુ લોકોની વસ્તી અને 900 જેટલા ઘર મેળવે છે ગુજરાત સરકારની વિવિધ આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓનો લાભ। ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આંગણવાડીના માધ્યમથી ગત વર્ષે 83 સગર્ભા માતાઓને ટીટીનું રસીકરણ તેમજ અન્ય જરૂરી ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા। સગર્ભા માતાઓને આયર્ન, ફોલિક એસિડ તથા કેલ્શિયમની ગોળીઓ આપવામાં આવી। દર 3 મહિને તપાસ કરી જરૂર જણાય તેમની સોનોગ્રાફી કરાઈ, જેની નોંધણી મમતા કાર્ડમાં કરવામાં આવી। આ ઉપરાંત ગ્રામ પંચાયત દ્વારા અનેક યોજનાઓ જેમ કે કસ્તુરબા પોષણ સહાય, પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના વિશે માહિતી પણ અપાઈ અને લાભ પણ આપવામાં આવ્યો। કુલ 289 શિશુઓનું સ્ક્રીનિંગ અને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું।
બગવદર ગામમાં ગત વર્ષે 10 કુપોષિત બાળકોની સારવાર પંચાયત દ્વારા હાથે લેવામાં આવી, જેમાંથી 9 બાળકોને કુપોષણમાંથી સફળતાપૂર્વક મુક્ત કરાવાયા. એ સિવાય પણ અનેક સ્વાસ્થ્યલક્ષી કાર્યક્રમો દ્વારા ગ્રામજનોને માહિતગાર કરાયા તેમજ લાભાર્થી બનાવાયા. પોરબંદર જિલ્લાનું આ બગવદર ગામ આરોગ્ય ક્ષેત્રે હાંસિલ કરેલ ઉપલબ્ધિઓ ગુજરાત સરકારની આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યલક્ષી પ્રાથમિકતાઓની ઝલક આપે છે. સ્વસ્થ ગુજરાત, સમૃદ્ધ ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. और अब सरपंच जी से अनुरोध है, आपका नाम है भरत, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विचार सभा के सम्मुख रखें. सबको मेरा नमस्कार. मैं भरत रूड़ा मुसार गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के बगवदर गांव के पंचायत का सदस्य हूँ. मुझे गौरव है कि बगवदर गांव में आरोग्य क्षेत्र के अच्छी कामगिरी के लिए चुना गया है, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ. हमारे गांव में हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्यरत है. वहां पे सगर्भा माताओं की नोंद की जाती है और उनको सब आवश्यक सेवाओं जैसी के टीकाकरण, लोही तत्वों की गोलियां, खून और पेशाब की जांच और बच्चों को टीकाकरण, और जो कमजोर बच्चों होता है उनको आंगनवाड़ी की मदद से बाल भोग जैसा पौष्टिक आहार दिया जाता है. और गांव के लोगों की बीपी, डायबिटीज चेक करने के बीमारी के लिए दवाई देने आदि जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है. गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सुबह को अच्छी हेल्थ के लिए योग और प्राणायाम कराया जाता है. हमारे गांव पंचायत द्वारा पीने का शुद्ध पानी दिया जाता है और गांव में गंदगी न रहे इसके लिए साफ सफाई कराई जाती है. और लोगों को खुले में शौचालय क्रिया न करने के, कमजोर शौचालय का उपयोग करने के लिए समझाया जाता है. आप सभी का खूब खूब धन्यवाद. सर, मैं 2-3 चीजें विथ योर परमिशन यहाँ रखना चाहता हूँ. तो कोरोना में पर्टिकुलरली अर्बन एरिया में इनिशियली केसेस आए थे, उसके बाद जब रूरल एरिया में भी केसेस आने लगे तो हमने एक कैंपेन चलाया था पूरे स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में, मारू गांव कोरोना मुक्त गांव. मीन्स हर गांव में एक कमिटी बनाई थी और जो एंट्री पॉइंट से, बिकॉज फर्स्ट लहर में जो पहली लहर थी कोरोना की, उसमें कई बार ऐसे होता था फॉरेन ट्रैवल की वजह से वो स्प्रेड हो रहा था और बाद में लोकल ट्रांसमिशन. तो एक कमिटी वो जो भी लोग आते थे उनको मॉनिटर करती थी, कौन आया, कहाँ से आया, कितने दिन से आया, कौन सी ट्रैवल हिस्ट्री, और फिर उसके हिसाब से आइसोलेशन या क्वारंटाइन करते थे. दूसरा हमने ये किया सर, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी बेड थे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के और जो कम्युनिटी केयर सेंटर्स थे, उन सबको कंटिन्यूस नंबर दे दिया 1 to 1500. तो उससे क्या हुआ, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में बहुत इजी रहा कि भाई ये एक आदमी का आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो उसके पास वाले बेड में कौन था, या वो किसको मिला था, तो हाई रिस्क का भी पता चल गया. तीसरा सर, हमने ऐसा किया कि जो HRCT पॉजिटिव है बट आरटीपीसीआर नेगेटिव है, उसको भी ट्रीटमेंट तो कोरोना की ही दिया है क्योंकि ये लंग इन्वॉल्वमेंट था, तो ये किया. अब जैसे सर बता रहे थे वो नमक कम खाना चाहिए, शुगर कैसे, तो सर मेरा ये मानना है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लॉजिकली समझाना पड़ता है कि नमक ज्यादा खाया तो ब्लड में वो रिटेन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, या किडनी में आप प्रोटीन फिल्टर होता है तो इसलिए आपको प्रोटीन में, अगर ब्लड कम है तो प्रोटीन वाली चीजें कम खानी चाहिए, जैसे अमरूद है या दूसरे फ्रूट है. तो जो लोग ऐसे लॉजिकली समझते हैं हम उनको भी ऐसे ही कन्विंस करके ही कर सकते हैं. देन एंड देन वी विल बी एबल टू अचीव our goal of healthy people, healthy state and healthy country. I thank all of you here for listening to me peacefully, and I thank all the people on the dais, all the dignitaries. Thanks a lot.
बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मैं जानती हूँ गुजरात के लोग तो दाल में भी थोड़ा सा मीठा डालकर खाना पसंद करते हैं, तो आपकी भाषा और बोली भी उतनी ही मीठी है, लेकिन अब थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चीनी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो चलिए गुजरात से अब आपको ले चलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर। फिर अब गंज ग्राम पंचायत से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आ जाएं। Respected distinguished dignitaries on the dais, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी को मेरा सादर नमस्कार। Very warm good afternoon to all of you. I am Mohammad Yunus, the State Nodal Officer RGSA from the Department of Rural Development Panchayat from the Andaman and Nicobar Administration. अनफॉर्चुनेटली सर, क्योंकि हमारे वहाँ अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में बस इलेक्शंस हुए हैं एंड द PRIs are just assuming the charges, so we couldn't bring any of the PRs. But here we'll be showcasing a case study of a particular panchayat called Fararganj in the Fararganj block of the South Andaman district, which has performed well in the health sector. And through the medium of a video, short video, we'll be showcasing कि फरारगंज में हमने हेल्थ सेक्टर में पंचायत के साथ मिल करके कैसे काम किया है. We all understand that health is very crucial and the fundamental entity in the development process. अगर हमारा हेल्थ सही रहेगा, सेहत सही रहेगी, तभी हम बाकी सभी आयामों में हम अच्छा बेहतर काम कर पाएंगे. पिछले 2 साल में जो कोविड का काल था, इसमें हम बली भांति ये चीज समझ चुके हैं that out of all the themes that we are actually discussing in this whole iconic week, I believe the health is the most important of all, because अगर health हमारा अच्छा रहेगा तभी हम बाकी आयामों में काम कर पाएंगे. तो I would request कि जो हमारा short documentary है वो आप play कर ले. उसके बाद I would deliberate upon the key initiatives and that the Fararganj Panchayat has undertaken. Along with that, some key takeaways that we can go forward with. ग्राम पंचायत फरारगंज जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी में स्थित है, यहाँ की कुल आबादी 3026 जो 5 गांवों में बटी हुई है, जिसके अंदर 1 PHC, 2 सब सेंटर, 5 आंगनवाड़ी सेंटर्स और 6 स्कूल मौजूद है. हमारे गांव कुपोषण और एनीमिया से मुक्त है, जो कि हमारे आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य से उपलब्ध हुआ है. अच्छे से बातें हैं, इसको हम पढ़ाते हैं, इसका सारा मतलब सब चेक करते हैं, फिर उसके बाद भी सब मिलते हैं. जो बच्चा जो कमजोर है उनका भी मेडिकल रेफर करते हैं, कीड़ा दवाई देते हैं. 6 महीना में 2 बार कीड़ा दवाई, आयरन का टैबलेट देते हैं, विटामिन सिरप पिलाते हैं. पहले क्या होता था, पेशेंट्स लोग PHC में हॉस्पिटल में आते थे, हम लोग देख के, अभी हम लोग जाते थे उनके पास. सबसे अचीवमेंट यही है, घर घर जाके हम लोग, हमारा आशा डॉक्टर लोग सब घूमते कैसा है, क्या है, आपका इस अच्छा है नहीं, यही हम लोग करते हैं. हम मेरा तरफ से हम बोल सकते हैं हिस्सा तो क्या बहुत कम जगह होता है. सच बोले मैंने में तो होता ही नहीं. आई कैन चैलेंज. Doing regular health camps in the schools, and so that we could able to find the anemia in earlier stage, and we have done all these things and we have achieved this. Like our Fararganj area, it is like anemia free. There is no stunting and wasting among the children. हमारे पंचायत के लोग खान पान के मामले में बहुत जागरूक हैं. हमारे पंचायत में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रहा है, जिसे हम पंचायत प्रोत्साहित भी कर रहे हैं.
हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हर घर में बीज उपलब्ध करवाए हैं, जो कि कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने की ओर अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से एक सराहनीय कदम है, जिसे पब्लिक ने पूरी तरह सराहा है। ग्राम पंचायत फरारगंज के इस सराहनीय कार्य को हम अभिवादन करते हैं। थैंक यू ऑल। तो जैसा हमने देखा, दिस इज अ पर्टिकुलर विलेज कॉल्ड फरारगंज ग्राम पंचायत, विच इज 35 किलोमीटर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर से। इस गांव में there are basically 5 villages with a population of 3026 spread across 758 households. The panchayat has one health and wellness center and 2 sub-centers. And it has 1 senior secondary school, 2 middle schools and 3 primary schools. And जो एक 5 villages है, हर एक villages में they have the Anganwadi centers as well. जिसमें की cumulative enrollment is nearly 121. One thing to be noted over here is the Fararganj Panchayat is a Sansad Adarsh Gram, adopted by the Honorable Member of Parliament in the year 2016. And coming to the achievements of the particular village called Fararganj, यहाँ पर पंचायत अपना एक विलेज डाटा रजिस्टर मेंटेन करती है with the support of ANM and all the frontline workers, जिसमें कि पंचायत में जितने भी लोग रह रहे हैं 3026 उनके बारे में पूरा डिटेल होता है, राइट फ्रॉम 5 साल से नीचे कितने बच्चे हैं, who are the pregnant women, just to identify who are the right kind of beneficiaries that the panchayats need to look after. So इसके अलावा the enrollment in Anganwadis and schools are 100%. Immunization जो है that is 100% under the mission Indradhanush program of the Ministry of Health and Family Welfare. And there are no cases of malnutrition. कुपोषण का कोई भी cases नहीं इस particular पंचायत में, and anemia का भी कोई cases नहीं है amongst the children and the adults and girls. There are no cases of school dropouts. There are no stunting, wasting among the children. And सबसे note करने वाली बात ये है कि because of the support of this ANMs and ASHA workers, there are always these proper and timely antenatal checkups for the pregnant women. This particular village में there are 2 doctors deployed and 1 Ayush doctor. So cumulatively, the doctor-patient ratio is also nearly 1 to 1,000 population, which is recommended by the World Health Organization figures. और particularly अगर हम कोविड का बात करें तो कोविड के काल में पंचायतों ने काफी अच्छा काम किया है देश भर में. In this particular panchayat along with the health department and the district administration cumulatively were very much involved in the tracing of COVID positive patients and their contacts. ILI जो cases है उनका surveillance के लिए, special screenings के लिए the panchayat teams were involved, and especially जो containment zones थे, in containment zones पे पंचायतों ने खुद जाकर के initiative लेकर के they used to conduct the sanitization drives. And क्योंकि हमको पता है during the time of COVID we experienced the lockdown situation where people were not able to come to the shops and markets to get the things, household things for them. तो पंचायतों ने एक special volunteerism करते हुए they ensured the door-to-door delivery of these services during the lockdown period. इसके अतिरिक्त जो COVID appropriate behavior था उस पे awareness करवाना, even the transportation of patients to the primary health center or the health and wellness center and to the tertiary health infrastructure at Port Blair, ये पूरा जो transportation facilities है ये भी हमारे elected representatives ने बखूबी निभाया. And क्योंकि आंगनवाड़ीज और schools बंद थे, आंगनवाड़ीज और schools बंद थे, तो ये जो supplementary nutrition programs में जो ration articles होता है इसको भी हमारे पंचायतों ने मिल करके door to door बच्चों को identify करके उनको door to door तक पहुंचाने का काम भी किया है. There are no, the maternal mortality in this particular panchayat is nil. There is the case of 100% institutional delivery. The infant mortality rate is also nil. This has all been possible because of the
I mean to say here, because of the child health screening that we have taken up under the Rashtriya Bal Swasthya Karikram of Ministry of Health and Family Welfare, there have been focused intervention under the program called Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana and also Poshan Abhiyan. Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana में पिछले वर्ष जो 21-22 2021-22 में अंडमान निकोबार ने 100% से ज्यादा 109.22% is the achievement. In fact, sir, in the UT of Andaman Nicobar Islands, we have been working for the SDG right from 2019. Our state indicator framework we have finalized in the year 2019. And we have been working for this. As per the Niti Aayog report, the UT has been exemplary performing in various indicators and SDG goals like no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, and clean water and sanitation. I'll just brief in 2 minutes. Please give me some 2 minutes time because we have some few initiatives. Yeah, thank you, ma'am. Under these, as per the Niti Aayog report, the UT falls under, in the 33 indicators, the UT falls in the achiever category, in 20 indicators, the front runner category, and in 26 indicators, we are under the aspirant category. And as far as the achievements of the UT as a whole is concerned, the UT of Andaman Nicobar Islands is the first UT to become ODF plus across the country in the Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2. And this we have achieved cumulatively focusing upon the solid waste management and liquid waste management across the rural areas in the islands. We have been working towards a concept called zero waste islands, jahan par waste, we have actually set up 26 solid waste management clusters, which are spread across the 70 panchayats, and we have institutionalize these solid waste management clusters in a way that this should not become a point of halt for the waste. मतलब यहाँ पर waste आकर के इससे आगे बढ़ना है through the forward linkage that we have ensured through recyclers. Particularly considering the waste, because living in an island geography, that has been our IEC propaganda as well, that living in a island territory, we do not have any escape from waste. As far as waste is concerned, हम लोगों को waste से there is no escape, because we are a small territory. अगर हम कचरा कहीं पर भी फेंकते हैं तो it comes back to us. So this was the underlying IEC thematic our agenda, and because of this लोगों ने बहुत जन आंदोलन के रूप में इसको स्वीकारा, और अभी हमारे वहाँ पे कचरा प्रबंधन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा चल रहा है. इसके अतिरिक्त जो जल जीवन मिशन प्रोग्राम है, इसमें we have ensured 100% functional household tap connection to each and every rural households of the Andaman and Nicobar Islands. And coming back to the first ever India Happiness Report, एक अभी India Happiness Report जारी हुआ था, जिसमें UT of Andaman Nicobar Islands is ranked among the top 3 along with Mizoram and Punjab. Right in 2019, we had put a ban on single-use plastic because we believe, along with human health, the health of marine aquatic animals is also very important. And considering that in 2019, through a notification, we put a ban on single-use plastic, which Government of India have institutionalized now across the country to the through the plastic waste management amendment rules. हमारे यहाँ पे 8 to 10% plastic waste usage is mandatory in the rural road construction, rural road or any kind of road. And we also have achieved the 100% second dose COVID-19 vaccination coverage in spite of the geographical challenges. अगर आप पोर्ट ब्लेयर में आए होंगे तो you will understand कि पोर्ट ब्लेयर में कितना geographical challenges है. We are spread across 572 islands. So the challenges is equally there. And under the Ministry of Health and Family Welfare Program, हमने 129 health and wellness centers जो हमको बनाना था, Government of India का target था, that we have saturated, and 129 health and wellness centers हमने अंडमान निकोबार में स्थापित किया है.
few 2-3 key initiatives that I want to highlight over here, which have been launched by our Andaman and Nicobar administration recently. One amongst them is a Save a Seed, Plant a Tree campaign. ये हमने पिछले कुछ दिनों में 6 महीने पहले हमने इसको लॉन्च किया था under the able leadership of our Chief Secretary Jitendra Narayan sir and our Honorable LG Admiral D.K. Joshi sir. In the scheme we have planted more than 5,000 fruit bearing trees. इसका बस मकसद ये था कि अंडमान को जो फूड सिक्योरिटी है उसमें अच्छा बनाए. इसके अतिरिक्त विद द support of National Seed Corporation Limited, Chennai, Andaman Nicobar Administration ने okay, just 2 minutes. Okay. हमने 5,000 मिनी किट्स पूरे अक्रॉस अंडमान निकोबार में हमने सभी हाउस होल्ड तक पहुंचा. ठीक है. ओके. सो just reinforcing our commitment to the 9 themes. मैं एक शायरी के साथ इसको क्लोज करना चाहूंगा. चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा. चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा. या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर अच्छा बन जाऊंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. सॉरी फॉर द डिले. थैंक यू. Heartiest congratulations for having scored very well on the happiness index. I'm sure you were very happy after having taken so much of time. Moving on to our next Gram Panchayat, which is Dawa Gram Panchayat from Bihar. आपसे अनुरोध है मंच पर आ जाएं. Phone here. इस आइकॉनिक वीक के समारोह के मंच पर उपस्थित सचिव पंचायती राज मंत्रालय श्री सुनील सर और तमाम गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण, इस हॉल में उपस्थित सभी राज्यों से आए जनप्रतिनिधिगण और तमाम अधिकारीगण को मैं बिहार की तरफ से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं. मैं राकेश कुमार पंचायती राज विभाग में पंचायती राज संस्था में कार्यरत हूं और यह संस्था बिहार में जनप्रतिनिधियों के क्षमतावर्धन और तकनीकी ज्ञानवर्धन पे कार्य करती है. आज हमारे साथ बिहार के जिला भोजपुर के पंचायत दावा की मुखिया श्रीमती सुषमलता जी हमारे साथ हैं. इनके पंचायत को कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है और वर्ल्ड बैंक की संस्थाओं ने भी इन्हें सम्मानित किया है. इस पंचायत ने जो हमारे 9 सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए जो कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनमें से आज हमारा थीम है स्वस्थ गांव. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस पंचायत ने SDG कन्वर्जेंस किया, लाइन डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस किया, मंत्रालय पंचायती विभाग के साथ कन्वर्जेंस कर बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अभी देखेंगे. हालांकि ये वीडियो 2-2.5 मिनट का है, लेकिन ये जर्नी बहुत लंबी थी और इसको हम लोग 2-2.5 मिनट के वीडियो में लाना काफी मुश्किल था, लेकिन हमने एक प्रयास किया है. तो कैन वी हैव ए वीडियो प्लीज? मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार. तू वाल्मीकि के रामायण, वैशाली का लोकतंत्र. मैं जब 2016 में पहली बार मुखिया बनकर आई तो किसी भी समाज की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि वहाँ के लोगों का स्वस्थ रहना है, तभी आप एक विकसित समाज की परिकल्पना कर सकते हैं. अगर देखा जाए तो प्रिवेंटिव कामों में रहा कि ओपन डेफिकेशन फ्री करवाना, पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि रही. स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं या वैसे भी जो बच्चे हैं, उन लोगों को सफाई के बारे में बताना, नियमित रूप से हाथ धोना, साथ ही साथ एक हेल्थ सब सेंटर भी है तो उसमें नियमित रूप से वैक्सीनेशन करवाना उन बच्चों का जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, गर्भवती महिलाओं को या फिर धात्री महिलाओं को भी वैक्सीनेशन करवाना, नियमित रूप से हेल्थ कैंप्स करवाना, हेल्थ चेकअप करवाना, ये सारी चीजें हम लोगों ने
नियमित रूप से किया, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि आज के डेट की अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों का मृत्यु का जो रेशियो है वो काफी हद तक कम ना के बराबर रह गया है। बच्चे लोगों के टीकाकरण से बीमारी नहीं होता है और मृत्यु दर भी कम हुआ है। एक बहुत ही मार्मिक विषय जिस पर हम लोग कभी चर्चा ही नहीं करते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सैनिटरी पैड का प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश करवाया, जिस पर हम लोगों ने चर्चा करते हुए संगनी नाम से इस पैड को हम लोग लेकर आए और महिलाएं आज इसको इस्तेमाल भी कर रही हैं, जो बाजार से काफी सस्ते दाम में हम लोग यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। बैठने के बाद साफ सफाई से अपना हम लोग संजीवनी रक्तदान क्लब के माध्यम से यहाँ पे शिविर लगाते हैं, जिसमें रेड क्रॉस की भी बहुत अहम भूमिका होती है। बिना जनता के किसी भी प्रतिनिधि का कोई भी काम करना असंभव होता है। मुझे बस यही लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो बिहार को एक अलग दिशा में हम लोग लेके चलता है। मैं सब कुछ तो नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन कम से कम अपने पंचायत को तो जरूरी बदल सकती हूँ। बदल रहे हैं बिहार के गाँव। धन्यवाद। वैसे तो हम लोगों ने बीकेन पंचायत से बिहार 3 सूची लाई थी, लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक मौका मिला कि हम ऐसे बिहार को मौका मिले तो ऐसे बीकेन पंचायतों की बहुत सारी सूची हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सुषमा जी को अपना अनुभव शेयर यहाँ पे करें। I am Shushmlata. Wish you a very happy Good Friday to all, the dignitaries and the participant of occupation occasion. I will present a story to changing of Bihar. I wish you all like the short movie of our Gram Panchayat. सफर बहुत लंबा था और शुरुआत 2016 में हुई। पहली बार मैं इलेक्टेड होकर महिला मुखिया बनी अपने पंचायत की, और वो जो मूवमेंट था वो एक अलग किस्म की मूवमेंट थी। पंचायत सरकार भवन की जो दूरी है वो ग्राम पंचायत से करीब करीब 200 मीटर की दूरी थी, और वहां जाने का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ था। चूंकि मैं पहली मुखिया थी, महिला मुखिया थी, तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी चैलेंज की स्थिति थी। और जब वहां की औरतें मेरे पास आई और मेरे पास बैठी कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, हम जब एक परिवार की, एक समाज की परिकल्पना करते हैं तो एक स्वस्थ औरत की भी परिकल्पना करते हैं, जिसमें अभी हम लोग कुछ पीछे थे। 31 दिसंबर 2016 को हम लोग डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट ODF पंचायत घोषित हुए 1300 शौचालय के साथ में, और गर्व महसूस होता है कि उस कार्यक्रम के बाद उन महिलाओं ने जो मेरे पास आकर ये बात कहती हैं कि हम लोग को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, उन लोगों के साथ हम लोगों ने नियमित मॉर्निंग फॉलोअप शुरू किए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले जो 100% की आबादी बाहर शौच के लिए जाती थी वो एकदम से विपरीत होगी, और 70% से ज्यादा आबादी अब शौच के लिए अंदर जा रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। हम लोगों ने धीरे धीरे अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू किए, रोड के दोनों तरफ बेंचेस बनवाए, ताकि जो सवेरे का मॉर्निंग, आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो में, मेरा गांव काफी खूबसूरत है और काफी हरियाली से भरा हुआ है। जिस चीज के लिए हम लोग पैसे देकर बाहर जाते हैं वो चीज मेरे यहाँ मौजूद थी, लेकिन हम लोग उस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने बेंचेस बनवाए ताकि सुबह में मॉर्निंग फॉलोअप के दौरान हम लोग जा सकें, और आज स्थिति ऐसी है कि अगर आप सुबह में 4 बजे निकलेंगे तो आधा गांव आपको रोड पर नजर आएगा मॉर्निंग वॉक करते हुए। शुरुआत हुई स्कूल से। स्कूल में हम लोगों ने रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप्स अरेंज करवाए, बच्चों के साथ में व्यवहार परिवर्तन की बातें की। शौचालय बनवा देना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर एक परिवार को बदलना है तो उसमें 2 ही लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है, या तो उस घर की गृहिणी की या फिर उस घर के बच्चे की, जो जाके अपने घर पे स्कूल में सिखाए हुए चीजों को बताता है। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई। स्कूल में हम लोगों ने जाकर बच्चों के साथ आंगनबाड़ी में जाके शौचालय का यूज, हाथ को कैसे साफ रखना है, भोजन कैसे करना है, खाना खाने से पहले, इन तमाम छोटी छोटी बातों पर चर्चा की।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने इस दरमियान किया। हम लोग जहां निवास करते हैं वो NH30 और सर NH84 के बीच का पंचायत है, तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने ब्लड की भी बहुत कई बार दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, तो हम लोगों ने रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए और जिसमें वहां के पंचायत के लोकल लोग आके ब्लड डोनेशन करते हैं। और अच्छा लगता है जब पहली बार ये स्टेटमेंट सुनने को आया था कि मुखिया जी अब गांव में खून बेचवाने का भी काम करेंगी, और अब जब लोग स्वेच्छा से आके ब्लड डोनेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें सोसाइटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रेड क्रॉस हम लोग को हमेशा सपोर्ट करता है। तीसरी चीज आप लोगों ने वीडियो में देखा है, सैनिटरी एक मार्मिक विषय जिस पर कोई चर्चा नहीं करता है। मासिक धर्म के बारे में हम लोग रूरल एरिया में तो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इस चीज को शर्मिंदगी से महसूस की जाती है। आज के डेट में मेरे यहाँ सैनिटरी पैड प्लांट है जिसको मुख्यमंत्री नव परिवर्तन योजना के तहत हम लोगों को दिया गया, और हम लोग आज की डेट में पर डे का प्रोडक्शन 4500 से ज्यादा है। और हम वहां पे हर ग्रामीण महिलाओं को सैनिटरी के बारे में जानकारी देते हुए उनको सैनिटरी इस्तेमाल करने के लिए बता रहे हैं, और महिलाएं खुलकर उस चीज को करें। आगामी चीजों में सर हम लोग एक बहुत अच्छी चीज है, नल जल लगने के बाद में जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे बताने में गर्व महसूस होगा यहाँ से कि दावा एक ऐसा पंचायत है पूरे बिहार का जो फर्स्ट वाटर रीट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहा आने वाले दिन में, और इसका पूरा मैप्स तैयार हो चुका है। और अगले साल अगर फिर हम लोगों को दोबारा मिलने का मौका मिलेगा तो शायद हम लोग उस रीट्रीटमेंट प्लांट के साथ में यहाँ मौजूद होंगे। सरकार की बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं जो हम लोगों के साथ यहाँ पे मदद करती हैं। चूंकि बिहार से हूँ तो बिना भोजपुरी बोले अगर मंच से चली जाऊं तो शायद अजीब लगेगा। तो अंत में बस अपने कहल चाहत नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के देन रहे कि पंचायती राज व्यवस्था में हमनी के 50% के आरक्षण मिलल, सोसाइटी के सहयोग रहे जेकरा चलते हमनी के एजा मौजूद बनी जा और अतना बढ़न राष्ट्रीय मंच पे हमरा बोले के मौका मिलल। तहे दिल से बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, साथ ही साथ हमारे डीएम रोशन कुशवाहा, बीपीआरओ और तमाम लोगों के साथ साथ में एजा जितना भी प्रतिनिधिकारी पार्टिसिपेंट मौजूद बा लोग, सब लोगों के मन से आभार। आज सतुआन है हमनी के यहाँ और मकर संक्रांति भी है, ओकर मन से आभार, बहुत बहुत शुभकामना। आगे वाला आवे वाला दिन रौरा सब खेती उज्जवल भविष्य लेकर आए, एकरे कामना करत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तोहार बहुत बहुत धन्यवाद बा। चलिए अब आपको ले चलते हैं राजस्थान ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके वीडियो, और उनके साथ में हैं उनके ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जवानपुरा ग्राम पंचायत राजस्थान। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाए। आदरणीय सम्मानित मंच, मैं महेश कुमार वर्मा, सहायक विकास अधिकारी, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान से हूँ। और स्वास्थ्य हेल्थ विलेज के लिए हमारे जवानपुरा पंचायत की जो ग्राम पंचायत उसने बहुत सराहनीय कार्य किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा भी उन्होंने जो सामाजिक सरोकार और सहकार के साथ किस प्रकार है जो उस गांव में मौसमी बीमारियों का इनका खात्मा किया, उसके संबंध में श्री जयराम जी पलसानिया सरपंच साहब आपको अवगत कराए। हाँ, एक वीडियो चला। मैं
मैं जयराम जाट, ग्राम पंचायत जवानपुरा, पंचायत समिति विराटनगर, जिला जयपुर से सरपंच हूँ। जब मैं सरपंच बना तो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ जगह जगह कूड़ा करकट था और तरल के रूप में जगह जगह कीचड़ था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मेरा गांव चुना गया और हमने काम स्टार्ट किया तो बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आई। मैजिक पिटों का काम जब हमने काम स्टार्ट किया तो लोगों का विरोध हुआ। उस विरोध को हमने बड़े सहज ढंग से सुलझाया और मैजिक पिट हमने बनाए और गांव को कीचड़ से मुक्ति दिलाई। ठोस डोर टू डोर ई रिक्शा कचरा उठा रहा है। 1 साल से हमारे यहाँ लगातार काम सुचारू रूप से चल रहा है। राजीविका की महिलाओं को हमने ये काम दे रखा है। एक महिला सुपरविजन का काम करती है, एक महिला नालियां साफ करती है, सफाई का काम करती है, एक पुरुष लगा रखा है वो ई रिक्शा चलाता है, एक ऊपर का काम करता है। इस हिसाब से हमने ये जो काम किया है इसके लिए मैं स्वच्छ भारत मिशन के पदाधिकारियों को और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि हमारे को इस कीचड़ से और इस ठोस कचरे से हमें मुक्ति दिलाई। हमारे पहले यहाँ मौसमी बीमारियां बहुत होती थी, लेकिन बीमारियों में भी काफी निजात मिला है। पहले मक्खी मच्छर ज्यादा होते थे इसलिए बीमारियां होती थी, आज वो भी कम हुई हैं। लोग स्वच्छ रूप से रहने लगे हैं और कहीं भी हमारे यहाँ कचरा दिखाई नहीं देता। हमने एक ग्रुप भी बना रखा है जिसमें रोज जो सफाई होती है उस सफाई को कहाँ ई रिक्शा कचरा उठा रहा है, कहाँ नालियां साफ हो रही है, उसमें पदाधिकारी सारे जुड़े हुए हैं, स्वच्छ भारत मिशन के भी, जिला परिषद के भी। तो इस हिसाब से हम ये जो कार्य कर रहे हैं। सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान देश के कोने कोने से आए हुए सभी अग्रजन अनुज साथियों, मैं सबसे पहले हार्दिक आभार प्रकट करूंगा राज्य सरकार के पंचायत राज मंत्रालय एवं भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय को, जो मैंने जो कार्य किया, हमने जो मेहनत की, उस कार्य के लिए आज यहाँ बुलाया, सराहा गया, इसके लिए हार्दिक आभार। मैं जब सरपंच बना तो मेरे सामने स्वच्छता को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे वहां जगह जगह कीचड़ फैला हुआ था, लोग घरों का कचरा सामने डाल देते थे, एक दूसरे के घर में वो कचरा जाता था, लड़ाइयां भी होती थी, काफी समस्याएं थी, बीमारियां काफी थी, मलेरिया, पायरिया, हैजा, डेंगू, इस तरह की बीमारियां थी क्योंकि मक्खी और मच्छर का प्रकोप बहुत ज्यादा था। मैंने सबसे पहले मुहिम चलाई, युवाओं को साथ लिया और खुद में इस मुहिम में लगा। पूरे गांव को मैंने खुद ने साफ किया और हम महीने 2 महीने में सफाई करते थे। इसी दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का जो कार्य आया, उसमें मेरा गांव पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया और हमने ठोस कचरे के रूप में एक भामाशाह से ई रिक्शा लिया और डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य हमने सुचारू रूप से किया। तरल के रूप में हमने जगह जगह मैजिक पिट बनाए। उस मैजिक पिट में जो पानी था वो रिचार्ज हो गया, नालियां बनाई और सुचारू रूप से हमारे वहां कीचड़ से भी हमें मुक्ति मिली। इसके लिए हमने हमारे वहां स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। 8 हमारे वो राजीविका समूह की महिलाएं काम करते हैं, उनके 8 ग्रुप बने हुए हैं। उनका हमने एक ग्रुप बनाया, ज्योति राजीविका ग्राम विकास संगठन, और उससे हमारा करार हुआ। साधन उपलब्ध हम लोग कराते हैं और जो भी कार्य करती हैं वो महिलाएं करती हैं। हमने गांव में महिलाओं को रोजगार दिया। एक तबका गांव में ऐसा था जो रोटी के ऊपर सफाई का काम करता था, उनको गांव में रोजगार नहीं मिलता था। हमने उन लोगों को रोजगार भी दिया। आज वो लोग इतने खुश हैं कि उनको घर बैठे कमाई मिल रही है। हमने ज्योति राजीविका संगठन को टेंडर दिया। 1 अप्रैल 2021 से 22 से हमारे यहाँ नियमित रूप से सफाई का कार्य चालू है और वो महिलाएं, उसमें एक महिला सुपरविजन का कार्य करती है, एक महिला रोज नाली साफ करने का काम करती है, एक ई रिक्शा चलाता है और वो महिलाएं प्रत्येक घर से 10 रुपए कलेक्शन करती हैं, एक दुकान से 50 रुपए कलेक्शन करते हैं।
तो जन सहभागिता का भी हमने इसमें सहयोग लिया है। इसमें हमें बहुत ज्यादा समस्याएं आई हैं। शुरू में जब हमने काम स्टार्ट किया तो जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े थे उन लोगों की मानसिकता यही रहती है कि कैसे भी इनको फ्लॉप करें, नहीं ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। गांव में सरपंच के लिए किसी काम को करना बहुत एक चुनौती होता है। उस सबको भी हमने सहजता से किया। मैजिक पिट जब हमने स्टार्ट किए, गांव में समस्या आई कि मैं यहाँ मैजिक पिट नहीं बनने देंगे क्योंकि हमारे दीवार में पानी चला जाएगा और हमारा मकान गिर जाएगा। इसी तरह की समस्याओं को हमने हल किया और 2021 में मेरे यहाँ 2 डेंगू के मरीज थे, 2 मलेरिया के थे। 2022 में एक भी मेरे डेंगू और मलेरिया का कोई पेशेंट नहीं आया। यह इस स्वच्छता की ही देन है। तो मैं आप सबसे मेरी अपील है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ये कार्य भारत सरकार ने दिया है, राज्य सरकार धरातल पर उतार रही है, इस कार्य में भागीदारी निभाएं। इसमें बहुत ज्यादा बीमारियों में से निजात मिलेगी, जैसा मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण से अनुरोध करूं कि वे कृपया इस सत्र का समापन करें, यदि आपकी अनुमति हो तो एक महत्वपूर्ण सूचना है, हम सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। We would request the nodal officers of Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Nagaland, Odisha, Telangana, Tripura, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep. We request you all to please kindly expedite the submission of utilization certificates. As you all know, it is under the National Panchayat Awards. The utilization certificates have to be submitted mandatory. So please, once again, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Nagaland, Odisha, Telangana, Tripura, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep. And I now request श्री राजेश भूषण, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कि वे कृपया इस सत्र का समापन करें। जब कोविड चल रही थी तब पंचायतों के कोविड डैशबोर्ड हमें तैयार करवाया, तो करीब करीब 2.25 लाख पंचायतों ने वो कोविड डैशबोर्ड पे अपनी एक्टिविटी अपलोड की सर। और इन्होंने इतने काम किया सर कि कितने क्वारंटाइन सेंटर्स, कितने उन्होंने मेडिसिन किट्स बांटे, कितने सेंटर्स खोलकर और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी। बहुत सारे इन्होंने वेंटिलेटर्स और जब्ती और बहुत सारे मेडिसिन किट्स, मास्क और इसके बहुत सारे, तो करीब 2.25 लाख पंचायतों ने अपनी कोविड एक्टिविटी हमारे डैशबोर्ड अपलोड की थी और उनका इसमें और वैक्सीनेशन में इनका काफी योगदान। जस्ट आई वांटेड टू एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो। एक बार फिर से आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। इट इज माय प्रिविलेज टू बी हियर एंड शेयरिंग द डायस विद 3 of my extremely close and very good friends. Chandrasekhar has worked with me, and it's a pleasure to see him now shouldering greater responsibilities in the Panchayati Raj Ministry. सचिव पंचायती राज मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बैचमेट हैं, तो एक ये भी मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं उनके साथ इस समारोह में सम्मिलित हो रहा हूं। डॉक्टर ऑफरिन उसी भवन में काम करते हैं जिस भवन में हमारा मंत्रालय है, और हम सतत आपस में न केवल मिलते हैं बल्कि विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो इसलिए ये एक एडेड एडवांटेज है आज के समारोह में आप सबके साथ सम्मिलित होने का। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अनेक ग्राम पंचायतें, क्योंकि जो लोग यहाँ आए जिनको बोलने का मौका मिला
वो तो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। मैंने सैंपल नहीं कहा, मैंने कहा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, क्योंकि अधिकांश ग्राम पंचायतें उस तरह के काम कर रही हैं। अब समय की क्योंकि पाबंदी है तो 5 या 6 ही लोग बोल सकते हैं, वही अपनी फिल्में दिखा सकते हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। आज से लगभग 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब मैं भारत सरकार में सचिव ग्रामीण विकास था, मैं अभी बता रहा था सचिव पंचायती राज को कि चीजें कितनी बदली हैं। उस वक्त जो पंचायतों के प्रतिनिधि थे, उनकी जो क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो सीमित थी। क्यों थी? क्योंकि अधिकांश योजनाएं पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित नहीं हो रही थी। बड़ा परिवर्तन कब आया? जब 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों को बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि सीधे उपलब्ध कराई और कहा कि आप योजना बनाइए, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये एक बड़ी चीज हुई। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण विकास संस्थाओं को और शहरी लोकल बॉडीज को फिर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 70,000 करोड़, पूरे देश की बात करें तब, तो 70,000 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई है, जो आगामी 5 वर्षों में इन स्वायत्त शासी संस्थाओं को मिलेगी। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। और फिर एक अन्य परिवर्तन जो हुआ है, हालांकि जवानपुर के कह रहे थे सरपंच जी कि एक बार आप चुन जाते हैं तो जो लोग आपके साथ चुनाव लड़े थे वो आपका पैर खींचते रहते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब पढ़े लिखे लोग, जवान लोग पंचायतों में आ रहे हैं। तो जो भी आपसे चुनाव लड़े, जीते हारे, वो अलग बात है, लेकिन अंत में वो ये मान के चलते हैं कि अगर पूरी पंचायत का भला हो रहा है, गांव का भला हो रहा है, तो बियॉन्ड अ पॉइंट वो आपका विरोध नहीं कर सकते। विरोध तो तब होगा ना जब वो कहे ये 4 आदमी के लिए काम कर रहा है और 400 लोग और हैं जिनके लिए नहीं कर रहा है। तो अगर आप ग्रेटर गुड, बड़े समुदाय की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो वो विरोध भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और ये भी अच्छा अनुभव, डेमोक्रेसी ऐसे ही पनपती है। यानी जो भी डेमोक्रेसी की खामियां हैं, उनका जो इलाज है वो और अधिक डेमोक्रेसी है। You see, the remedy for ills of democracy is more democracy rather than, lesser democracy. But coming back to healthy village, स्वस्थ गांव की बात पर अगर हम लौटें, तो आप सबने बताया, मैं लिख रहा था और बड़ी अच्छी चीजें आपने बताई। जैसे वो सरिता जी जो छत्तीसगढ़ से आती हैं, उन्होंने कहा कि हमने वाटर सप्लाई के लिए काम किया। हमने क्या निर्मला घाट बनाए कि निर्मल घाट बनाए? क्या कह रही थी आप? हाँ, निर्मला घाट बनाए। गांव में स्वच्छ घाट बने। गांव का जो तालाब है या नदी, जिनके गांवों के दोज हुआ फॉर्चुनेट, जिनके यहाँ नदियां भी हैं, वहां स्वच्छ घाट हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, जो कि गांव के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जो मैं आपको पहले कह रहा था, स्वास्थ्य वो नहीं है जो केवल PHC, CHC जिला अस्पताल में हो रहा है। गांव का घाट भी स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये जो गुजरात के बगवदर ग्राम पंचायत के लोग थे, उन्होंने अपनी फिल्म में, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK की टीम भी दिखाई और उसकी एम्बुलेंस भी दिखाई। तो बच्चों में, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों में, स्वास्थ्य के प्रति समझ कैसे पैदा हो और वो उस समझ को अपने परिवार तक कैसे ले जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ग्राम पंचायतें इसकी भागीदार बन रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। जहां हम ये नहीं कर रहे हैं, हमें पूछना चाहिए कि मेरे ग्राम पंचायत में जो विद्यालय हैं, उनमें RBSK इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो कौन कर रहे हैं? इसमें विद्यालय के शिक्षक को स्वच्छता और स्वास्थ्य का एम्बेसडर बनाया जाता है। तो वो कौन है? रामदास, श्यामदास, हरिदास, कौन है वो टीचर जिसको ये एम्बेसडर बनाया हुआ है? और क्या कभी ग्राम पंचायत ने उससे कोई इंटरैक्शन किया? और नहीं किया तो करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि भैया तुम इस गांव में 5 घंटे, अगर उस गांव के बाहर से आता है पढ़ाने के लिए, 4 से 5 घंटे पढ़ाते हो, तो तुम इस क्षेत्र में भी काम करो। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वैसे ही ये जो अंडमान के फेरागंज वाले हैं, उन्होंने बताया
कि इनके यहाँ कोई स्कूल ड्रॉप आउट नहीं है, एनीमिया फ्री है, कोई स्टेंटिंग का मामला नहीं है, कोई वेस्टिंग का मामला नहीं है। तो ये विद्यालय में नामांकन होना और जो लोग नामांकित हुए, खासकर बालिकाएं, वो ड्रॉप आउट न हो, पूरी शिक्षा पूरी करके निकले विद्यालय से, ये भी उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ये बाकी लोगों को भी इस पे काम करना चाहिए। वैसे ही बिहार से आप दावा से आई ना, जगदीशपुर, आपके बगल के जिले में बहुत अरसे पहले मैं कलेक्टर था, तो इन्होंने बताया कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही हैं, ये सैनिटरी नैपकिन्स का निर्माण करवा रही हैं अपने गांव में, ये रेगुलर हेल्थ चेकअप कराती हैं, तो और ओडीएफ गांव हो गया। तो ये बड़ी चीजें हैं, इन सब का असर गांव के स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो इन सब चीजों को एक नियोजित रूप से करने की जरूरत है। अब नियोजन कैसे होगा, वो प्लानिंग कैसे होगी? जब भी आप चुन के आते हैं अपनी पहली बैठक में या दूसरी बैठक में, आप ये कहिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्राम पंचायत के लेवल पर क्या संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों से मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे संसाधन जो मेरे लेवल पर यानी ग्राम पंचायत के लेवल पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस ग्राम पंचायत में शिक्षा विभाग के पास है या स्वास्थ्य विभाग के पास है या जलापूर्ति वालों के पास है या पीएचईडी वालों के पास है, उनका उपयोग मेरी ग्राम पंचायत की बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए कैसा हो, इस पे विचार करें। और एक कंसोलिडेटेड प्लान बने कि मेरा ग्राम पंचायत का पैसा इतना लगेगा, उसके ये आउटकम निकलेंगे, बाकी विभागों का पैसा ऐसे लगेगा। अब तो सब कुछ कंप्यूटर पर है, आप लोगों की ट्रेनिंग भी है, तो ये सारी चीजें आसानी से एक साथ आ सकती हैं। अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करें, जो बाला सुब्रमण्यम बता रहे थे आपको शुरुआत में, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि गांव के में या ग्राम पंचायत में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसमें बड़े सारे काम किए जाने। एक, वहां मुफ्त की दवा मिलनी है, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो आप स्वास्थ्य विभाग को बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे। वहां मुफ्त में टेस्टिंग होनी है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज वो भी फ्री मिलनी है, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिर वहां 12 तरह के हेल्थ पैकेज हैं जो फ्री होने, यानी हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग फ्री है, कैंसर की स्क्रीनिंग फ्री है, डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग है, फिर आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो होता है, यानी गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, उनके बच्चे, इनकी स्क्रीनिंग फ्री है। जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल रोग हैं, उन सब की टीके फ्री हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिलें और समय पर मिलें, लोगों में अवेयरनेस हो, ये भी आपको देखना चाहिए। उसी तरीके से ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, यहाँ वेलनेस सेशंस भी होने, यानी जो लोग योग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए योगा की क्लास होनी है वहां। मैंने तो कुछ जगह देखा कि वहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो जुम्बा भी सिखा रहे थे, तो आई वाज अमेज्ड। दिल्ली में भी बहुत कम जगह पे लोग जुम्बा करते हैं, तो वो अच्छी चीज है। अगर लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तो योग करें, कोई और फिजिकल एक्टिविटी करें, और ये भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हो रहा है। तो ये आपको जुड़ाव करना पड़ेगा। ग्राम पंचायतें आइसोलेशन में नहीं जी सकती हैं, ग्राम पंचायतों को जुड़ना पड़ेगा, लिंकेजेस डेवलप करने पड़ेंगे, एजुकेशन की, शिक्षा की व्यवस्था के साथ, स्वास्थ्य की व्यवस्था के साथ, स्वच्छता की व्यवस्था के साथ, क्योंकि राज्य सरकारों में और भारत सरकार में इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, और ये मंत्रालय आपस में जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा विकास होगा। आप इस यूनिक पोजीशन में सरपंच के रूप में या प्रधान के रूप में या मुखिया के रूप में कि आप इन लोगों की आपस में बात करवाएं, तो ये चुनौती है। और जब बात होगी तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा तो एक स्वस्थ गांव की जो संकल्पना है वो साकार हो सकेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जब यहां से जाएंगे तो एक बढ़िया प्लान बनाएंगे, उस प्लान को आप पंचायती राज मंत्रालय से शेयर करेंगे
और फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय सचिव श्री राजेश भूषण के बहुत बहुत आभारी हैं कि वे आज यहाँ पर आए और अपने शब्दों से हम सबका उत्साह बढ़ाया। और अब एक बार फिर मंच की अनुमति लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर हिमाचल की टीम को, जो कि मंच पर बैठे सभी गणमान्य अतिथि जो हैं उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो देवी और सज्जनों, हिमाचल की टीम। और एक खास सूचना जो आज हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आज हिमाचल डे है, तो हिमाचल से आई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, तो जोरदार तालियों से एक बार फिर हिमाचल की पूरी टीम का अभिवादन कीजिए। और एक और खास बात कि बाकी सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है, लेकिन हिमाचल में ये आरक्षण 50% है पंचायतों में। और इन्होंने 58% का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। 58% महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है हिमाचल की पंचायतों में। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अरे सीनियर साहब, हैप्पीनेस वाला मेरा पटरा भी अंदर खिसका के चला गया। ये 5 विलेज है ना, हेल्थी विलेज, 5 कम सरपंच, 5 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव, हम फोटो खिंचाना चाहते हैं। वो बाद में नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। उत्तराखंड भी आने वाला है, अगले सेशन में करवाएंगे। उसमें ग्राम विकास आ रहे हैं सचिव। हाँ हाँ, वो मैडम बता देंगे आपको। जल्दी समाप्त कीजिए। 58% महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन का टारगेट हिमाचल प्रदेश पूरा कर चुका है अपनी पंचायतों में। They have already got the target of 58% representation for women in their panchayats. It's a big achievement, ladies and gentlemen. The other states are making 33% reservation, whereas Himachal has made a reservation of 50% and achieved a target of 58%. हिमाचल की टीम से अनुरोध है, हमें थोड़ा सा जल्दी इस समारोह को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड की टीम भी उसके बाद आने वाली है। तो आप सबसे अनुरोध है थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज। पहाड़ वाली औरत, उसका नाम लिख दो, पहाड़ वाली औरत। सर पे इतना पहाड़ है ना, इतना बोझ लेके जो घूमते हैं सबको देखो। मुझे नहीं, आप इनको दीजिए। ये सबसे ज्यादा काम कर रही है मंत्रालय। हमें नहीं, आप इनको दीजिए। और सर है सर को सर, हाँ मैं आपको सर को भेज पाऊंगी। अरे सर को जी। इसके बाद हिमाचल की टीम से अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द स्टेज से उतरेंगे तो उत्तराखंड की टीम आएगी। तो देखिए, भोजन अवकाश का समय है ये, लेकिन खाने के बाद 2:15 पर
फिर से अगले सत्र का शुरुआत होगी, तो कृपया प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टाइम से वापस आएं. Next session, ladies and gentlemen, we will be starting at 2:15. Right now is a lunch break. Lunch is being served downstairs. चलिए चलिए, हिमाचल की टीम से अनुरोध है कृपया मंच से नीचे आ जाएं. और अब इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर उत्तराखंड की टीम को. उत्तराखंड की टीम से अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं. मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग का चांस हो गया. सभी फोटोग्राफर्स और जो लोग मंच पर आ रहे हैं, प्लीज ध्यान रखें, फूल आप लोग तोड़ रहे हैं, पैरों से अपने फूलों का ध्यान रखें थोड़ा. उत्तराखंड वाली का क्या करना है? वो तो हो गया ना सबका. ठीक है. नहीं नहीं, यूपी से बहुत लोग बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं जी, बोले हैं. I am from Karnataka. Women reservation in Panchayati is more than 50%. आप बोले सिर्फ that was the statistic that was given to me by Himachal. Maybe I'm wrong. I spent 20 years in Panchayati. Active members, so it is more than 50%. तो मैं अभी लंच के बाद जब हम एक करते होंगे तो इसको करेक्ट कर दूंगी. Karnataka, Maharashtra, most of them have got 50% reservation. Oh, nice. They will be first. मिस्टर सरपंच हो गए. ये करेक्शन मैं महाराष्ट्र से हूँ. हमारे गांव में बहुत अच्छा काम चल रहा है. Ladies and gentlemen, we will meet you after the lunch break at 2:15. So please do join us back in time. Ladies and gentlemen, please do join us back in time. The next session starts at 2:15.
We warmly welcome Shri Girish Mishra, National Director, Livelihoods and Emergency Helpage India, and Professor Vivek Kumar, National Coordinator of Unnat Bharat Abhiyan Program, IIT Delhi. तो देखिए, हम दिन भर में इतने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, ये जो लोगो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि हर कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर पिन लगाकर घूम रहा है, इस लोगो को ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर बने इस लोगो को ध्यान से देखिए और देखिए आज की हमारी जो थीम है वो है सोशली सिक्योर्ड विलेज। तो ये तभी संभव है जबकि पूरी की पूरी सरकारी तंत्र और पूरा का पूरा समाज इसमें सहयोग करेगा और समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि भारत के अग्रणी और सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं टेक्नोलॉजी में। और आज हम बहुत आभारी हैं, आईआईटी दिल्ली यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ और उसके साथ साथ हेल्पेज इंडिया। ये दोनों ही संस्था ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप सभी इनसे भली भांति परिचित हैं और हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं श्रीमती रेखा यादव, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, and shortly expected to join us is Shri Sunil Kumar, Secretary Ministry of Panchayati Raj, and we shall also be waiting to receive amongst our midst Shri Nagendra Nath Sinha, Secretary Ministry of Rural Development. हो सकता है कि वो इस सेशन में थोड़ा सा देर के पश्चात आए, लेकिन उनके आने की संभावना है। तो चलिए देखिए, ये लोगो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कितने आयाम हैं गांव के विकास के लिए। देखिए, ये सब मिलकर, जब हम सब लोग मिलकर एक साथ आएंगे, जिसमें सरकारी तंत्र, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, आप, मैं, रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो हर व्यक्ति की भूमिका यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वो गांव कितना सुंदर है जिसमें सोलर पैनल भी लगा हुआ है, इतनी सुंदर सड़क बनी हुई है। गांव अपने आप में संपूर्ण है, जहां पर बिजली भी है, पानी भी है और देखिए एक छोटी सी विंड मिल लगी हुई है। तो हर गांव अपने आप में एक संपूर्ण इकाई बन सकता है, किंतु सिर्फ अपेक्षित है तो आप सभी का सहयोग। इसी के साथ साथ हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं सचिव पंचायती राज मंत्रालय श्री सुनील कुमार का और मैं अनुरोध करूंगी माननीय सचिव महोदय से कि वे कृपया इस सेशन का संचालन करें। A very warm welcome to Shri Nagendra Nath Sinha, Secretary, Ministry of Rural Development. I'll request Secretary, Ministry of Rural Development, Shri Sinha, to kindly conduct the session and take us forward. हैंड माइक मैम, माइक साउंड प्लीज। श्री सुनील कुमार, सचिव पंचायती राज, श्रीमान गिरीश मिश्रा जी, नेशनल डायरेक्टर हेल्पेज, प्रोफेसर विवेक कुमार, आईआईटी दिल्ली, रेखा जी, चंद्रशेखर जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी मित्रों, ग्राम पंचायतों से, देश के अलग अलग कोनों से आए हुए सभी मित्रों, आज जिस विषय को पर हम विचार कर रहे हैं वो विषय है सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। और
इसकी महत्ता से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है और इस कारण से ही इसको एक थीम के रूप में चुना गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसके चुने जाने का जो महत्व है उससे आप अवगत हैं ही। मैं आप सब लोगों का ध्यान अपनी संविधान की ओर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि अपने संविधान में भी ये बातें लिखी हुई। अगर आप संविधान की धारा के अनुच्छेद 39 देखिएगा तो उसमें वर्णन किया गया है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वुमेन and tender age of children is not abused, and that citizens are not forced by economic necessity for avocations unsuited to their age or strength. मतलब किसी आदमी को, किसी महिला को, किसी व्यक्ति को वो काम नहीं करना पड़े जो उसकी आयु अथवा उसकी शरीर की ताकत के अनुकूल ना हो। जो अनुच्छेद 41 अगर हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि राज्य अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ओल्ड एज, बुढ़ापा, सिकनेस, बीमारी, डिसेबलमेंट और इस तरह का जो अनडिजर्व्ड वांट है, उन सभी के मामलों में पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब एक बहुत ही जो लीगलिस्टिक सोच हो सकती है वो ये कि भाई अगर जो देश में त्रिस्तरीय शासन की कल्पना की गई है तो उसमें जो सबसे धरातल स्तरीय शासन है वो आपका शासन है और उस धरातल स्तरीय शासन को संविधान की ये जो जिम्मेवारियां हैं वो भी पूरी करनी। तो ये लीगल स्टैंड है, लेकिन मैं लीगल स्टैंड के अलावा जो इसका मानव विकास के लिए महत्व है उसकी ओर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई मजबूत है, कोई कमजोर है, किसी के सारे अंग ठीक हैं, किसी के अंग ठीक नहीं है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है। समाज पूरी तरह से कोशिश करता है और आप सब लोग कर भी रहे हैं। जिस प्रकार से सचिव पंचायती राज ने अभी बताया कि हर ग्राम पंचायत अपने अपने तरीके से विकास का जो दौर है, विकास का जो अपना अभियान है वो आपने चला रखा है और इस प्रकार से विकास को प्राप्त करने की और सबका जीवन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद समाज का कुछ वर्ग है जिसको किसी न किसी कारण से समाज की सहायता की जरूरत होती, तो उस समाज की सहायता उसको मिलनी चाहिए। कई बार हमारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि उन परिस्थितियों के चलते लोगों के जो उनमें पोटेंशियल है, संभावना है, उन संभावनाओं का पूरा विकास नहीं हो पाता। तो हमें, अगर हम वास्तव में सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव बनाना चाहते हैं तो हमें उन कमजोरियों पर भी विजय पानी होगी। वो कमजोरियां रूढ़ी की हो सकती है। आप ट्रेडिशनली ये सोचते हैं कि
हम अपने बच्चों की शादी बाल अवस्था में ही कर दें, पर बाल अवस्था में करने से उनके जो विकास की संभावनाएं हैं वो नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि वो ना तो पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, और पढ़ाई नहीं पूरी कर पाने से वो जिस प्रकार के रोजगार में लगेंगे उस पर उनका फर्क पड़ेगा। हमारी बेटियां गर्भधारण के लायक नहीं हैं, और एक बार जो इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है वो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन पड़ता है। अगर माँ कमजोर है तो बच्चा कमजोर होगा, बच्चा कमजोर है तो फिर उसकी आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी। तो अगर इन सभी चीजों पे हमें विजय पानी है, राष्ट्र के रूप में हमें आगे बढ़ना है और आपको अपने पंचायत को आगे बढ़ाना है, तो इन सब चीजों पे हमें विजय पानी होगी। मैं इस अवसर पे ज्यादा भी समय आपका न लेते हुए मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन में हमारे पास कई बड़े उत्तम और बहुत ही जानकार विशेषज्ञ हैं, और वो इस संबंध में अपनी अपनी बातें रखेंगे। एक सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट की एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से एक प्रस्तुति की जाएगी। मिस्टर दीपक कुमार अंडर सेक्रेटरी हैं, वो इसमें प्रस्तुति देंगे। पीपीटी दो वहां पे श्री प्रवीण कुमार महतो हैं, हाँ आ जाइए। वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। वो जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार लोगों जो वल्नरेबल लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। श्री गिरीश मिश्रा हैं, वो डिसएडवांटेज अर्ली पीपुल एट ग्रास रूट लेवल पे किस प्रकार से उनके लिए मदद ऑर्गेनाइज की जा सकती है, जिससे कि सभी को समाज साथ लेकर चले, ये बात पूरी धरातल पे उतर आए। और प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्नत भारत अभियान आईआईटी दिल्ली से, तो वो जो तकनीकी समाधान है जिससे कि सोशली सिक्योर ग्राम पंचायत बने, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज हमारे सामने कई ग्राम पंचायतों के भी प्रेजेंटेशन हैं, सबका नाम ना पढ़ते हुए मात्र इतना बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश, आसाम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड इत्यादि राज्यों को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये आप सब लोगों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट करते हुए कि आपको एक ऐसे समाज की संरचना करनी है और उसमें आप भागीदार हैं जो सबके लिए, किसी को छोड़ता नहीं है, सबको उसकी परिस्थिति के अनुकूल समाधान उपलब्ध कराता है। तो इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं पहले श्री दीपक कुमार अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से अनुरोध करूंगा कि वो सबसे पहले अपनी प्रस्तुति करें। मेरा अनुरोध होगा कि अपनी प्रस्तुति को 8 मिनट में आप प्रस्तुत करें। कुछ समय डिस्कशंस के लिए छोड़ें, क्योंकि जो डिस्कशंस होती हैं उससे ही वास्तव में क्षेत्रीय स्तर पे, पंचायतों के स्तर पे क्या प्रयोग हो रहे हैं उनकी जानकारी मिल पाती है और लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो 8 मिनट प्रस्तुति और 7 मिनट डिस्कशन का मैं अनुरोध करूंगा दीपक कुमार जी से कि वो अपनी प्रस्तुति इस संबंध में दें। Thank you, sir, and good afternoon to all. Respected secretaries of Government of India, respected joint secretaries, Government of India, distinguished guests, and august audience. Thank you, sir, for giving us the opportunity to address this audience. In fact, socially secure is a very big term. And if we want a village really socially secure, then we need to give them economic empowerment. We need to give them educational empowerment, and above all,
give them strength to rise against the social discrimination. Here I would like to just present our scheme which Department of Social Justice and Empowerment is implementing since 2009-10. It is called Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana. This scheme is not a scheme, but it gives a platform where all the existing central government development schemes are merged to give their benefits to their whatever their benefit to the citizen of that village who are eligible as per the guideline of that particular schemes. And since 2018-19, we have defined the parameters, which parameters we are going to saturate to that selected villages. So since my ministry is concerned with the development of scheduled castes only, so we select those villages only which are scheduled caste majority villages. That means villages having SC population more than 50%. Since 2018-19, we have put a more criteria, that is for population criteria. That means all those villages which have a total population of 500 or more with scheduled caste majority population more than 50%, we select those villages for development. And we ensure that we have identified 10 indicators, 10 domains. And within these 10 domains, we have identified 50 indicators. And we ensure that all these 50 indicators are saturated. These indicators are from different developmental schemes which are being implemented by the government of India or state government. So all these indicators are divided into 3 parts. One is for village oriented. Second is for the household of the village. Could you change the slides? No, we don't. Slide no. Okay, thank you. And third is the person which are residing in this village. So our scheme starts with accessibility. Once we think about a village, we think about accessibility, whether the village is accessible or not. This is the first thing which came in our mind. So we ensured that the accessibility of village is there. And when we reach the village, the internal roads should be brick or CC top. Then we ensure that there should be a drainage alongside the internal roads. And then we ensure that there is a sustainable drinking water source so that the villages get pure drink water for drinking. Then we ensure that these waters are going through all the household of that village. We ensure electricity. We ensure whatever the wastes are generated within the villages that are disposed of in a proper manner. That there should be a proper mechanism of solid and liquid waste disposal. Then there must be a street light so that there may not be any incidents of robbery or any sort of threats. Then the internet connection should be there because we are in a very technologically advanced society. So our village should have a proper internet connectivity. And there must be a common service center where each villagers can take advantage of whatever things are going on around the world. They should have access through that cyber cafe or common service center. So these are the things. We also ensure that the toilets should be there in all the schools and Anganwadi. And if there is no Anganwadi, we ensure that there must be a Anganwadi. So for all this activity, the ministry provides 20 lakh for each villages. And if there is a shortage of fund, that should be done through the convergence with the other existing schemes. Then there are second part, which are related to the household of that village. So we start with their house, whether they are living in Kacha house or Pakka house. If they are living in Kacha house, if they are eligible under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, then we ensure that that Awas is provided to that beneficiary. Then we come to individual household latrine. Then we ensure that they should not go outside for defecation. That means the village should be a ODF. Then we ensure that there should not be any dropout.
all children of different ages are going to their respective schools. It is primary schools, it is middle school, it is secondary school, it is senior secondary school, it is post senior secondary school. So there must be, we must ensure that all children of different age groups are going to their respective colleges or schools. Then we ensure that whatever scholarships which the government of India is providing, particularly we are concerned with the scheduled caste children, so we ensure that that scholarship is reached through. Likewise, we all ensure electricity should be there, there is gas, there is soil health card, if the organic farming, digital literacy, there may be self-help group. For individual beneficiaries, we ensure that there must be kindergarten health facility. Their infant mortality rate, mother mortality rate should be zero. Immunization is there. All kind of pension, old pension, disability pensions, and widow pensions are there. They have all. They have proper Aadhaar card. They have proper bank account. They have proper insurance scheme, and there must be some skill development training, and if somebody is willing to take a loans, we should access to their loans. So all these things, if we converge in that village, this will ensure that their economic well-being, their educational well-being, and above all their the life above the minimum level are raised to. Thanks, sir. थैंक यू दीपक। आपने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और आपने 10 डोमेन के बारे में बताया। इससे संबंधित प्रश्न हो, कमेंट्स हो, आपने खुद इस योजना को अपने यहाँ पर चलाया हो और उसमें आपके जो अनुभव हो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट हैं। जिनको जो इस संबंध में बोलना चाहें वो अपने हाथ उठाएं, अपना परिचय दें और अपनी बात कहें। 4 या 5। हाँ, माइक दीजिए। ये ले लीजिए। हेलो। नहीं वहाँ भी है सर, सबका उस पे है। अच्छा, सर जो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, आदर्श ग्राम योजना आवास, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जिंदर शर्मा। आप जो माइक से ही बोल सकते हो। मैं इंद्र कुमार शर्मा, डीडीसी सुंदरबनी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जम्मू कश्मीर। आपने जो आवाज के बारे में बताया, मैं उससे थोड़ा सा जनाब से एक छोटी सी पूछूंगा जो मेरी नॉलेज से बाहर है। हमारे यहाँ जो मकान दिए जाते हैं, हेलो आपने बोला कच्चे मकान होना चाहिए, जिसका कच्चा मकान है पॉलिसी हो रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कच्चे मकान है, जो लिस्टें बनाई गई थी वो रह गई हैं। अब आप यहाँ से ऐप बंदा, दिल्ली से ऐप बंदा, ऐप खुलेगी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले दिन भी किया था। और जो लोग रह गए हैं उनके बारे में आप दोबारा कैसे होगा, कैसे उनकी लिस्टिंग होगी? जो रह गए कच्चे मकान वाले, वो कैसे मकान बनेंगे उनके? अब सर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये योजना है जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो हमारा जो योजना है वो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये योजना जो है बाकी सारी योजनाओं को एक जगह एकत्रित करती है और इसका लाभ सुनिश्चित करती है कि जो चुने हुए ग्राम है वहां तक पहुंचे। पर जो संबंधित योजनाएं हैं वो संबंधित विभाग ही इसके बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं कि उन योजनाओं का लाभ उस गांव के लाभार्थी तक कैसे और कब पहुंचे। ये जो है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से होते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जैसे कि आवास प्लस सब चल रही है। आवास प्लस में भी हमारे काफी लोग जो है रह गए।
ये तीनों को तो आप बंदा वो नए शब्द होते नहीं और शब्दों में आ नहीं सकते, तो मैं यही क्लियर करना चाहता था जब से फिर उनका कोई हाल हेलो हेलो मेरे तो दे दिया डायरेक्ट। और लोग पूछ ले, फिर उसके बाद इनमें से जो बिंदु आप सब लोगों के रहेंगे उनमें से जितनों के उत्तर मैं दे सकता हूं मैं देने की कोशिश करूंगा। और किन्हीं को कोई प्रश्न है कृपया हाथ उठाएं। ठीक है, अपना नाम और परिचय दें और अपनी बात कहें। सर, मेरा नाम ईसाली, मैं लद्दाख से बिलोंग करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल से। मेरा प्रश्न भी यही है कि जो आवास योजना है उसका जो सर्वे हुआ है 2011 में हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, तो अभी तक 2011 से अभी तो 2021 चल रहा है और इसी बीच में जितने भी जो हकदार है उनका जो हक वो अभी ऐसे ही रहा है। तो आगे उस पोर्टल में हमारे वो नए को चढ़ाने के लिए कैसे इसको हम जो है अपने इलाके में या अपने ग्राम सभा में ये करेंगे सर, प्लीज। दूसरे भी मुद्दे उठा सकते हैं, ऐसा ना हो कि एक पक्ष ही आप। सर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अलावा हेलो चेक आप सभी से निवेदन है कि पहले सर को बोल देने दीजिए, हाथ उठाइएगा, हम लोग आपके पास आएंगे, लेकिन कृपया पहले सर को अपना मंतव्य रखने दीजिए, कृपया। तो ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कई सारे पहलू, आवास उनमें से एक है, बाकी पहलुओं पर भी आप अपने मुद्दे उठा सकते हैं और अगर आपने प्रयोग किया हो तो उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। एक इनको बोलने, हाँ आप बोलिए पहले, हाँ बताइए। हाँ सर, मान्यवर, मैं ब्रिजराम टैगोर जिला परिषद हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर से आपसे जानना चाहता हूं कि आज की परिवेश में ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है उसकी वजह से 15वें वित्त आयोग के माध्यम से जो पैसा जियो टैग होना है उसमें ग्राम में समस्या आ रही है, उसके इंटरनेट को ज्यादा और बेहतर बनाने के लिए हम क्या प्रयत्न करें? और कोई मुद्दा? जी सर, हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं अरविंद सकलानी हूँ, उत्तराखंड से, टेरी गढ़वाल से, ग्राम पंचायत झाड़गांव से प्रधान हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें जैसे मेरी ग्राम सभा में लाइक 47 आवास स्वीकृत हैं, लेकिन वो क्या होता है, तो स्वीकृत होने के बाद ऊपर से ही सिस्टम से ऑटोमेटिक वो मकान अलोकेट हो जाते हैं, जबकि ये प्रधान या सरपंच के द्वारा ये होना चाहिए तो कि जिसकी पहली प्राथमिकता है, सपोज एक कच्चा मकान है किसी का और वो गरीब है बिल्कुल, तो उसका मकान पहले आना चाहिए ताकि वो पक्के मकान में कन्वर्ट हो सके। जबकि इसमें ऐसा हो रहा है कि ऊपर सिस्टम से ही आता है कि आपका नाम सिलेक्ट हो गया और आपका मकान, आपके फंड पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सरपंच या प्रधान के कंट्रोल में होना चाहिए कि कौन सा मकान ठीक हो, 2 साल के अंदर अगर मिल रहा है तो पहला कौन सा मकान आना, कौन ज्यादा नीडी है, जरूरतमंद है गाँव के अंदर, वो प्रधान या सरपंच डिसाइड करे, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। वही मैंने कहा, people want to speak on any other matter, please speak, otherwise it is kind of becoming repetitive and would not merit response. Yes, please go ahead. नमस्ते, हम तो तमिलनाडु से, थोड़ा हिंदी आ रहा मेरे को। No, you can speak in English. इंग्लिश नो आ रहा, हिंदी में बोल रहा है। वो आवास प्लस का घर दिया हुआ ना 2011 से। बैठ जाइए आवाज के मुद्दे। नहीं मेरे ख्याल में नहीं, उसका बारे में थोड़ा बात करना था। एक मिनट रुक जाइए, अलग से बात कर लीजिएगा, आपके सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा, लेकिन
अगर हम एक ही विषय पे बात करेंगे तो उससे बात नहीं क्योंकि ये सोशली सिक्योर विलेज में बहुत सारे आयाम होते हैं, सिर्फ आवास पे ही बात करने से तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आवास योजना के बारे में अभी बात नहीं की जाएगी, उसके लिए अलग है। आज का आपका जो थीम है वो सोशली सिक्योर है। कृपया अपने जो आपके पॉइंट्स हैं उनको इससे आप संदर्भित कीजिए। Yes, I think. Last question. नहीं, I think let's conclude. सर आवास का सवाल नहीं है, आदर्श ग्राम के लिए ही है। हाँ बताएं मैडम। मैं प्रीति सिंह झाला, सरपंच ग्राम पंचायत सारोला कोटा से हूँ। और आदर्श ग्राम के लिए अगर बात करें तो हमने जो एक व्यक्ति की जो आखिरी एक यात्रा होती है शमशान की तरफ ही होती है, हम लोगों ने वहां से एक सोच लेके ये चालू किया कि हम लोग जितने भी हमारे 5 गांव आते हैं पंचायत में, तो हम 5 के शमशान का मुआयना करके और वहां पे जो भी कमियां हैं पहले उन सबको पूरा करेंगे और वो सारे शमशान डेवलप करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑलरेडी उसमें फेज में हैं, 4 गाँव के शमशान ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीटेड। उसके बाद हम लोग पानी पे आए तो पानी में मेरी खुद की एक जो सोच है कि पुराने जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनका रिसरेक्शन, केवड़ी हो गई, कुआं हो गया, बावड़ी हो गई, तो उनको रिसरेक्ट करने के लिए हमने जीपीडीपी में उनका वर्किंग ऐड करा, उनका साफ सफाई, उनसे पानी हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग कुछ कम्युनिटीज को वहां से पानी सप्लाई कर रहे हैं, कुछ मोहल्लों को। और उसके बाद फिर हम लोग रोड और सड़क और नाली तो सर आप जानते हैं चलता ही रहता है, गाँव में मेन यही होता है। आवास में सर ये बोलना चाहूंगी कि सब ज्यादातर लोग यहाँ पे आवास का पूछेंगे, क्योंकि गांव में हमारे जब हम लोग जनता से इंटरेक्ट करते हैं, उनके दिल के क्लोज अगर कोई एक चीज रहती है तो रोटी कपड़ा मकान होता है, या तो वो राशन की प्रॉब्लम लाते हैं हमारे पास या फिर वो आवास की लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे और आवास में बहुत टाइम से कई चीजें हैं जो ऊपर नीचे चल रही हैं, ऑटोमेटेड होने की वजह से ऑटो रिजेक्ट भी हो रहे हैं नाम, तो वो कई चीजें हैं जिससे सरपंच बैठ नहीं पा रहे हैं उसके इन टर्म्स विद, तो इसलिए वो लोग ज्यादा इसके बारे में है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मेरे ख्याल में हर प्रश्न का एक सेशन में ही नहीं समाधान हो सकता है, आप अलग अलग से आप मिल लीजिएगा, आपकी बात की समाधान। अब समय का अभाव है, हम लोग ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं। मेरे ख्याल में आवास के मुद्दे पे हमारा मंत्रालय ही काम करता है और इस बात का समाधान आंशिक रूप से मैं करने की कोशिश करूंगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बनी और उसके पहले इंदिरा आवास योजना बन रही थी, कुल मिला के 2014 से लेके आज तक लगभग 2.5 करोड़ घर बन चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कभी समस्या पूरी तरह से नहीं पूरी की जा सकती, क्योंकि मैं अगर हूं तो मेरे बेटे, मेरे परिवार के और लोग हो गए, एक खानदान में 4 नए क्लेमेंट पैदा हो गए। तो 2011 में जब सेंसस किया गया था, उस समय ये नहीं पता था कि आवास, इस सेंसस के आधार पे आवास दिए जाएंगे। जब उस समय सेंसस हुआ और लोगों का सत्यापन किया गया तो कुल मिला के 2,95,00,000 लोग निकले। उस 2,95,00,000 लोगों के पास जब सत्यापन करने के लिए गए तो 80 लाख लोग उनमें से भी पात्र नहीं पाए गए। भारत सरकार की योजना 2,95,00,000 जो उस समय 2011 के सेंसस के आधार पर निकले थे उन पे बनाई गई। तो सरकार ने ये कहा कि 2,95,00,000 में से 2,15,00,000 घर जो हम 11 के सेंसस के आधार पर स्वीकृत करेंगे उसको हम खत्म नहीं करेंगे, बल्कि एक नया सेंसस करा के जिसमें वैसे लोग जो छूट कह रहे हैं कि छूट गए उनको भी हम शामिल करें। अब इस क्रम में होना क्या चाहिए था
कि जो परिवार छूटे हैं उनको शामिल कराएं। सबने छूटने की जगह पे अपने खानदान में जितने लोग थे सबका नाम शामिल करा दिया। अब समस्या ये है कि जेन्युइन कौन है और जो अपने परिवार में पहले मिल चुके हैं उसके बाद 3-4 लोगों का और शामिल करा दिया, ये बड़ा कठिन। तो इसका कुछ तकनीकी समाधान खोजने की कोशिश की गई है। 2 बड़े एक्सपर्ट कमेटी गठित किए गए और उसके आधार पे जो समाधान निकला उसके बेसिस पे समाधान करने की कोशिश की गई। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया, क्योंकि देखिए केंद्र की भी योजना होती है, राज्य की भी योजना होती है। इसके पहले आवास की योजना राज्य भी चला रहे थे, आज भी बहुत राज्यों की आवास योजना होती है। उनसे कहा गया कि भाई आप जितनी हद तक हम यहाँ पे पूरी कर रहे हैं उतना हद तक हम कर देते हैं, आप आगे राज्य सरकार कर लें। और तो ये एक समाधान का तरीका। मैं आपको ये बता दूं कि आज के दिन भी इन आवास योजनाओं में कुल मिला के 3 लाख करोड़ रुपयों की राशि खर्च की गई। 3 लाख करोड़। तो ये बात जरूर है कि योजनाएं जितनी हैं उतने से लोगों को संतोष नहीं हो रहा है, और भी समाधान करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पे घर बनाए गए। 7-8 सालों में 2.5 करोड़ घर बनाना, और अभी भी लगभग 1 करोड़ 20 लाख घर और बनने हैं जिसके लिए लोगों के नाम स्वीकृत किए गए हैं। तो कुल मिला के 3.25 करोड़ घर बन रहे हैं। इसको हम लोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं हो सकता, धीरे धीरे समाधान होता है। और मैं समझता हूं कि हम सबको एक मन में कृतज्ञता का भाव लेकर जितना समाधान हुआ उतना उस पे संतुष्ट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता का भाव अवश्य रख के आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें मिलकर इसका समाधान करने की कोशिश करेंगी, और जितना हद तक हुआ उससे हम आगे बढ़ें। बाकी जो आपने एक राजस्थान की बहन ने जो सौदाह गृह के बारे में बताया कि उसके माध्यम से आपने समाधान करने की कोशिश की है, वो आपका काम अप्रोच है समस्याओं के पीछे, बड़ा अच्छी सोच है। मैं आपकी सराहना करता हूँ। पर मैं अनुरोध करूंगा कि जो इसके बाद की अगली प्रस्तुति हो, उस अगली प्रस्तुति में हम जो सोशली अनफॉर्चुनेट लोग हैं, जो कमजोर हो गए हैं, जो भविष्य में कमजोर हो सकते हैं अगर उनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया गया, तो उस पे हम चर्चा करें। एक तब जाके सोशली सिक्योर विलेज का वास्तव में जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। मैं अनुरोध करूंगा श्री प्रवीण महतो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, कि वो अपनी प्रस्तुति दे। जैसे मैंने मिस्टर दीपक कुमार के बारे में कहा था, वैसे ही मैं श्री प्रवीण से भी वही कहूंगा कि 8 मिनट की अपनी प्रस्तुति दे, 7 मिनट डिस्कशन का छोड़े। Thank you, sir. Respected Secretary Rural Development and Chair of this session, Secretary Panchayati Raj, other dignitaries on the dais, and dear friends. My presentation would be on National Social Assistance Program, which is a comprehensive social security program implemented by the Government of India. My first slide is basically it gives the scheme of the presentation, so I'll skip this given the paucity of time. The first thing, as in the opening remarks, Secretary Rural Development had mentioned, that is about Article 41, which directs the states to provide assistance to old age, sick, and disabled, among others. So in fulfillment of these provisions, the government launched the National Social Assistance Program on 15th of August 1995. In the beginning, this program had only 3 schemes, which were old age schemes, National Family Benefit Scheme, and National Maternity Benefit Scheme. In 2001, the National Maternity Benefit Scheme was transferred to
Department of Health and Family Welfare. This slides present the various modifications that have been undertaken in the National Social Assistance Program. So firstly, as we can see, in 2001, Annapurna Yojana was included, which provides for 10 kilogram of food grains to eligible beneficiaries. Right, so I'll skip even this. The current structure of National Social Assistance Program is, it has 5 components: old age pension scheme, which provides for 200 rupees per month for people aged 60 to 79 years, and the pension is increased to 500 per month for 80 years and above. The second component of the scheme is widow pension scheme, which provides for rupees 300 per month for persons aged 40 to 79 years. Again, it is increased to 500 after 80 years. Disability pension scheme, it provides for 300 for 18 to 79 years and 500 for 80 plus. The fourth component is the National Family Benefit Scheme, which provides for one-time assistance on the death of the primary breadwinner of the family. And fifth one is the Annapurna scheme, which provides for 10 kg of food grains per month for the old age persons who are not covered under the old age pension scheme. However, this component in the recent years has seen significant decline in the offtake because of the National Food Security Act, NFSA, because it provides it is much more attractive than what we provide under the Annapurna Yojana. So, eligibility insofar as एक अनुरोध है कि ये सारी चीजें ये इतने सालों से सभी लोग रोज कर रहे हैं, राइट सर। तो यहाँ पर हमें स्कीम की ये नई कॉन्सेप्ट क्या है सर, आगे क्या ये है उस सर NSAP beneficiaries, if we see there has been a continuous increase in the number of beneficiaries, so it has increased from 1.29 crore in 2007-8 to almost 3 crore in 21-22. The fund release, again, it has shown a continuous increase during the period. Insofar as funding, how the funds are released, everyone would be aware of that. What we would like to present over here is that how the states are contributing towards this cause. So what we see in this chart is basically, if we see the old age pension scheme, the states are contributing. There are few states who are not contributing from their own, but most of the states are contributing in the range of rupees 50 to rupees 2,300 crore. Similarly, in the widow pension scheme, if we see, they are contributing from again from rupees 50 to almost 2,000 rupees. And under the disabled pension, they are contributing from rupees 50 to almost 2,700 rupees per month. In addition to that, what the states have also done is that under the NSAP, there is a threshold as insofar as the coverage is concerned. So the threshold at this point of time is around 3 crore, whereas the states, through their own scheme, what they have done is they have enhanced the coverage, and they are covering, as per the information that we have at this point of time, is they are covering, in addition to 3 crores, 4.6 crore. So almost 7.6 crore are being covered under the various, under the 3 pension schemes that the government is providing. Now, so this is the basic information that I thought I'll give to you. Now, coming to what we at the ground level, how the NSAP has helped in enhancing, the coverages. Also, as I said, that although the NSAP is providing only 3 crores, but states have contributed to, increasing these numbers to almost 7.6 crore. During our national level monitor, which basically surveys on a phase-wise manner all the states as well as maximum districts. Insofar as the latest information that we have from the national level monitor is that they basically covered 28 states, 294 districts, and about 3,000 villages. The information that we get from them is that
almost all the villages had coverage under old age pension scheme, almost 92% under widows pension scheme, and more than 70% under disability pension scheme. However, the most important aspect that this report provides to us is that there is only 1% villages where there are more number of beneficiaries than those covered under these pension schemes. So, in a sense, what this report provides is that the pension schemes which are being run by the state government along with the government, along with the central government, almost all the villages, all the eligible people are covered, and there is so what NSAP has helped is in identifying the beneficiaries at the grassroots level. The second feature that it has helped in is basically, providing a decent amount of pensions. So almost 23 state governments, they are providing pension amount of 1,000 rupees 1,000 plus to these pensioners. So this is another aspect. The third aspect that these reports have provided us is the regularity and the timeliness of these pensions. So, तूने भी बोला है, मैंने बहुत कुछ नहीं बोला, बट जैसे कि थोड़ा बहुत होता है तो मैं जैसे कि हाँ सर करते हैं, सबसे खराब ये इसका मतलब so 90% another important is a point that I certainly like to make is doorstep delivery of pensions. So these NLM report has the information that has been provided by these reports is that 90% pensions are disbursed through DBT mode, and even 10% where it is provided in cash. It is mostly provided on a fixed day, and mostly it is verified through the Aadhaar. Regular and timely pension, almost 75% of the beneficiary received pension in time, and usefulness of pension amount, yes, almost 72% used pensions for food, 16% for medical purposes, and 12% for other expenses. Awareness is another component where we have been emphasizing, and what we have found is that there has been fairly decent awareness among the Gram Panchayat functionaries regarding the pension schemes. 83% of the beneficiaries were aware about their entitlements. And however, given that there were certain districts where the awareness was poor, so I would just like to say that we have basically launched a citizen-centric mobile application Sambal, which basically promotes awareness among the beneficiaries about the features of this scheme. So with this, I would just conclude. Thank you. दो प्रश्न सिर्फ समय बच रहा है। पीछे में एक हाथ उठ रहे हैं, उनमें से एक जो सबसे कोने में बैठे हुए हैं वो बेचारे एकदम बिल्कुल छिप गए हैं, टोपी पहनी हुई है। आप हाँ बताएं। नमस्कार, मैं अमित शर्मा, डीडीसी काउंसलर जम्मू कश्मीर उधमपुर से। सर, पेंशन योजना की बात हो रही है तो इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो जो विडो पेंशन है वो 40 साल से ऊपर जब एज हो तो उसको मिलता है। मान लो कोई 20-25 में विडो हो जाए तो वो एक बड़ी बाढ़ है उसमें। तो मेरी ये आग्रह है कि इसकी एज जो है वो कम की जाए। और दूसरी जो पेंशन योजना है हमारी, जैसे 1000 रुपया मिलता है तो उसमें एक फिक्सेशन है कि 40,000 लोगों को मिलेगा तो 40,000 लोगों को ही मिलेगा। जब उनमें से कुछ लोग मर जाएंगे तो फिर जो जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई होगी उनका नंबर आएगा। अब हम लाइफ सर्कल को बढ़ा रहे हैं, एज लिमिट जो हमारे हेल्थ पे हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं उससे एज बढ़ रही है, तो उस इशू में हो सकता है जो आज ऑनलाइन रजिस्टर हुआ उसका 10 साल नंबर ना आए। मेरे ख्याल में आपके मुद्दे क्लियर हैं। मैं दूसरे किसी रिप्रेजेंटेटिव से आग्रह करूंगा।
आप बोलना, पीछे बोलना चाह रहे हैं? आपने हाथ उठाया था पीछे? नहीं, आप यस। सर मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति में 10,062 पात्र परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। पात्र होने के बावजूद भी वो आप देखिए, इस तरीके से आप ये समय, दूसरों का समय भी जाया कर रहे हैं, क्योंकि आवास के मुद्दे पे चर्चा हो चुकी, तो काफी समाधान किया गया। आप बैठ जाइए कृपया, कृपया बैठ जाइए। हाँ बताए साहब। मैं सुंदर सिंह, अध्यक्ष प्रधान संगठन जौनपुर। सर मेरा कहना यह है कि अभी आपने जो है सर पेंशन के जो ओल्ड पेंशन है इसके संबंध में बात की है, तो इसके लिए सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है। जो हम पहले जो है पेंशन हम आराम से एक आदमी की पेंशन जो ओल्ड पेंशन थी वो आराम से दे पा रहे थे, लेकिन अभी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है कि मियाँ बीवी को दोनों को जो है पेंशन दी जाएगी जो है, लेकिन वो कैसे दी जाएगी वो बड़ी दिक्कत कर दी होगी। 60 साल बच्चा जो 18 साल से ऊपर जो है अगर किसी का बच्चा बालिग है उसी को दी जाएगी जो है। तो अगर बाप से भैया माँ जो है अगर जो है 60 साल की है तो बच्चा 20 साल 30 साल या 20 साल का होगा जो है। तो ये तो बड़ी भारी दिक्कत हो गई सर कि हम उसको पेंशन कैसे दिलाएं। बहुत पात्र लोग हैं सर जो है, तो हम तो एक को भी पेंशन नहीं दिला सकते सर इस तरह से जो है। मैं आपका प्रश्न नहीं समझा, क्योंकि कोई व्यक्ति उसको 2 शर्त होनी चाहिए। एक तो जो पात्र उम्र है वो होना चाहिए, और दूसरा है कि वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए। अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर के हैं तो आप खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। अगर गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि खुद अपना गुजारा बिना राज्य की सहायता के कर सके, वैसे मामलों में सहयोग कराया जाता है। तो अब इससे आप कैसे उसको जोड़ रहे हैं, मैं बहुत नहीं समझ। मेरा कहना है सर कि अभी जो है सरकार ने हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए जो है पेंशन लागू की है 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, लेकिन जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ये कर दी है कि जिसका बच्चा 18 साल से ऊपर होगा, बालिग होगा, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी जो है। तो चाहे वो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी राज्य सरकार ने नियम बनाया होगा, मैं इसके बारे में जानता नहीं। राज्य सरकार के पदाधिकारी अगर होंगे उनसे आप इस संबंध में बात करिए, पर उसकी मंशा हमको समझनी चाहिए। परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने माता पिता की देखभाल करें। अगर कोई परिवार के सदस्य सक्षम है और फिर भी माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे हैं, समाज को और सरकार को सबको ये इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि वैसे उन परिवारों पे, उन व्यक्तियों पे दबाव डाला जाए कि वो अपने माता पिता बुजुर्ग लोगों की मदद करें। मैं बात इस संबंध में आपसे चर्चा के क्रम में अनुरोध करने ही वाला था, आपने अच्छा किया ये बात उठा दी कि हम सब लोग ऐसे कई सारे मामले आ रहे हैं जहां पर बच्चे सक्षम हैं और माता पिता की का देखभाल नहीं कर रहे हैं, घर से निकाल दे रहे हैं। वैसे मामलों में भी पंचायतों की भूमिका है। तो आप सब जब सोशली सिक्योर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो ऐसे मुद्दों की भी, ऐसे मामलों की भी पहचान करनी चाहिए, और उन मामलों में आपका ग्राम पंचायत किस प्रकार से मदद कर सकता है। कुछ तो औपचारिक रूप से हो सकती, कुछ उस परिवार के साथ डायलॉग करके बात उसको समझा के, बुझा के, सामाजिक दबाव डाल के अगर उनको अपनी जिम्मेवारियों के लिए तैयार कराया जा सकता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी।
क्योंकि हर चीज सिर्फ स्टेट के कानून से ही है ऐसा नहीं है। ये स्टेट सोसाइटी सब मिलकर काम करेंगे तभी जाके सोशली सिक्योर विलेज का की कल्पना पूरी होगी। समय कम है इसलिए मैं दूसरे स्पीकर की ओर आग्रह करूंगा उनसे। अभी नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर गिरीश कुमार है, नेशनल डायरेक्टर लाइवलीहुड्स एंड इमरजेंसी हेल्पेज इंडिया। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में अपनी प्रस्तुति दें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको दोपहर का नमस्कार। और आज दोपहर के सत्र में मंचासीन हमारे सचिव महोदय ग्रामीण विकास, सचिव महोदय पंचायती राज, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अदर डिग्नेटरीज ऑन द डे डाइस। हिंदी में बोले तो अच्छा है। जी जरूर जरूर सर। अंग्रेजी बोलेंगे। तो अभी जो हम लोगों की चर्चा है, जो हम एक अपने समाज में जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और उसमें ऐसे जो कमजोर और वंचित वर्ग, अगर हम इस तरीके से देखें, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे जो दिव्यांगजन है, उनमें से एक मुद्दा जो बुजुर्गों का है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगर हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि वो हमारे एक परिवार के हिस्सा है, और आज अगर इस तरह के फोरम पे उनके बारे में चर्चा हो रही है और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा थी, जो उनका सम्मान था, जो उनका जगह था, वो चाहे परिवार में हो या समाज में हो, वो कहीं ना कहीं छिन्न हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, और तभी सरकार को या संस्थाओं को इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। तो ऐसे तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं, तो हमें उनके बारे में पूरी जानकारी है, और हम सब लोग जानते हैं उनके बारे में, उनकी परिस्थिति में। लेकिन एक कुछ चीजें जो हमारी जानकारी में आता है, या जब हम बुजुर्ग की बात करते हैं, एक सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, तो जो पहला चीज हमारे जेहन में आता है वो ये आता है कि ऐसे लोग जो कुछ कर नहीं पा रहे हों, जो बेड रिडेन हो, बिस्तर पे हो, कमजोर हो, दूसरों के ऊपर आश्रित हों, वो कुछ करने वाले नहीं हो, यूजलेस हो, उनको माने कि नहीं वो कुछ करने वाले नहीं है, या फिर यूं कहें तो हमारे समाज में या हमारे परिवार के ऊपर जो है एक बोझ की तरह हो, और ऐसा आज देखा जाने लगा है। लेकिन मैं आप सब लोगों का ध्यान इस कुछ फोटोज के ऊपर डालना चाहूंगा, अगर आप लोग इन्हें पहचान रहे हो, क्योंकि ये भी हमारे समाज के बीच के ही लोग हैं और किसी न किसी राज्य से हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये जो पहले व्यक्ति आप देख रहे हैं, जो हमारे चुलटिंग चोंजोर 68 वर्ष के एक बुजुर्ग हैं, जो जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र से आते हैं, और आज तक हम उन्हें नहीं जानते थे जब वो एक पद्मश्री के अवार्डी नहीं हो गए। एक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने सिर्फ अकेले अपने दम पर 38 किलोमीटर सड़क बना दी। या फिर दूसरी जो अम्मा हम देख रहे हैं, तुलसी गौड़ा जी, जो कि कर्नाटक राज्य से आती हैं, और एक 78 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने, ये भी पद्मश्री अवार्डी हैं, और इन्होंने हजारों वृक्षों का प्लांटेशन किया है। जब इन्हें अवार्ड मिला था तो 30,000 से ज्यादा वृक्षारोपण ये कर चुकी थी। एक तीसरे व्यक्ति जो हम देख रहे हैं, हरिकला हजीबा जी, वो भी कर्नाटक से ही आते हैं, और कर्नाटक के एक बस स्टैंड में ये ऑरेंज वेंडर है, ये नारंगी बेचते हैं। और
ये बेच के इन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खड़ी कर दी बच्चों के लिए। और ये ध्यान उनको तब आया जब किसी विदेशी महिला ने उनसे आके पूछा और वो बात नहीं कर पाई। जब वो बात नहीं कर पाए उनसे, तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें अशिक्षित नहीं रहना है, हमारी जो आगे की पीढ़ी है उनको अशिक्षित नहीं होने देना है। और तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारी जो कमाई होगी वो स्कूल में जाएगी, और उन्होंने एक स्कूल तो बना दिया है और वो प्रयास कर रहे हैं शिक्षित करने का। तो मैं बस आपको एक, अगर हम बोले, सिक्के का दोनों पहलू दिखाना चाहता था। जब मैं बुजुर्गों की हेल्पेज इंडिया जैसी संस्था बात करती है, या हम अपने परिवार में, समाज में अगर बुजुर्गों की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें हम बिस्तर पर लेटे हुए या फिर उसी तरीके से देखें कि वो हमारे ऊपर बोझ है। और उसी कड़ी को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो थोड़ी सी जानकारी जो हमें होनी चाहिए, जो हमारा नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे है, कि अभी जो हमारे यहाँ जो बुजुर्गों की संख्या है उसमें से लगभग 93% बुजुर्ग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, जिनको कि एक, जब वो काम, जो भी काम करते हैं या जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं और वो जिस भी तरह के जीविकोपार्जन का काम कर रहे हो, उसके साथ उनकी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उनके लिए, लेकिन एक जो फॉर्मल पेंशन है वो 93% बुजुर्गों को नहीं मिलता है। और इसमें से 71% जो जनसंख्या है हमारी बुजुर्गों के देश में, वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो इसलिए भी यहाँ जो पंचायत के प्रतिनिधि बैठे हैं, और जब हम पंचायत की बात करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि युवाओं की और बुजुर्गों की बात करें तो आज जैसे युवा पलायन कर रहे हैं शहरों के तरफ या शहरी क्षेत्रों के तरफ, तो वो भी एक गैप बना हुआ है। लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी 100 में से 71 बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जिसमें से 49%, मतलब आधी जनसंख्या महिलाओं की है इस क्षेत्र में जो है। और एक जो अभी की जो परिस्थिति बनी है, जिसे हम देखते हैं, और जिससे कि शायद हमारी अनभिज्ञता अभी तक है, कि जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, तो अभी जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब ये सर्वे किया है तो उन्होंने पाया है कि 60 वर्ष के बाद और अगले 18 वर्ष तक कम से कम वो जिंदा रहने वाले हैं। तो एक जो हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है, वो हमारे देश में बढ़ गई है। और इससे पहले का जो सेशन था वो हेल्थ के ऊपर ही था, हेल्दी विलेज के ऊपर ही था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो आगे बढ़ी है, तभी ये संभव हो पाया है। लेकिन ये भी एक सोचने का विषय है कि अगर 60 वर्ष के बाद कोई भी हमारा नागरिक, भारतीय नागरिक, अगर औसत 18 वर्ष तक जिंदा रहता है, तो क्या हम उससे कुछ काम नहीं लें? क्या वो हमारे परिवार में, हमारे समाज में कुछ भी हमारी मदद नहीं करे? क्या 18 वर्ष तक सिर्फ हम उनको बैठ के खिलाएं क्या? तो ये एक प्रश्न हमारे सामने है। एक जो खास करके अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें, अभी हमारा कुछ प्रेजेंटेशन हुआ जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर है। जो सरकारी योजनाएं हैं वो हैं, बुजुर्गों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन खास करके जो हम जानते हैं उसमें से एक ही योजना ऐसी है जिसकी समझ या जिसका लाभ सबसे ज्यादा बुजुर्गों को मिलता है, और वो है जो हमारा ओल्ड एज पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो वही एक उनके लिए है। और एक और उसमें आगे अगर मैं जोड़ूं तो अगर जब हम 78 वर्ष के उम्र की बात करते हैं या फिर बुजुर्गों की बात करते हैं, और जब हम लोग बोझ की बात कर रहे थे कि परिवार के ऊपर या समाज के ऊपर या सरकार के ऊपर या संस्थाओं के ऊपर बुजुर्ग अगर बोझ हैं,
तो फैक्ट यही है कि सिर्फ 8% ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे जो कि बिस्तर पे, मतलब जो काम करने की हालत में नहीं है, वो 100 में से 8 ही हैं। तो इसीलिए जब हम एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जब हम अपने समाज में, अपने गांव में काम करते हैं, तो हमें इस सोच के साथ बुजुर्गों को देखना है। थोड़ा एक्सपेडाइट करिए। कुछ जो हमारा जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे थे, तो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बहुत सारे हिस्से हैं, ये जो बहुत सारा है वो बुजुर्गों के लिए है और बुजुर्ग उसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए हमें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखते हुए भी जो बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम है या उसका जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें वो फिट आते हैं, तो हम बुजुर्गों को उसमें शामिल कर सकते हैं। ये कुछ चीजें थी। अब अगर हम इस पर चर्चा करें कि ये कैसे किया जा सकता है, जो हमारी आज के चर्चा का विषय है वो ये है कि इसको हम कैसे करें और उसमें पंचायत का क्या रोल हो सकता है। तो पहली चीज तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले हमें बुजुर्गों को हम 3 तरीके से देखें, और वो 3 तरीका क्या हो सकता है देखने का। एक, हमारे पास ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके की डेली लिविंग में कोई दिक्कत नहीं है, उनको हमारे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद से कर पाते हैं, चाहे वो उनकी कमाई हो, चाहे उनका जो भी काम हो वो कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको की थोड़ी मदद की जरूरत है, वो बुजुर्ग तो हो गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, शायद उनके आंख में कैटरैक्ट हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, जिसके चलते नहीं कर पा रहे, और थोड़ी अगर हम उनकी मदद कर दें, वो अगर कैटरैक्ट निकल जाए तो वो काम के लायक हो सकते हैं। या एक मोबिलिटी का इशू हो सकता है कि वो सुन नहीं पा रहे हो, या हो सकता है कि उनके पैर में कुछ दर्द हो, तो वो इस तरह के जो बुजुर्ग हैं उनकी अगर हम थोड़ी मदद करें तो वो फिर से काम के लायक हो सकते हैं। और तीसरा एक कैटेगरी जो था, जो हम लोग 8% की बात कर रहे हैं, हाँ, बुजुर्गों में ऐसे भी लोग हैं जिनकी की निर्भरता हमारे ऊपर है, और वैसे लोगों के लिए ही हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ इन्हें प्रदान करना है या इन्हें हमारी सब मदद की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पहले इस तरह की योजना बनाएं कि और उसे एक सर्वे या जिस भी माध्यम से हम देखें कि उनकी जरूरत क्या है, क्या उनको आर्थिक मदद की जरूरत है, क्या उनको समाज में देखभाल की जरूरत है, क्या उनको स्वास्थ्य की जरूरत है, क्योंकि सभी बुजुर्गों को सब कुछ की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम उनका एक क्लासिफिकेशन करके, एक वर्गीकरण करके हम उनके लिए योजनाएं बना सकते हैं। और पंचायत जो हमारा है वो इसमें फर्स्ट रिस्पोंडेंट हो सकता है, क्योंकि उनके पास वो लोकल है और उनके पास सबसे ज्यादा जानकारी इनके बारे में है। इसके साथ साथ ही अगर हम इसके लिए योजनाएं बनाते हैं, तो उसमें वहां स्थानीय स्कूलों को, वहां जो और भी सामाजिक सेवा देने वाली संस्थाएं हैं, जो युवा हैं, उनको जोड़ के इनके लिए किया जा सकता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि क्या जब ये बुजुर्ग बहुत दिनों तक हमारे साथ रहने वाले हैं, तो उनको हम एक्टिव एजिंग, उनको भी जो है वो इस स्थिति में बनाए कि वो सबल महसूस करें, ऐसा नहीं कि वो हमारे ऊपर जो है वो आश्रित हो जाए। तो कुछ इस तरह का काम हम लोगों ने जो हेल्पेज इंडिया है या सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है कि उनका समूह का निर्माण करके या और अन्य तरीकों से, चाहे वो आजीविका का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा देने का मामला हो, या फिर उनके अधिकारों को देने की बात हो, तो ये सब चीजें कुछ की गई है जो इस फोटोज में देख सकते हैं आप। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जो पंचायत के स्तर पर है वो क्या अभी हो रहा है, क्या पंचायतों ने किया है, या क्या हम कर सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो पहला चीज तो ये है कि एक, जैसे अभी बहुत चर्चाएं हो रही है महिला जो हमारा स्वयं सहायता समूह है, और उसके माध्यम से उनका
जो है आत्मसम्मान और जो है आजीविका किया गया है। तो इसी तरह का काम बुजुर्गों के साथ भी किया जा सकता है कि उनका एक समूह बनाकर और उनका जो भी है, चाहे वो अकेलापन का हो, उनकी आजीविका का हो, उनका स्वास्थ्य का मुद्दा हो, वो उसको एड्रेस किया जा सकता है। और इसके लिए अभी हमारी कुछ योजनाएं भी हैं जो ग्रामीण विकास के माध्यम से, और अभी एक अग्रसर स्कीम करके हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उन्होंने ये किया है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो उनकी एक मासिक कम से कम बैठक बुलाएं। जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं या जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो एक कम से कम एक मासिक बैठक बुजुर्गों की बुलाएं और उनमें उनके साथ उनकी समस्याओं का या वो और कोई योगदान अगर समाज में कर सकते हैं तो उसकी चर्चा करें। उनके लिए एक दैनिक देखभाल केंद्र जैसा कुछ बनाया जा सकता है जिसमें अलग अलग तरहों की सुविधा उनको देने की बात हो। उनके लिए जो है एक हेल्थ कैंप्स आयोजित किया जा सकता है कि छोटी मोटी जो उनकी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनको जो है वो एड्रेस किया जाए। जो हमारा अभी योजनाएं हैं, जैसे हम जो हमारा स्वच्छता मिशन की योजनाएं हैं या फिर जो निर्मल जल योजना है, ऐसी योजना में जैसे हमारा जो स्वच्छता अभियान की जो योजनाएं हैं, उसमें अगर हम अभी ठीक है टॉयलेट्स बनाते हैं, बट क्या हम उसी में इल्डर फ्रेंडली टॉयलेट बना सकते हैं? क्या यूरोपियन स्टाइल में टॉयलेट बन सकता है जिससे कि उनको सुविधा हो, उनके जैसे जिनको जोड़ में दर्द हो उनको असुविधा नहीं हो? तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पंचायत में इन सब तरहों का काम किया जा सकता है। उनके लिए कुछ जो है फिजियोथेरेपी सेंटर या कुछ पिकनिक्स, कुछ राज्य सरकारों की योजनाएं भी हैं, तीर्थ यात्रा और ये सब भेजने की। इन सब चीजों को जो है वो पंचायत के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करके जो है बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं या कुछ ऐसा कार्यक्रम है जो हम कर सकते हैं, जैसे उनके लिए लाइब्रेरी बना सकते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लें, उनके लिए हेल्पलाइन, अभी भारत सरकार ने एक बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है जो भारत के स्तर पर है, सभी राज्यों में भी नहीं हुआ है, लेकिन एक 14567 एक 5 नंबर का 14567 ये नंबर का एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू किया है जो बुजुर्गों की समस्याओं के लिए है और बहुत सारे राज्यों में वो लागू हो गया है और अभी और कुछ राज्यों में लागू होगा। तो पंचायत इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्गों की जो असुविधाएं हैं या जो उनकी समस्याएं उनको एड्रेस कर सकती हैं। कुछ सर्विसेज उनको दिखाया जा सकता है, कुछ जो उनसे वॉलंटियरिंग करवाई जा सकती है। तो ये सब सारी योजनाएं हैं जो कार्यक्रम है वो पंचायत के माध्यम से किया जा सकता है। कुछ आप देख सकते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम ही हुआ है। सो लास्ट पॉइंट तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि पंचायत के माध्यम से बुजुर्गों का जो एक इंक्लूजन है, जो बुजुर्गों का समावेशन है, वो किया जा सकता है और बहुत सारी जो हमारा ग्राम पंचायत का जो विकास कार्यक्रम है, जो जीपीडीपी है, उसमें इनकी समस्याओं को शामिल करके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसे मिशन अंत्योदय है, उसमें बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। एक वृद्धजन सभा वार्ड के लेवल पे बनाया जा सकता है। तो उद्देश्य हमारा यही है कि अभी जब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ स्वास्थ्य सेवा के बढ़ने से वो अगर हमारे साथ ज्यादा दिनों तक रहने वाले हैं तो हम उनको कैसे सशक्त बनाएं और कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, उसके लिए अगर हम काम करें तो ये बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। 2 प्रश्न, समय का कम का अभाव है, फिर भी 2 प्रश्न या 2 कमेंट्स आमंत्रित करेंगे। एक आपने उधर उठा रखा हाथ, खड़े हो जाइए। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। मैं कुलदीप सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत बम्बोरी, जिला बूंदी, राजस्थान।
क्या 60 साल बाद की उम्र वालों को नरेगा में काम दिया जा सकता है? आपका एक प्रश्न ही है? एक तो ये ठीक। दूसरा ये है कि मेरे वहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम चलाया जा रहा था, लेकिन लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर पुलिस प्रशासक और जिला परिषद, ब्लॉक स्तर वाले मेरा कोई सहयोग नहीं करते, इसलिए मुझे वहां काम करने में समस्याएं आ रही है। गंदे पानी को बाहर निकालने में, ड्रेन खुदाने में, इनमें मुझे बहुत समस्या आती है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ भारत सरकार के माध्यम से मुझे वहां मदद मिले ताकि मैं मेरे गांव को स्वस्थ गांव बना सकूं। धन्यवाद। कोई और भी? मेरे ख्याल में उस कॉर्नर से मैंने पहले पूछा था, और कहीं पे इस वाले लाइन में किन्हीं को कोई? हाँ भाई, आप उस बहन के पीछे हैं, आप बताएं। हिमाचल बोलना शुरू कीजिए, सुन लेंगे। हाँ बताइए। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीमें दी जाती हैं सर, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा स्कीमें दी जाती हैं तो जैसे सारे देश के लिए एक तरह की स्कीम दी जाती है, मगर जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, तो जो पैसा आता है वो खर्च नहीं हो पाता उस हिसाब, क्योंकि स्टेट को डिमांड अलग अलग होती है। तो क्या उस हिसाब से वो स्कीमें बनाई जा सकती हैं कि पर स्टेट अलग अलग प्रकार से पैसा दिया जाए, उनको अपना शेल्फ खुद बनाने की दी जाए, इजाजत दी जाए, इस तरह कुछ? देखिए, दो प्रश्न मैंने लेने के लिए कहा था। मैं दो प्रश्नों में से दोनों के कुछ समाधान करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ मुद्दे भी आपके सामने रखूंगा जो गिरीश जी के प्रेजेंटेशन के बाद चर्चा में निकल के आ रहे हैं। नरेगा में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को काम दिया जा सकता है, इस पे किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। दूसरा जो हिमाचल के भाई ने कहा कि क्या हम अपनी योजनाएं इस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें हर राज्य की परिस्थिति के अनुकूल बने। कुछ योजनाएं हैं जहां पे कोई बंदिश ही नहीं है, जैसे महात्मा गांधी नरेगा एक उदाहरण है, 15वां वित्त आयोग से जो ग्रांट मिल रहा है वो एक उदाहरण है। पर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जहां पे वो किसी खास विषय के लिए बनी है, और उसमें केंद्र सरकार जब फॉर्मुलेट करती है तो पूरे देश का एक लेके चलती है, और उस मॉडल के तहत एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है। लेकिन अपेक्षा ये होती है कि राज्य उसमें सप्लीमेंट करें। कई राज्य करते भी हैं और कई राज्य नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको उसको अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से कंटेक्सचुअलाइज करना चाहिए। गिरीश जी ने जो बात कही उसमें बहुत सारे ग्राम पंचायतों के लिए काम करने का रास्ता निकला है। मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत को जो उनके यहाँ वृद्ध भाई बहन है उनका सर्वेक्षण करा के, उनकी जरूरतों को समझ के उनका हम कैसे सहयोग कर सकते हैं और उनसे हम कैसे सहयोग ले सकते हैं। ये जैसे बताया इन्होंने कि 8% ही लोग बेड रिडन हैं, बाकी सारे लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं या थोड़ी मदद से स्वस्थ हो सकते हैं, अपने जीवन का कार्यकलाप अच्छी तरीके से संपादित कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये सभी के सभी लोग ऐसे हैं जो काफी अनुभव लेके आए हैं, पूरा 50 साल, 60 साल, 80 साल का अनुभव है उनका। कोई किसी सरकारी सेवा में होंगे, कहीं पर बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे। क्या ग्राम पंचायतें उनकी मदद ले सकती हैं, चाहे वो उनके यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाने का हो या लाइब्रेरी चलाने का हो या अपने लिए प्लानिंग करने का हो, तो इन चीजों में भी हम उनकी मदद ले सकते हैं। अक्सर जब हमारी ग्राम पंचायतें सोचती हैं तो सोचने का दायरा हमारा थोड़ा सीमित हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि या तो जो सरकारी कर्मचारी है या वार्ड पंचायत, वार्ड पंच और सरपंच मिलके जो हम कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ
बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वॉलंटियर के रूप में मदद कर सकते हैं। अगर हम उनको अपने साथ जुड़ के काम करने का मौका प्रदान करें तो ये हम सब लोगों के लिए एक चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कई लोग इस चैलेंज को पहले ही इन्होंने समझा होगा, काम भी किया होगा कि हम ऐसे भाई बहनों को कैसे अपने ग्राम पंचायत की काम के संपादन में, काम के निष्पादन में उनकी मदद ले सकते हैं और ग्राम पंचायत के काम का दायरा बढ़ा सकते हैं। हमारे काम का दायरा सिर्फ योजनाओं में, वो खासकर सिविल वर्क्स में सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमारी उचित हो रही है कि नहीं हो रही है, हम सबको स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति की जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि की स्थिति है उस पर हम नजर रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। इन सब में हमारे जब वॉलंटियर बेस बड़ा होगा तो हम निश्चित तौर पे जो ग्राम पंचायत से अपेक्षा है कि हम पूरे ग्राम पंचायत की स्थिति को समझ के उसका समाधान निकाल पाएंगे, वो हम पूरा कर पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से इस अवसर पे आह्वान करता हूं कि आप सब लोग इसी पर्सपेक्टिव में अपने दायित्वों को समझें और देखें। एक जो इस अवसर पे मेरा ग्राम पंचायत के लोगों से निवेदन है और कई बार इस पर मैं थोड़ी गहराई से अनुभव करता हूं, हमारे गांव के लोगों में कई बार ऐसा होता है कि लोग बुढ़ापा या किसी कारण से वो विकलांग हो जाते हैं। अब उनको बस तक पहुंचने के लिए या एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। या तो आप स्ट्रेचर पे लाद के ले जाइए या फिर उनको अपने हाल पे छोड़िए। हम पंचायतों से जितने भी हमारे लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा इस पे एक बार सोचें कि हम कैसे ऐसे सभी परिवारों के लिए बस की सुविधा, बस स्टैंड तक पहुंचना आसान बना सके। हम क्या एक ट्रॉली ला के दे सकते हैं ग्राम पंचायत की ओर से कि ऐसा किसी भी वृद्ध को या ऐसे किसी भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को जब इस प्रकार की मदद की जरूरत हो तो वो परिवार स्ट्रेचर पे लाद के नहीं बल्कि एक ट्रॉली के सहारे लेके उस परिवार को वहां ला सके। तो इस तरह की चीजें बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन उससे परिवारों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। ये मेरे मन की बात थी, मैं आप सबसे अनुरोध इस पर विचार करने का कहता हूँ। गिरीश जी ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाते। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर विवेक कुमार जी से जो उन्नत भारत अभियान IIT दिल्ली से हैं। और मैं गिरीश जी के विवेक जी के बारे में बता दूं, जितनी देश की उच्च शिक्षा की संस्थाएं हैं वो कैसे समाज के कामों में मदद कर सकती है, उसके जो आउटरीच एक्टिविटी चलती है उसको पूरे देश के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। उसमें IIT, IIM, यूनिवर्सिटी सारे जुड़े हुए हैं, उसको प्रोफेसर विवेक कुमार कोऑर्डिनेट करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप संबंधित टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर अचीविंग सोशली सिक्योर्ड GPs के बारे में बताएं। नमस्ते। सर्वप्रथम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी का ये जो आइकॉनिक वीक, इसका जो अभूतपूर्व आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन और आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ इस सफल आयोजन के लिए। और साथ में मुझे इस अवसर पर मेरे अनुभव साझा करने के लिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। ऑनरेबल चेयर फॉर द सेशन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेक्रेटरी MOPR, एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी MOPR, अदर डिग्निटरीज ऑन द डायस और सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि। मुझे जिस विषय पर बोलना है विषय था टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फॉर सोशली सिक्योर्ड ग्राम पंचायत। तो थोड़ा सा हमने अपना ये जो कार्यक्रम है शिक्षा मंत्रालय का उन्नत भारत अभियान, उसके नाते से इसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड किया है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की स्थान पर मैं नॉलेज इंटरवेंशंस की बात करूंगा, क्योंकि उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य है
नॉलेज इंटरवेंशंस के माध्यम से जो हमारा विजन है ग्रामीण विकास की, जो हमारी प्रक्रिया है, उसमें किस तरह से हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी हो और वो कैसे उनकी जो पूरी शिक्षा है उसका पूरा रीओरिएंटेशन ऐसा हो कि वो समाज के विकास और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो इस विषय पर ये कार्यक्रम कंसेप्चुलाइज हुआ 2014 में एक वॉलंटरी एक्शन के नाते से, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के कुछ फैकल्टी मेंबर्स और फील्ड एजेंसीज के कुछ कार्यकर्ता थे। बाद में शिक्षा मंत्रालय ने इसे अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया और 2018 में सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया। तो इस कार्यक्रम के नाते से जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में जो फैकल्टीज है और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो किस तरह से गांव में जाएं और गांव के साथ काम करें, वहां की जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनके बारे में जानकारी जुटाएं और उसके बाद उन चैलेंजेस पर काम करने के साथ साथ उनके जो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस है, और जब मैं एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो उसमें सस्टेनेबिलिटी की भी बात अपने आप होती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करें और उस पूरी प्रक्रिया में जो हमारी जो ग्रामीण विकास की प्रक्रिया है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेटिव बनाए। तो इस तरह का एक प्रयास है। थोड़ा सा मैं इस पूरे जो हमारा जो कार्यक्रम है इसको जो हम लोग लागू करते हैं, इसमें 45 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे भारतवर्ष में, जिसमें IITs, NITs, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके माध्यम से करते हैं। IIT नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन है। और ये जो नॉलेज मैनेजमेंट का एक जो बड़ा नॉलेज इंटरवेंशन का जो कंपोनेंट है, इसको उन्होंने अलग से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप की कल्पना है, यानी कि जो विषय विशेषज्ञ का एक समूह है और उस समूह में एक किसी भी खास विषय पर, जैसे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, इस विषय को लेकर पूरे देश भर के विशेषज्ञों की एक समूह बना रहे हैं, जिसमें जो विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग जलवायु, अलग अलग भौतिक परिस्थिति के एक्सपर्ट्स हैं, तज्ञ हैं, और वो अलग अलग जगह हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ या हमारे जो ग्राम पंचायत है उनके साथ काम करें, ऐसी एक कल्पना है। थोड़ा सा इस प्रक्रिया को यदि हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, जब हम सोशली सिक्योर ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो वो एक पूरा प्रोसेस है। सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जब हम बात करते हैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से बात बनने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का एक प्रोसेस है, और उस पूरे प्रोसेस में कम्युनिटी का किस तरह से भागीदारी हो, और वो बातें जो है वो जो चाहे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो चाहे नॉलेज इंप्लीमेंटेशन हो, उसमें भागीदारी, जन भागीदारी कैसे हो, उस पूरे प्रोसेस को हमने आपके साथ करने की कोशिश की अमृत भारत अभियान में। तो पहला पार्ट अमृत भारत अभियान का होता है विलेज अध्ययन, और ये इसीलिए मैंने लिखा रूरल इमर्शन एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो जब हम रूरल इमर्शन वर्ड यूज करते हैं तो इसमें हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, और मूलतः छात्रों की मैं बात करूंगा, तो एक लंबे समय के लिए वो गांव में, तो हर इंस्टीट्यूशन को जैसे 5 गांव के साथ काम करना है, तो वो लंबे समय के लिए उस गांव के साथ जुड़ते हैं, और उसमें सिर्फ सर्वे या PRA जैसी एक्सरसाइज ही नहीं है, बाकी और भी जो रैपिड बिल्डिंग की जो एक्टिविटीज है वो लोग करते हैं। इसलिए हमने इसको नाम दिया विलेज अध्ययन। विलेज अध्ययन में वो इस पूरी जनभागीदारी के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फिर एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस की कल्पना करते हैं, और अंत में हमारा जो सभी इस पूरे कार्यक्रम का लक्ष्य है वो यही है कि किस तरह से जो हमारे पंचायत GPDP और VDP जो बनाते हैं उसमें नॉलेज इंटरवेंशंस कैसे हो, उसमें जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ज्ञान या उनके अनुभव, या जो ग्रासरूट लेवल पर भी जो ज्ञान है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक प्रक्रिया है GPDP की, उस प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर भी जो ज्ञान होता है वो भी शायद नहीं आ पाता। तो इस पूरे रैपिड बिल्डिंग एक्सरसाइज में जो लॉन्ग टर्म इमर्शन है उसमें वो बने, और इसीलिए हम अपने 3 मूलभूत सिद्धांतों की बात करते हैं: नॉलेज शेयरिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कन्वर्जेंस। हमारी जो पूरी लर्निंग हुई पिछले 4-5 वर्षों में, उसमें हमने पूरा एक प्रक्रिया इवॉल्व की है जिसको हमने टेक फॉर सेवा का नाम दिया है। जब हम समस्याओं की बात करते हैं या नीड्स की बात करते हैं तो अक्सर देखा है कि जो समाज के सबसे निचले पायदान पर जो
समूह है या व्यक्ति है, उनकी समस्याओं का निराकरण या उनकी क्या वास्तविक समस्या है वो कई बार छूटती है। और जिस तरह से हम R&D इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, लिटरेचर बेस्ड हम लोगों का काम होता है, या जो हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी कैपेसिटी, उनका जो पूरा उनकी योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, लेकिन उनके पास वो एक वर्किंग ग्रुप उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लगातार ये जन भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो एक टेक फॉर सेवा का एक मॉडल क्रिएट किया हम लोगों ने 2018 में, एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें कि आप एक दो विषय में को ध्यान से देखेंगे तो एक दो विषय हमने ऐसे रखे, जैसे एक विषय था कि जो हमारे दिव्यांगजन है उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल नीड्स है, या जो ऐसे काम है जो कि समाज का बिल्कुल ऐसा वर्क कर रहा है जिसकी आवाज ऊपर तक नहीं जा रही है, जैसे कि कोल माइनिंग में काम करने वाले लोग हैं या सैनिटेशन वर्कर्स हैं, तो उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल नीड्स है इस विषय पर। और इस पूरे टेक फॉर सेवा में हमने इंश्योर किया है कि जो चारों स्टेक होल्डर्स हैं टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन प्रोसेस के, यानी कि जिनकी नीड्स है वो जो नीड पे सॉल्यूशंस दे सकते हैं वो, और साथ में जो कमर्शलाइज कर सके ऐसे एंटरप्रेन्योर्स। और चूंकि हम सोशल विषयों की बात कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, सामाजिक प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे संस्थाएं और ऐसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले समूह, तो ऐसे सभी चारों समूह को लेकर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की और हर सेशन को हमने बहुत ओपन सेशन रखा। हमारा आइडिया ये है, और इसको अभी हमने रिसेंटली वर्चुअल मोड में टेक फॉर सेवा स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ इश्यूज चंडीगढ़ के साथ मिलकर किया था, और ऐसे अलग अलग विषयों पर ये पूरी एक प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं, और इसको हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में, मतलब एक फ्रेमवर्क फॉर्म में, एक वेब पोर्टल के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से आगे लेकर जाने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने जिस तरह के इंटरवेंशंस प्लान किए हैं, मैंने आपसे SDGs की बात की, तो उसमें हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे 300 प्रोजेक्ट अभी तक हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी कस्टमाइजेशन के लिए है। इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि इन 4 मुख्य बिंदुओं का हमने ध्यान रखा है कि लाइवलीहुड हो, विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी, सस्टेनेबल फूड एंड फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। ये 4 विषयों पर हम मूलतः ध्यान रखते हैं। ये 5 हमारे थीमेटिक एरियाज हैं जिनको हमने अपने पंचायती राज के सभी 29 विषयों के साथ लिंक किया है, और उनके साथ जो हमारे 17 SDG गोल्स हैं उनको भी हमने लिंक किया है। 5 थीमेटिक एरियाज और उनके साथ जुड़े हुए पंचायती राज के विषय और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सबको हमने लिंक किया है। बहुत तेजी से मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने उदाहरण सामने रख रहा हूं जहां पर जो हमने 3 मूल सिद्धांतों की बात की, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, नॉलेज शेयरिंग और कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस से हमारा आशय है कि हम उन्नत भारत अभियान में कहीं अलग से कोई फंड की व्यवस्था या अलग से कोई नॉलेज एक्सपर्ट्स हायर करना, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारी अलग अलग स्कीम्स है, अलग अलग, तो हम लोग सभी अपने इंस्टीट्यूशंस को यही कहते हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विभिन्न स्कीम्स है उनके माध्यम से जो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाए उनके माध्यम से बनाए, और एक्सपर्ट में भी जो नॉलेज शेयरिंग का भी है, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल है उनका कन्वर्जेंस हो। तो ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जहां पर छात्रों ने 8 ग्राम सभाएं की, VDPs 5 गांवों के बनाए। ये महाराष्ट्र का एक उदाहरण है, और आप लोगों को सुनकर हर्ष भी होगा कि 3 प्रोजेक्ट वहां लिए गए। एक रोड बनाने का प्रोजेक्ट था, एक अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था, और एक तीसरा प्रोजेक्ट वहां पर अभी कंस्ट्रक्टिव वेटलैंड का भी चल रहा है। इन तीनों में जो पूरा नॉलेज कंपोनेंट है वो इंस्टीट्यूशन का था, जो डिजाइन सर्वे से लेकर डिजाइन तक, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स जो भी सरकारी संस्थाएं इनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने किया, लेकिन नॉलेज कंपोनेंट पूरा। इसी तरह से ये एक हिमाचल का कैरियर यूनिवर्सिटी का उदाहरण है, जहां पर विमेन एम्पावरमेंट पूरे 20 ग्राम सभाओं में हमारे छात्रों ने पार्टिसिपेशन किया। ये पत्थलपुरम का एक उदाहरण है, वहां पर भी ग्राम सभा, फिर PRA, और PRA के माध्यम से आप एक ऊपर एक देख पा रहे हैं जहां पर एक डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव एंड इकोनॉमिकली फिजिबल हाउस डिजाइन केपेबल ऑफ ओवरकमिंग नेचुरल कैलेमिटीज। तो हर जगह हम लोग देख पा रहे हैं कि कहीं टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का
एक कोई उदाहरण हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, या कम्युनिटी एम्पावरमेंट या अवेयरनेस या स्किल, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग देख पाएंगे इसमें। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट केयर एक है जो कि जिसमें कि एक हमारे ट्राइबल ग्रुप है कनी ट्राइब तिरुवनंतपुरम में, आइसर तिरुवनंतपुरम में एक उदाहरण है। डॉक्टर विवेक थोड़ा कम क्विकली, मैं बहुत क्विकली जाता हूँ। IIT दिल्ली का मैं स्किप कर देता हूँ। ये बस मैं की इम्पैक्ट हमारे गंडी खाता क्लस्टर है, उसको हमारे इंटरवेंशन के बाद ODOP प्रोग्राम में मशरूम डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। ऑलरेडी 2 बड़े एंटरप्राइज और 10 छोटे एंटरप्राइज वहां आ चुके हैं। ये हमारे छोटे छोटे से इंटरवेंशंस हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस 1 सेकंड लूंगा। पंजाब का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स ने बीटेक प्रोजेक्ट किया और एक हाइड्रोलिक मशीन उन्होंने बीटेक प्रोजेक्ट में डिजाइन की और वो पंचायत को दिया, क्योंकि वहां जो स्ट्रीट लाइट्स का जो खराब हो जाती थी उनका रिपेयरिंग नहीं हो पाती थी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कोविड काल में नॉलेज इंटरवेंशंस के बहुत सारे कार्यक्रम हुए। ये एक हम लोगों ने 40 ऐसे कार्यक्रम किए ऑनलाइन कोविड के समय में, जिसमें कि लगभग 18 भारतीय भाषाओं में ये कार्यक्रम थे और ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा गया, जिसमें कि एक डॉक्टर और एक अदर एक्सपर्ट भी रहते थे, जो कई बार क्योंकि कोविड में साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की भी बहुत जरूरत रही, तो ये इसमें भी एक तरह से टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने पूरा यूज किया। नॉलेज मैनेजमेंट के लिए अभी हम लोग CSIR के साथ पूरा एक कन्वर्जेंस कर रहे हैं। नेक्टार है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी आउटरीच, उनके साथ नॉर्थ ईस्ट में मिलकर स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। CSIR के साथ मिलकर हमने एक पूरा उनका जो टेक्नोलॉजीज है ये भी एक अभी कंपेंडियम उन्होंने रिलीज किया है। ये पूरा फ्रेमवर्क हम लोगों ने डेवलप किया, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजीज थी वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है उसको समझने के लिए फ्रेमवर्क की जरूरत थी। तो हम लोगों ने जॉइंटली इस पे काम किया। नॉर्थ ईस्ट वाला हमने बताया कि 4 ऑलरेडी स्टार्टअप नेक्टार ने फंड किए हैं, जिनको भी हमने UBA के माध्यम से मेंटर कर रहे हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं। ट्राइफेड के साथ ये स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, समय की बाध्यता भी है। ये DST के साथ उत्तराखंड में 10 क्लस्टर्स हम लोग लाइवलीहुड बेस्ड वहां पर इंटरवेंशंस है, इनको हम लोग कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ कैच द रेन कैंपेन का है। और अभी हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी ने हमें लिखा था कि किस तरह से हम सैगी और मिशन में, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा एक प्लान बनाया है। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस और SDGs के साथ हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और हमें खुशी होगी कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के साथ मिलकर काम करेंगे। LIRD ऑलरेडी हमारा एक थैंक यू धन्यवाद। तो मेरे ख्याल में कई ग्राम पंचायतों की प्रस्तुतियां होने वाली हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको प्रारंभ करता हूं और उन प्रस्तुतियों से ही कुछ मुद्दे उभरेंगे जिन पे चर्चा हम। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। चेयर का सवाल है आप सबके बिहाफ पे, कैसे आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं? किस तरह से जो ये टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है उसको अगर आगे लेके जाना है तो आप लोग इनके साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं? नहीं, हाँ, हमारी वेबसाइट है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनसे जुड़ने के लिए हम लोगों को आगे जाना है। चलिए, तो ये लोग भी जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम लोग खुद पंचायतों के पास जाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अभी हमारे पास 3000 इंस्टीट्यूशंस हैं, 15,000 है। ये जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो आपके हैं जी, वाइज और ये वेबसाइट पर है, वेबसाइट पर है। वो हम लेके हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट को कम्युनिकेट करेंगे कि वहां पर ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। फिर जो संबंधित ग्राम पंचायत के साथ लिंकेज होगा कि वो किस ग्राम पंचायत में कौन इंस्टीट्यूशन काम करेगा, that they can be decided at the district level. So that we will leave it to the states. Presentation करवा लीजिए। ब्रह्मेश्वरम ग्राम पंचायत आंध्र प्रदेश अपनी प्रस्तुति देना चाहता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहें। आप अपनी बात कहेंगे या पावर पॉइंट वीडियो फिल्म आई?
हर ग्राम पंचायत से एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव और एक ग्राम पंचायत के सरपंच या उनके प्रतिनिधि। Good afternoon all. Namaskar. Myself Mesar Subbarad Yadav, Brahmastra Gram Panchayat Sarpanch, SPSR, Nellore District, Andhra Pradesh. Today I am going to give a presentation on social security village. I can proudly share my Brahmastra village as a social security village. Under the dynamic leader of our beloved CM Sir, Sri Y. Jagannath Reddy Garu, we made Brahmastra village as a social security village, as a village with the support of different schemes of central and state government. Video please. AP state government brings Mahotsav concept to the poor needy people. The aim of Mahotsav concept is to strengthen the economic and social status of the poor. Our Brahmastra village is very much benefited by this Navaratna scheme. YSR pension Kanka, we are provided 8 types of social security pensions every month. YSR Asra, SHG women benefited under this scheme. PM Kisan and Raitu Bharosa, all eligible farmers are getting 13,500 rupees each year. YSR around 280 people are benefited in my village. YSR Bima 125 families are benefited in my village. Local goals and targets to improve living standards of the BPL households, in providing productivity, employment and infrastructure. Role of Gram Panchayat, monitoring livelihood activity under LGNRGS, monitoring SDGs activities and PDS distribution system,
monitoring the Gram Sachivalayam services and volunteer services. Strengthen Gram Sabha for ensuring responsibility and transparency. Role of Gram Panchayat to make sure safe, secure environment for women and girl saving. To make sure quality education, to make sure productivity, producing infrastructure in the school and health centers, to make sure completed registration of all birth and death marriages, to make sure equal work opportunities. All the streets in my village I have covered with CC roads, LED street lights, 100% land resurvey done under the Swamipa scheme. All these households in the village are covered life insurance scheme. All the farmers are benefited under the PM Kisan and Right Bharosha scheme. All the households in the village are Pakka houses and no Kacha houses in our GP. 100% children are going to school and land on dropouts in our GP. All the eligible households in the village have e-Sarma cards. ODF plus declared village. 100% house tax collection for 3 years, last 3 successful years. Production of and sale for vermicompost for over revenue sources of my village. 100% household water tap connections with 24/7 water supply with help of Jal Jeevan Mission. Under the ground drainage system. Ensuring end-to-end activity of social solid waste management and liquid waste management and plastic waste management in our GP. All the eligible households in the May I request you to kindly limit? What the sir? 10 minutes. MG NRJS cards, RF Sri health cards and rights cards, bank accounts are SLG membership. I personally thank you, the Minister of Panchayati Raj, Government of India for producing all the welfare and development schemes by including the scheme of I have been selected as the best Sarpanch award in the district in 2021. Sabka Vikas, Sabka Swat, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Jai Hind, Jai Bharat. तो आपको ब्रह्मेश्वरम के सरपंच जी से कुछ पूछना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं समझता हूं कि अलग से लोग बातचीत करना चाहते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं पातर चारखुची ग्राम पंचायत के सरपंच जी से कि वो आगे अपनी सोशली सिक्योर ग्राम पंचायत के संबंध में उन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में बताएं। Respected chairman of this afternoon session and all dignitaries of senior officers from Government of India in the dais and all August gathering. I am Pavitra Kalita. I am Gen Director from SIPRD Assam. So just I brief about this panchayat, how they going to be secure village. मेरे ख्याल में आप अपने सरपंच जी को ही बोलने दीजिए। Yes. थोड़ी हिंदी भाषा कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। दिल से कहेंगे तो बात दिल तक। So we have one documentary, sir. First we play that documentary, then documentary चला लें, उसके बाद सरपंच जी से लोगों को बात समझनी होगी तो समझेंगे। So documentary please. ভাৰতবৰ্ষৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকেই বসবাস কৰে গ্ৰামাঞ্চলত। বৰ্ষা ঋতুৱে গাঁওবাসীৰ বাবে কঢ়িয়াই আনে সৃষ্টিৰ সপোন। গাঁৱত বাস কৰা লোকসকলৰ খাদ্য, বস্ত্ৰ, বাসস্থান, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। এই আঁচনিসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত গাঁও পঞ্চায়তসমূহে তৃণমূল পৰ্যায়ত ৰূপায়ণ কৰাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে।
এই সকলো আঁচনি সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰা এখন গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল অসমৰ বজালী জিলাৰ 125 নম্বৰ পাটাচাৰকুছি গাঁও পঞ্চায়ত। নমস্কাৰ, মই ৰিংকু গোস্বামী, বজালী জিলাৰ বজালী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 125 নম্বৰ পাটাচাৰকুছি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি। আমাৰ পঞ্চায়তখনত 7খন ৰাজহ গাঁও আছে। আমাৰ পঞ্চায়তখনৰ মুঠ জনসংখ্যা 9,315 জন। পঞ্চায়তখনত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা 14 ফাইনেন্সৰ যিমানবিলাক আঁচনি আছে আমি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি গৈছোঁ। আমাৰ 15 ফাইনেন্সৰ অন্তৰ্গত এবাৰ 7টা আঁচনি আহিছে, তাত টাইট ফাণ্ডত 5টা আছে, আনটাইট ফাণ্ডত 2টা আঁচনি আছে। এই গাঁও পঞ্চায়তত পিছপৰা আৰু নিৰাপদ বাসস্থান নথকা লোকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত 1 কোটিকৈ গৃহ প্ৰদান কৰা হৈছে। চৰকাৰৰ পৰা ঘৰটো পাইব বহুত সুখী। সকলো লোকেই যাতে খাদ্য লাভ কৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত বিনামূলীয়া আৰু সুলভ মূল্যৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে। শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে সংহত শিশু বিকাশ আঁচনিৰ অধীনত অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহে কাম কৰি আছে। লগতে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত মাতৃ আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত আঁচনিসমূহ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। তদুপৰি শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন, ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় বিধৱা পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক অক্ষমতা পেঞ্চন আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় বৃদ্ধ পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল কল্যাণ আঁচনিৰ দ্বাৰা এককালীন সাহায্য, আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য আঁচনি আদিৰ আধাৰত বহু হিতাধিকাৰী উপকৃত হৈছে। মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনিৰ অধীনত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকক জব কাৰ্ড প্ৰদানেৰে কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ লগতে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি কৰা হৈছে। চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত গাঁৱৰ লোকে পকী শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা গাঁওবাসীয়ে নিজৰ লগতে গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে। গাঁওখনৰ ৰাস্তা ঘাট, খেলপথাৰ, পুথিভঁৰাল, বিদ্যালয় আদিৰ উন্নয়নৰ দ্বাৰা গাঁওখন স্বয়ং সম্পূৰ্ণ হৈছে। আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গোটক আৰ্থিক সাহায্য, বেংক ঋণ প্ৰদানেৰে উপাৰ্জনমুখী কৰ্মৰ দ্বাৰা জীৱন নিৰ্বাহৰ মান উন্নত কৰাত গাঁও পঞ্চায়ত সফল হৈছে। তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃবন্দনা যোজনা, অৰুণোদয় আঁচনি, দীনদয়াল অন্ত্যোদয়া যোজনা, উজ্জ্বলা আঁচনিৰ যোগেদি গাঁৱৰ ৰাইজে সন্তুষ্টিৰ হাঁহি মাৰিছে। গাঁও সুৰক্ষা বাহিনী, পথৰ বিজুলী বাতিৰ ব্যৱস্থাৰে সামাজিকভাৱে সুৰক্ষিত গাঁও পঞ্চায়ত ৰূপে এই পঞ্চায়ত পৰিচিত। সকলো লোককে সমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই গাঁও পঞ্চায়তে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছে। সেইবাবে এই গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিজন লোকে সামাজিকভাৱে সুৰক্ষিত হৈ শান্তি সম্প্ৰীতিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি উন্নতিৰ পথত সন্তুষ্টিৰে বাট বুলিছে। नमस्कार। मंच पे बैठे हुए सभी गण्यमान्य व्यक्तियों, मंच के सामने हमारे पंचायत साथियों, सभी को हम असम की तरफ से रंगाली बिहू का शुभकामना देता हूं। अनेक जाति, धर्म, वर्ण, भाषा निर्विशेषे भारत की पूर्व प्रांत में अवस्थित समन्वय का निशान वाला राज्य है असम। असम की जनगण हेतु एक सुस्थ, एक गतिशील समाज बनाने लोगों को सत्ता एवं मौलिक अधिकार को साकार करने में हमारा अधिकार है। आजादी की 75 साल बाद पंचायती राज व्यवस्थाओं ने भारत की हर जाति, हर धर्म की, हर गांव की लोगों का सपना साकार करने में कुछ सक्षम हुआ। केंद्र सरकार की हर पगड़े हमारे पंचायत के द्वारा गांव की सभी जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया गया। इन्हीं पगड़े से गरीब लोगों को कल्याण साधन किया गया है। असम के बजाली जिले में बजाली उन्नयन खंड में अंतर्गत पाटासारकुसी गांव पंचायत अवस्थित है।
सामाजिक भाग से हमारे पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए पंचायत प्रधान हेतु समाज के हर तरफ के लोगों का साथ करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना एक बड़ा सपना था। उसको साकार करने के लिए असम सरकार द्वारा बनाया गया निर्भर नारी आत्मनिर्भर हम, जिसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। इस योजना को मद्देनजर रखते हुए हमारे पंचायत की ओर से मनरेगा स्कीम के तहत हर गरीब महिलाओं को कृषि और पशुपालन की अनेक सी योजना लाया गया है। हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 11 एलपी स्कूल है, 2 हाई स्कूल और 28 आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्रों को शिशुओं का रोज अनाजना और पढ़ाई की बारे में हर महीने में हर आंगनबाड़ी केंद्र में मैं खुद जाकर पूछताछ करता हूँ और बच्चा स्कूलों में जाने के सुनिश्चित किया जा चुका है। हमारा पंचायत इलाके में एक भी शिशु श्रमिक नहीं है। हर गांव में एक सेल्फ प्रोटेक्शन कमेटी बनाया जा चुका है। हमारा असम सरकार ने वृद्ध माँ बाप के देखभाल करने के लिए हमारा असम सरकार ने वृद्ध माँ बाप के देखभाल करने के लिए प्रणाली बनाया गया। पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। इस एक्ट में अगर कोई नौकरी करने वाला माँ बाप के केयर नहीं लेता है तो उसको सैलरी से 10-15% का भाग माँ बाप का मिलेगा। मैं इस पर कभी नजर रखता हूँ। हमारा मैं सरपंच जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात सीमित करें। अगर कोई 2-3 बातें महत्वपूर्ण बातें बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी फिल्म में सारी बातें लगभग कवर कर ली गई हैं, कुछ बातें छूटी हो तो उसको जरूर आप। ठीक है सर। हर 2 महीने के अंतराल स्क्रिप्ट प्ले के जरिए मैंने खुद अभिनय करके बाल विवाह, दैनिक हत्या, नस्ल पदार्थ की वर्जन, मलेरिया, जापानीज एन्केफेलाइटिस, कालाजार, डेंगू, पोषण अभियान आदि के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा पंचायत के अंतर्गत सभी गांव पंचायत में गांव सुरक्षा के लिए गांव रक्षी वाहिनी है, विलेज डिफेंस पुलिस, जिसके द्वारा हर गांव में पूरी रात चक्कर पहरा का व्यवस्था किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे ग्राम पंचायत में खुले जगह में शौच करना बंद किया जा चुका है। 7 सामूहिक स्थानों पर 7 सीएमएससी टॉयलेट का निर्माण कराया संपूर्ण करके उन्हें अभी यूज कर रहा है। मीन पालन हेतु पंचायत के अधीन हर जलाशय में फिशरी डिपार्टमेंट के साथ खुद बातचीत करके सेल्फ हेल्प ग्रुपों को लोन का व्यवस्था किया जाता है। खेल के माध्यम से युवा पीढ़ियों का शारीरिक या मानसिक विकास के लिए हमने भी काम किया। हमारे पंचायत इलाके में वॉलीबॉल और फुटबॉल की प्रशिक्षण केंद्र स्थापन किया। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी में भिन्न खेलों का प्रतियोगिता अनुष्ठित किया जाता है। हमारा असम में हर महीने की 10 तारीख को पेंशन दिन माना जाता है। 10 तारीख के अंदर एनएसपी और असम सरकार की तरफ से देने वाला पेंशन धनराशि उनके अकाउंट में मिलता है कि नहीं, मैंने दूर तक जाकर बेनिफिशियरी को पूछा जाता हूँ। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात समाप्त करें। मैं मुलाल तुरुती ग्राम पंचायत केरला के सरपंच जी को आमंत्रित करता हूँ। मुझे जो बात पंचायत ग्राम पंचायत में लगी कि सरपंच जी इसमें हर चीज का ध्यान कर रहे हैं और उन्होंने संस्थाएं गठित की हैं जो
उनकी इस काम में मदद कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। सभी सरपंचों के लिए, ग्राम पंचायत के लोगों के लिए इसमें काफी बड़ी सीख है। नाउ आई रिक्वेस्ट सरपंच ऑफ मालूतुरुती ग्राम पंचायत केरला टू से हर प्लीज। सभी को मेरा सादर प्रणाम। Respected dignitaries and delegates, I am Resia Mandani, Joint Director of Panchayat Directorate Tirunelveli. Here is with me the team of Molanguruthi Gram Panchayat, Mariamma Benni, the President of Gram Panchayat, Vice President, and Representative Sri Rajesh. The video present here. Yes, How please play the video. And after that, the representative will explain the challenges they have faced. आजादी का अमृत महोत्सव ദേശീയ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കേരള സംസ്ഥാനത്തെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുന്തത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വയോജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനസമൂഹം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവരുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ വാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തത്. വരുമാനമില്ലായ്മ, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷക്കുറവ്, സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിവയാണ് വയോജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ. നിയമസഹായത്തിനും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും കൗൺസിലിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുകയും പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും അവരെ പരിചരിക്കുന്നതിനുമായി ഹൃദയാരോഗ്യം, സ്നേഹസഞ്ജീവനി എന്നീ നൂതന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. സാമൂഹ്യ ഒറ്റപ്പെടൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകൽ വീടുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കൂടാതെ 3 തലമുറകളുടെ സംഗമ കേന്ദ്രമായി 3G അങ്കണവാടി എന്ന ഒരു നൂതന ആശയം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കി. 17 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സമഗ്രമായ സർവേ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നടത്തി ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബത്തിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ശേഖരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആദ്യം ചെയ്തത്. സ്കൂളുകളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം, മികച്ച ശുചിമുറികൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ദേശീയ നിലവാരത്തിൽ 1.25 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഒരുക്കിയ ഇൻഡോർ നീന്തൽക്കുളം നാടിന് തന്നെ മാതൃകയായി. കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരീക്ഷാകാലത്ത് ഉത്കണ്ഠകൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് 3G അങ്കണവാടിയിൽ വിദഗ്ധരായ കൗൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ എല്ലാ മാസവും നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതത്വ ബോധവും ആത്മാഭിമാനവും വളർത്തുന്നതിന് കാരണമായി. 3 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ഭൗതികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം പഞ്ചായത്തിലെ 28 അംഗനവാടികളിലും ഒരുക്കി. വിനോദത്തിനും വിശ്രമത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയും വെടുപ്പുമുള്ള ഉറപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒരുക്കി അംഗൻവാടികളെ ഭാവിയുടെ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി. ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമായ 24 രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പഞ്ചായത്ത് സൗജന്യമായി ഡയാലിസിസ് നൽകി വരികയാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന സമൂഹമാണ്. വീടുകൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ബഡ്സ്, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ എന്നിവ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ കാർഷിക ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പാക്കുകയും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് 100 കിടക്കുകളോടുകൂടിയ ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ നടത്തി ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. സാമൂഹ്യ അടുക്കളയും ജനകീയ ഹോട്ടലും നടത്തി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഏവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ. ലിംഗവിവേചനത്തിനെതിരെ സ്ത്രീപക്ഷ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി 100-ലധികം സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ രാത്രി നടത്തം സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുന്ന വേറിട്ട പരിപാടിയായി മാറി. 2030 ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാ വിഭാഗം ജനതയ്ക്കും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും പകരുന്നതിനും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ട് വെച്ച സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മേഖലയ്ക്ക് മാതൃകയായി നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും സ്വരാജ് ട്രോഫിയും 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായപ്പോൾ ആ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമൊപ്പം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്.
Respected and distinguished guests on the dais and among the audience, very good afternoon from Malandurthi Gram Panchayat. To attain the social security and to provide social security to all the citizens, firstly, we made a survey to ascertain the target groups. Then we take the old age, the children, the migrant population. There is a migrant labor population in Malandurthi Gram Panchayat, some around 1,000, and palliative care patients. Those are receiving home, and that kidney patients are there. All were included in the target groups, and then we conducted a detailed survey on each group. The problems were identified as we seen in the video. थोड़ी आपस में बातचीत कम करिएगा तो इनकी बात सुन पाइएगा। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, जो बात सोशली सिक्योर विलेजेस में होनी चाहिए वो सारी बातें केरल के इस ग्राम पंचायत में की। अगर आपस में ही आप बात करते रहिएगा तो इनकी बात तो आप सुन नहीं पाइएगा, और उससे आपको जो सीख मिल सकती है, लर्निंग हो सकती है, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया शांतिपूर्वक सुने, और अगर आपको तब भी कुछ मुद्दे रह जाते हो तो आप अलग से इनसे समाधान कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड। We conducted the survey with the help of teachers, ASHA workers, and some voluntary organizations, with the help of KILA, Kerala Institute of Local Administration. They provided us the questionnaire for the survey and printed forms, and what data are to be combined, they gave us the guidance. And after that survey, we identified the problems. Then we formed a committee and panchayat wise for each group, and held Grama Sabha meetings, special Grama Sabha meeting for all the groups, for old age people, for the differently abled, for the children, and those of the palliative care representatives. And we sort out the problems, and then on the next year onwards, we implemented projects, and we took projects and programs for bringing these people under the social security schemes. In Kerala, the rate of social security pensions are very high comparing to other states. We are giving 1,600 rupees to a pensioner per month, and that is not a large amount, but it will support the security needs of the people. And in Malandurthi Gram Panchayat, there are 5,484 pensioners. And now, besides the NSAP schemes, we have another pension scheme, that the agricultural labor pension, irrespective of the income of their age. All the agricultural laborers after retirement, that is 60, can receive this pension. And the MGNRG scheme we implemented in Panchayat is highly pumping out income to the poor people. In last year, 192 lakhs were given as wages in Malandurthi Gram Panchayat. A total of 66,000 mandates were created. 450 families were given 100 days job last year. That was a very well income generating scheme, and that helped the people very much. And for the old age people, we formed neighborhood groups, and these neighborhood groups are now conducting some micro enterprises like canteen making and handicraft making, and they are generating their own income.
we gave subsidy to those people also under our plan schemes. And we have a pain and palliative care. 624 patients are receiving this palliative care from our team. A medical officer is put in charge, and 2 nurses are visiting the home and give home care to these palliative patients. Another program is that is the ALIV, that assistance to kidney patients for dialysis. 24 patients are receiving subsidy for kidney dialysis per week. I think I'll request Sarpanji to kindly conclude. I think you spoke very well, and whatever was covered by Shri Girish Tisra seems to have been translated by you in practice. So that's great, and very gratifying to hear that this has all been put in place. Now I request, if colleagues have any question to put to Sarpanji, then that's fine. Otherwise, we can go over to the next. Okay, I think you can ask after this session concludes. So now I request 3 Gram Panchayats, and they will put together a common presentation. Kadri, Kadakam, and Keralwala Gram Panchayat, Uttarakhand. तीनों का joint presentation है. Okay, thank you. A small submission, sir. अच्छा, एक ही है. खदरी खड़कमाप and केदारनाथ. 2 ग्राम पंचायत. A small submission, sir. presentation एक ही कर रहे हैं. हाँ, वो एक ही में. माननीय सचिव ग्राम विकास भारत सरकार, अपर सचिव और अन्य अधिकारीगण, सभागार में मौजूद पूरे देश से आए हुए पंचायत प्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, पंचायतों के नवनिर्माण के संकल्प उत्सव के अवसर पर आयोजित इस भारत के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि शांति बनाए रखें। अगर आप मैं जो हमारे प्रेजेंटर हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपनी प्रेजेंटेशन संक्षिप्त रखें, क्योंकि अधिकतर लोग उठ के जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप भी अपना प्रेजेंटेशन संक्षिप्त रखें और आप भी सुने, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो उनको बात करेंगे, फिर उनको ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इसके अवसर पर सभी का उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण बालिका विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में मेरी टीम में खदरी खड़कमाप के प्रधान जी मैम और केदारवाला से ग्राम पंचायत से प्रधान तबस्सुम मैम हाजिर हैं, और हमारे जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड R&D एक्सपर्ट कंचन नेगी, डॉक्टर कंचन नेगी, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Thank you so much, sir. जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे हर रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, जहां मंडुए की रोटी हुड़के की थाप, जहां हर मन करता शिव जी का जाप, ऋषि मुनियों की जो तपोभूमि है, वीरों की जो जन्मभूमि, बस लिए समर्पण तन मन से हम उस देवभूमि से आते हैं। अपनी मेहनत और निष्ठा से हर काम कर नाम उत्तराखंड का कर जाते हैं, नाम उत्तराखंड का कर जाते हैं। Respected honorable dignitaries present on the dais, respected officers, delegates, stakeholders, and my dear elected representatives from across India, a very warm afternoon to one and all. At the onset, on behalf of the Department of Women Empowerment and Child Development Government of Uttarakhand, I, Dr. Kanchan Negi, an internationally acclaimed capacity building and research and development expert,
Want to express my gratitude, sincere gratitude to the Ministry of Panchayati Raj for having us here today in this auspicious, iconic week to celebrate the 75th Azadi ka Amrit Mahotsav. Sir, today our presentation is on the socially secured Gram Panchayat. And डॉक्टर नेगी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सरपंचों को मौका दें. Sure, sir. मैडम आप तो कभी भी बोल लेंगे, हमारे सरपंच तो नहीं बोल पाएंगे. Sir, we just want to focus on few SDGs first of all, and then मैं आपसे विनती करूंगा आपकी बातें प्रेजेंटेशन शेयर कर ली जाएंगी, लेकिन all right, sir. Sure, sir. को मौका दीजिए. आप थोड़ा. So we can show film first. Yeah. So I just want to kind of attention towards a short film which is presented by under the guidance of our secretary, sir, on the socially secure Gram Panchayat. One being the Gram Panchayat Kadri Kadakmaaf, and the other is the Gram Panchayat Kedarawala. Please take a look. Thank you. हिंदी डाली डाली फूलों की, डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में. देवभूमि उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत खदरी खड़गमाफ एक ऐसी विकसित पंचायत है जहां के ग्रामवासी पूर्ण रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर हैं और आज यह पंचायत अपने विकास कार्यों की वजह से एक सोशल सिक्योर मॉडल पंचायत के रूप में उभर कर आई है, जहां अनुसूचित जाति के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास कार्यों जैसे एक सामुदायिक भवन एवं 2 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी कराया है. सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं, शुल्क फोटो स्टेट की व्यवस्था है, अपनी लाइब्रेरी है, पानी की टंकियां स्थित है, पुस्ता निर्माण का कार्य, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, चेक डैम व नहर मरम्मत, जीएसटी सेंटर, जिम की सुविधा भी उपलब्ध है. पंचायत में सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए लागू सभी योजनाओं के साथ खाद्य सुरक्षा एवं अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है. पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 2.5 वर्षों में कई कार्य किए हैं. स्वयं सहायता समूह वालों के लिए मनरेगा से वृक्षारोपण के कार्य भी करवाए हैं. अनेकता में एकता की मिसाल को दर्शाते हुए चाइल्ड फ्रेंडली एवं सोशली सिक्योर ग्राम पंचायत केदारावाला देहरादून की झलकियां, जिसमें अधिकतम आबादी मुस्लिम समुदाय के होने के बावजूद सभी धर्म के लोग सब प्रेम भाव से एक साथ मिलकर रहते हैं और माइनॉरिटी होने के बावजूद अनुसूचित जाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए पंचायत में अनेकों कार्य हुए हैं. पंचायत ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जिस कारण विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लोग अध्ययन भ्रमण के लिए इस पंचायत में आते हैं. हम बच्चों की शिक्षा, खेल एवं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए कार्य किया है. आंगनबाड़ी केंद्रों के कुपोषित बच्चों को गोद देकर उनको कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है. ग्राम पंचायत को सोशल सिक्योर बनाने के लिए सभी लाइनिंग डिपार्टमेंट का समय समय पर पूर्ण सहयोग रहा. यही नहीं, सोशल सिक्योर ग्राम पंचायत के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड पंचायतों के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्ण सहभागिता निभा रहा है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत एवं आजादी का अमृत महोत्सव में भी अपना भरपूर योगदान दे रहा है. सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड श्री हरिचंद्र सेमवाल जी का मानना है कि सभी रेखीय विभागों के समन्वय से ही हमारे प्रदेश और हमारे देश का विकास हो सकता है. अब आपके सामने अपनी प्रस्तुति देंगी ग्राम प्रधान खदरी खड़गमाफ की प्रधान. एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत. सम्मानित मंच तथा अनेक राज्यों से आए हमारे सारे प्रतिनिधियों को मेरा प्रणाम. आज के इस शुभ अवसर पर मैं संगीता थपलियाल, ग्राम प्रधान खदरी खड़गमाफ, जनपद देहरादून, उत्तराखंड, सर्वप्रथम अपने गांव के लोगों को इस राष्ट्र मंच के से प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे अपना सरपंच चुना है और आपकी बदौलत मैं आज इस मंच पर खड़ी हूँ. मैं अपने और अपने प्रदेश की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी श्रीमान सुनील कुमार जी, सचिव पंचायती राज भारत सरकार का, जिनकी प्रेरणा से हम महिला प्रधान भी इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर अपने गांव का विषय आप सबके सामने साझा कर रहे हैं.
ग्रामीण परिवेश के अनुरूप सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा जीपीडीपी कार्य योजना तैयार करने से पहले सभी वार्डों में ग्रामीणों के साथ बैठक की जाती है। इससे सतत विकास के लक्ष्यों जिससे सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, सुशासन, महिलाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा, गरीबी उन्मूलन, बाल हितों का संरक्षण, पेयजल एवं कृषि कार्य हेतु पर्याप्त जल की व्यवस्था, गांव में स्वच्छता एवं हरियाली बनी रहे, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु ठोस योजनाओं का चयन और गांव में शांति सुरक्षा का वातावरण बना रहे। इन सभी थीम को ध्यान में रखकर जीपीडीपी कार्य योजना तैयार की जाती है। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि आने वाले समय में हमारी पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत बने। धन्यवाद। अब आपके सामने आएंगी ग्राम प्रधान केदारावाला की प्रधान है, जिनका नाम है श्रीमती तबस्सुम इमरान, और इनकी पंचायत ने कई राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने पंचायत के नाम किए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत तबस्सुम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान केदारावाला की ग्राम प्रधान तबस्सुम इमरान, विकासखंड विकासनगर, जनपद देहरादून, उत्तराखंड से। मेरे ग्राम पंचायत केदारावाला 100% सोशल सिक्योर है। 70% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत में SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। सबका साथ सबका विकास धारणा को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत में विकास के कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायत की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ कार्य योजना बनाकर समस्याओं का समाधान किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो 17 गोल्स में से ग्रामीण परिवेश के अनुरूप आने वाले लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए हमने अपनी पंचायत में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विकास के कार्य कर रहे हैं। जल्द ही हम अपनी पंचायत में सभी गोलों को अचीव करेंगे। मिशन अंत्योदय सर्वे के अनुसार हमारी पंचायत केदारावाला ने देश में 8वीं रैंक प्राप्त की है और हमने अपनी ग्राम पंचायत को कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें जितनी समस्त आंगनबाड़ियां हैं ग्राम पंचायत द्वारा उन समस्त आंगनबाड़ियों के कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया है और उनको जो भी न्यूट्रिशन और पोषण आहार महीने की 5 तारीख को हमारे द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है और उनकी मॉनिटरिंग के लिए ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी क्षेत्र वाइज आंगनबाड़ी की सहायिका को रखा गया है। और मैं ग्राम प्रधान होने के नाते और गांव में रहने के नाते तो मैं भी समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग करती हूं और आंगनबाड़ी के द्वारा ही, जैसा कि सर ने कहा था कि एक किशोरी बालिकाएं आने वाले समय की माँ है, तो उनके स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अभी से हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में किशोरी बालिकाएं स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी और कुपोषण मुक्त हम अपनी पंचायत को बनाएंगे। सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय की सभी योजनाओं का पूर्ण लाभ दिया जा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, अटल आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, जन धन योजना, मनरेगा योजना। आपकी स्टेटमेंट मैं यहाँ बीच में टर्मिनेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को निकल नहीं रहे हैं और आपकी बात फिल्म में भी आ गई है। पर एक चीज मैं तबस्सुम बहन के बारे में बता दूं, ये पहले आंगनबाड़ी सेविका थी। यस सर। और आंगनबाड़ी सेविका से बढ़ के ग्राम प्रधान बनी थी। ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे लगता है कि आप इसके नाते जो किशोरियों को, बालिकाओं को, माताओं को, बच्चों को जो कठिनाई होती है उसका आपने बड़े अच्छे से निदान किया। मैं आपको बधाई देता हूँ और समय की कमी के चलते मैं आपका पूरा स्टेटमेंट मंच से तो साझा नहीं करवा पाऊंगा। आप अलग से जो भी लोग आपकी बात सुनना चाहें या जानना चाहें वो आपसे बात कर लें। मैं अभी पिंडारगांव ग्राम पंचायत झारखंड से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आगे धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं संदीप दुबे, उपनिदेशक पंचायत राज निदेशालय झारखंड सरकार। सभागार में उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण और विभिन्न राज्यों से आए पंचायत को नमस्कार करता हूँ। संदीप कृपया जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं सर, हमारे यहाँ पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो सर हमारे यहाँ से कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
तो हमारे जो आपके पास फिल्म है? हाँ सर, फिल्म है। फिल्म रन कर दीजिए, फिल्म जलाया जाए। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड स्थित पिंडारकोन ग्राम पंचायत, जिसकी कुल जनसंख्या 6,815 है और यहाँ 1,216 परिवार रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कामाख्या कुमार सिंह है। हमारा पंचायत विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के काम किया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम किया है। कृषि में हमारा पंचायत सिंचाई से संबंधित काम किया है, जिसमें विद्युत सब स्टेशन का निर्माण, जिससे हमारे जितने भी वाटर रिसोर्स पॉइंट है सभी पे इलेक्ट्रिक का सुविधा, साथ में छोटे छोटे नाला पर चेक डैम का निर्माण, कूप का निर्माण, किसान भाइयों को लगभग 90% जमीन पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुआ है, जिससे वे साल में 2 से 3 फसल उगा पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। शिक्षा को लेकर के हमारा पंचायत कोर कमेटी का निर्माण किया है। सभी मिलकर विद्यालय स्तर पर रोटेशन बेसिस पे मीटिंग मंथली करते हैं, जहाँ पे चर्चा होता है बच्चों को शिक्षा को लेकर के, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के। अभी पूर्ण पंचायत 0 ड्रॉप आउट है, एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है, सभी बच्चे स्कूल में इनरोल है। तकनीकी शिक्षा को लेकर बढ़ावा देने के लिए हमारा पंचायत कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किया है, जहाँ पे अभी हमारे यहाँ लगभग 85 बच्चे हैं जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ में पंचायत भवन में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर के हमारा पंचायत बेहतर काम किया है। यहाँ पे हमारे जितने भी योग्य लाभुक हैं, चाहे राशन का हो, पेंशन का हो, आवास का हो, सभी को 100% योग्यता के अनुसार से उपलब्ध करवाया है। संख्या के तौर पर देखें तो 273 हम लोग राशन नए जोड़े हैं, 779 पेंशन नए जोड़े हैं, 393 हम लोग आवास जोड़े हैं। पूरे पंचायत में एक भी घर नहीं है जहाँ पे बिजली नहीं उपलब्ध करवाए। सभी घरों को बिजली, पानी और जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत हम लोगों को उपलब्ध करवाए हैं। लोगों की सहायता के लिए सहायता केंद्र की स्थापना किए हैं, जहाँ पे हमारे 2 दीदी लोग बैठती है। हमारा पंचायत 6 दिन खुला रहता है, जिससे हमारे पंचायत के क्षेत्र के लोगों का पंचायत से लगाव बढ़ा है, लोगों को आना जाना बढ़ा है और पंचायत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंचायत स्तर पे सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया है, जिससे वो अपने आजीविका में कुछ बढ़ोतरी कर पाते हैं। हमने स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र बनाए, जहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित सारे सुविधाएं हैं। साथ में आंगनवाड़ी को मॉडर्न बनाया गया है, जहाँ पे बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए सारे सुविधाएं उपलब्ध है। इन सभी कार्यों के लिए हमें जिला, राज्य एवं नेशनल स्तर पे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग संदीप से अगर कोई आप इसमें और इनोवेशन आपके यहाँ हुआ हो तो बता सकते हैं। सर, हमारे हजारीबाग जिले में ये प्रखंड गांव स्थित है सर। वहाँ के जो पंचायती राज के डीपीएम है वो आए हैं सर। वो जो चैलेंजेस इन लोगों ने फेस किया और जो इनिशिएटिव लिए उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण देंगे सर। मेरे विचार से जो आपने इनोवेशंस किए 2-3 वो बताइए, ताकि समय थोड़ा 5 बजने को है, ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे। मैं राजकुमार मंडल, डीपीएम पंचायती राज हजारीबाग। ग्राम पंचायत पिंडारकोन के बारे में सर आप लोग देखें सर, और वहाँ पे काफ़ी बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूँगा। वहाँ पे काफ़ी चुनौतियाँ थी इस चीज़ को हासिल करने में, जिसमें कि जन प्रतिनिधियों में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा था। छोटे छोटे संगठनों का अलग अलग होना, लोगों के पंचायत के प्रति गलत सोच, विभागों के साथ समन्वय नहीं बना पाना, शिक्षकों एवं अन्य पंचायत कर्मियों के विरोध इत्यादि चुनौतियाँ रही, जिसको ओवरकम करते हुए पंचायत के प्रतिनिधि एवं सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया, जिससे कि पंचायत को सोशली सिक्योर्ड बनाया गया, जिससे सभी लोग वहाँ के जो योग्य लाभुक हैं उसको पेंशन से जोड़ा गया, सभी योग्य लाभुकों को राशन से जोड़ा गया, योग्य लाभुकों को आवास से जोड़ा गया, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने लगे, सीएसओ के साथ समन्वय स्थापित किया गया, 100% बच्चों का नामांकन स्कूल में, पेयजल का व्यवस्था, कृषि के क्षेत्र में कार्य, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय, छोटे छोटे संगठनों, SDG, NGOs के साथ समन्वय एवं सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर
वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कार्य किया और पंचायत को सोशली सिक्योर बनाया। धन्यवाद। अगर किन्हीं को कोई लास्ट कमेंट करना हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ, अन्यथा मैं इस सेशन को कंक्लूड करूंगा। मंचाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो 2 ग्राम पंचायत और हैं जो अपनी बात सबके सामने रखना चाहते हैं। अगर आप बहुत संक्षेप में जी क्विकली मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बानियाखेड़ा संबल उत्तर प्रदेश की डॉक्टर सुगंधा सिंह। इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव जो आइडिया वो कर रही हैं उसके बारे में बात करेंगी और खुद भी बताएंगी, लेकिन इन्होंने सामूहिक मंजन करने का कार्यक्रम बनाया है, तो ये सुनना आई एम श्योर कि सबके लिए मजेदार रहेगा। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सर्वप्रथम मैं आप सबका, भारत सरकार का, राज्य सरकार का और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। मैं ब्लॉक बनियाखेड़ा से डॉक्टर सुगंधा सिंह मेरा नाम है, वहाँ से ब्लॉक प्रमुख हूँ और हमारे जो ब्लॉक है उसमें हम लोगों ने, जैसे समस्या सबसे ज्यादा ये आती थी कि जो रोग होते हैं वो 30% मुख द्वार से होते हैं, जो ओरल रूट होता है। तो हम लोगों ने ओरल हाइजीन अवेयरनेस के तहत एक अभियान चलाया जिसमें हम साप्ताहिक रूप में हर हफ्ते ब्रश कराते हैं लोगों को। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन हम ये चीज कराते हैं क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और ब्रश नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है एक बेहतर भविष्य के लिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो मुझे इस चीज पे गर्व है कि मैं ब्लॉक में अपना समय देती हूँ और प्रत्येक हफ्ते 3 दिन में ब्लॉक में बैठ के जन सुनवाई करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बढ़िया। एक और हाँ, इनवाइटिंग ऑन स्टेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जालंधर, स्मार्ट विलेज रोडका कला। कुलविंदर कौर हैं सरपंच और उनके साथ में आ रहे हैं गुरमंगल डॉक्टर। संक्षेप में कुलविंदर जी। ओके सर। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी उच्च अधिकारियों को और विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी ग्राम पंचायतों के कर्ताओं को मेरी ओर से नमस्कार और सत श्री अकाल, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और मैं पंजाब से हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो जालंधर है। मेरे गांव का नाम है रुड़का कला। हमारी जो पंचायत है वो 30 दिसंबर 2018 को बनी थी मिशन 2024 के तहत। और मेरा गांव जो है वो मेरे परिवार की तरह है और हमारी कोशिश होती है कि मेरे गांव में कोई भी समस्या हो तो हम उसका समाधान कर पाए। सबसे पहले जब हमारी पंचायत बनी तो सबसे पहले हमने लोगों की सहूलियत के लिए ऑफिस खोला, क्योंकि ज्यादातर होता है कि सरपंचों के घर ढूंढने पड़ते हैं। तो हमने पहला काम ये किया कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी कोई भी समस्या हो वो ऑफिस में जाए और अपनी समस्याएं बताएं। जैसे कि पेंशन लगवाना, कोई लड़ाई झगड़ा होता है वो तो आधार कार्ड के फॉर्म वगैरह वो हम वहाँ पर हमने 2 जो स्टाफ मेंबर रखे हैं, उनकी जो सैलरी है वो YFC से आती है। वो हमारे यहाँ फुटबॉल अकेडमी है। अभी टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा सकती। और 5 लाख स्क्वायर फुट हमने गांव में इंटरलॉक लगाई है, सीवरेज पाके और स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। 15 करोड़ की लागत से हमने हमारे गांव में स्पोर्ट्स अकेडमी एंड स्टेडियम बनाए गए हैं। और भारतीय टीम जहां पर 2 भारतीय खिलाड़ी दिए गए हैं भारत को। गंदे पानी की मैनेजमेंट करने के लिए 6 छप्पड़ों का नव निर्माण किया है, जिसका पानी साफ करके खेतों की सिंचाई के लिए काम आता है।
20 सोक पिट बनाए गए हैं, 5 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए गए हैं। अभी मैम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 2 घंटे से बैठ जा रही हूँ। वैसे मैं कोई ऐसा कि बुला रहा नहीं हूँ ना, मैं तो डर रही थी क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलती साहब, मैं थोड़ी सी पेश करती हूँ। अभी काम मतलब इतने काम हुए हैं ना, तो मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, सॉरी है, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। और हमने 1 साल में 3 बिलियन वाटर है जो सेव किया है। हमारे गांव में स्पेशल बच्चों के लिए जो नीडी होते हैं उनके लिए सेंटर है और फिजियोथेरेपी सेंटर है। फ्री एम्बुलेंस सेवा है हमारे गांव में। जब कोविड था तब हमारे गांव में 24,000 मास्क जो बनाए लेडी ने खुद बनाए, उसमें मैंने भी काम करवाया। मेरी ग्राम पंचायत की जो लेडीज है पंच, उन्होंने भी करवाया। और 1400 घरों में राशन बांटा, तो इसमें 26 लाख जो है वो खर्चा आया था। और 5 ग्रीन पार्क बनाए गए, 12 हेरिटेज पार्क ओल्ड एज के लिए मतलब 8 बन गए और 4 अभी जैसे बन रहे हैं। मैडम इसका एक मूवी बनाकर एक अपलोड कर दीजिए हमारे पोर्टल पे। सर ऐसा कि हमें पहले पता नहीं था ना, तो हाँ कर देंगे। हाँ, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी हमारा काम अभी शुरू हो चुका है, पर अभी मतलब काम मतलब थोड़ा सा हुआ है। और 7 आंगनवाड़ी, क्योंकि हमारे गांव की पॉपुलेशन जो है वो 10,000 जो है, तो इसलिए वहाँ पर काम भी ऐसे ही बड़े ही है। ओके मैम। मैं सुखविंदर जी से अनुरोध करूंगा कि सर कुलविंदर जी धन्यवाद अपना नाम करेक्ट करने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि अब सब उठ के जा रहे हैं तो हमें। ओके सर, थैंक यू टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। तो अब ये समय आ गया है कि हम जो आज अभी तक 20 सेकंड, हाँ मैं बिफोर आप जाएं एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग अभी तक रोज सेक्रेटरी साहब कर रहा था, सेक्रेटरी साहब नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये जो 17 से 24 के बीच में आपको ग्राम सभा के अंदर अपना जो संकल्प लेना है कौन से एसडीजी का, उसका करके मॉडल का अपलोड करा है ना। तो प्लीज डू योर ग्राम सभा between 30 to 34, get a संकल्प और whatever SDG you want to and upload all of these. The secretary is telling every day. So please not धन्यवाद। अब मैं आप सब लोगों से हार्डली 2 मिनट लूंगा और आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी शांति बनाएं। तो अभी समय आ गया है कि हमें जाकर क्या करना चाहिए। कई लोगों ने अच्छा काम किया, कई लोगों ने सोच रहे हैं, तो इस सोशली सिक्योर बनाने के लिए हम क्या करें, इस पे एक हम लोगों को सोच विकसित करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि केरल के ग्राम पंचायत के सरपंच जी ने कहा कि उनके यहाँ उन्होंने सर्वे कराया, सर्वे कराकर समझा कि कहाँ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर उनको लोगों को सहायता की जरूरत है, और फिर उसका उन्होंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसके लिए उन्होंने तरीके निकाले, सॉल्यूशन ढूंढा और उसको इम्प्लीमेंट किया। सर्वे कराइए, समझिए कि कहाँ पर लोगों को सहायता की जरूरत है और समाधान ढूंढिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप उन मुद्दों पे भी काम करिए जिससे लोगों का पूरा विकास नहीं हो पाता है। जैसे अगर malnutrition की समस्या कई लोगों ने बताई, कई लोगों के यहाँ पर अर्ली मैरिज का इशू है, लोगों के यहाँ पे एल्डरली लोग हैं तो उनको आंख में मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद के चलते काम नहीं कर पाते। जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके पास
प्रॉपर डिवाइसेस नहीं है जिससे कि वो अपना कार्य ठीक से कर सकें और प्रोडक्टिव कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकें। तो उस तरह की जो समस्याएं हैं उनको सामना करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर जो आंगनवाड़ी चल रही हैं, जो मिड डे मील स्कीम्स चल रही हैं, उनका उपयोग करें। जो इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स है उनका उपयोग करिए। पीडीएस इनरोलमेंट कराइए, इंश्योर करिए कि उन सब से पूरी तरह से उपयोग हो। कई मामलों में सिर्फ इन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना काफी नहीं है। जरूरी है कि योजनाओं के बाहर लोगों की जरूरतों को समझ के उन पर काम किया जाए। जैसे कि गिरीश जी बता रहे थे कि अगर हम जो एल्डरली हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, उनके लिए हम लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर्स विकसित करें, डे केयर सेंटर का विकास करें, उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराएं, तो ये किसी योजना में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उनके प्रति संवेदनशील हैं तो आपको ये लगेगा कि ये काम जरूरी है और उसको करना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो ना तो सीधे ये सामने नहीं आती, जैसे समाज में काफी अपराध होता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ट्रैफिकिंग है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये इनके जब तक ये हैं तब तक समाज सोशली सिक्योर नहीं हो सकता। तो हम कैसे कोशिश करें कि जिससे समाज में जो अपराध, लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसमें हम कमी ला सकें। अच्छा, उनके पास ये एक बहुत बड़ा कदम आपकी तरफ से होगा और इसमें आपको बहुत इमेजिनेटिव होकर काम करना पड़ेगा। कई बार हमें थोड़ा और भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वो चीजें हमारे जीवन के काम करने के तरीके में इस तरीके से रची बसी है कि उसका पता लगाना मुश्किल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे परिवार में लोग महिलाओं को और लड़कियों और लड़कों के बीच में हम भेदभाव कर रहे हैं। हम शादी उनकी पहले करा दे रहे हैं। क्या हम न्यूट्रिशंस में भी फर्क आ रहा है? क्या हम उनको जिम्मेवारी दे रहे हैं? क्या हॉस्पिटल्स और मार्केट वो खुद जा सकती हैं? क्या खुद का उनका बैंक खाता है? तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर कि हम उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे जीवन में उसी तरीके से हम काम करते हैं। तो इस पे और भी ज्यादा विचार करने, मंथन करने, उन चीजों के बारे में समझने और उसके बाद उसका समाधान निकालने की जरूरत है। और इसमें आपको अपने गांव के लोगों से कई दौरों की बैठक करके उन समस्याओं की पहचान और उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी होगी। इंस्टीट्यूशंस के विकास करने होंगे। स्वयं सहायता समूह के इंस्टीट्यूशंस के बारे में कई लोगों ने चर्चा की। विलेज डिफेंस कमेटी के बारे में आसाम से जो भाई बोल रहे थे उन्होंने चर्चा की। तो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस जो इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनका विकास कराना पड़ेगा। कई मुद्दे ऐसे हैं जो सामान्यतः इग्नोर हो जाते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ की समस्या। लोग मेंटल हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है जहां पर लोग पीड़ित तो रहते हैं, लेकिन उसको हम समझते नहीं कि ये वास्तव में एक ऐसा मुद्दा है जहां पर उसका समाधान कराया जा सकता है। तो उन वैसे मामलों के प्रति संवेदनशील रहना, हॉस्पिटल्स और साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के माध्यम से वैसे लोगों के ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करना, उनको ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या वैसे सेंटर्स जहां हैं वहां भेजना, इस तरह के काम भी आपको करने की जरूरत हो सकती है। और लीगल काउंसलिंग का एक मुद्दा एक भाई ने उठाया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे आप
देख सकते हैं। आपको ये भी देखने की जरूरत है कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पंचायत भवन हो या आपकी स्ट्रीट्स हो या आपके बैंक इत्यादि हो, क्या वो डिसेबल्ड के लिए सुगम हैं, ये चीज देखने की जरूरत है। अगर रैंप नहीं है तो रैंप का निर्माण कराना, जिससे कि वो आसानी से चढ़ सकें। तो इस तरह के मुद्दों की ओर भी ध्यान देना होगा। अगर आपके यहाँ ब्रेल में साइन बोर्ड्स नहीं है तो ब्रेल पे साइन बोर्ड्स लगाना, ऐसे लोगों के लिए आउटरीच का स्पेशल दिन तय करना, ताकि उस तरह की समस्या वाले जो लोग हैं उनका एक पर्टिकुलर दिन ही आप समाधान कर सकें और दूसरी जगह से एक्सपर्ट्स बुला सकें। तो इस तरीके से इस सोशली सिक्योर बनाने के लिए आपको जो सरकारी स्कीमें हैं उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत पड़ेगी। संवेदनशील बनना होगा। आपको अपने पूरे ग्राम पंचायत के साथ, ग्राम सभा के साथ मिलकर बात करनी होगी, उनको संवेदनशील बनाना होगा, सब मिला के आम सहमति बनानी पड़ेगी, तभी जाकर इस दिशा में आप आगे काम कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जिस प्रकार से आपने अब तक लीडरशिप दिखाई है वो आगे भी दिखाएंगे, और इस दिशा में भी जो थोड़ा कठिन काम है उसको भी आप पूरा कर सकेंगे। मैं आप सभी को अपनी ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से और मैं बल्कि पूरे भारत सरकार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने पंचायत में और भी ज्यादा उपलब्धि हासिल करें और अपने माध्यम से लोगों के लिए अच्छा जीवन जीने का एक जरिया और माध्यम बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं इनवाइट करूंगी स्टेज पर मुनल तुरुती, ग्राम पंचायत केरला। आप मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट करना चाह रहे थे। नाउ इज द मोमेंट, प्लीज कम एंड जॉइन अस क्विकली, वेरी क्विकली। जी, आप सभी से कल सुबह फिर मुलाकात होगी, प्लीज अभी बताता हूँ। कृपया ध्यान दें, कल सुबह का सेशन फिर 9:50 पर शुरुआत करेंगे। उसके पहले तकनीकी सत्र की, तो कृपया हमारे साथ समय से जुड़ना न भूलें। और मंत्रालय के ट्विटर हैंडल @MOPR_, उससे जुड़ना ना भूलें। और MyGov पोर्टल पर जो क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें हिस्सा ना लेना भूलें। याद रखें कि उनमें शामिल होने वालों को कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो MyGov पोर्टल पर क्विज कॉम्पिटिशन और मंत्रालय का ट्विटर हैंडल और अध्यक्ष उनके साथ जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद। सर, मैं ये बात करना चाहता हूँ